India and Sri Lanka at the HPCA Stadium at Dharamshala, Himachal Pradesh. A warm welcome to our listeners once again. I'm your commentator Arjun Chaudhary in English, and with me is Adesh Kumar, who would be giving the commentary in Hindi. A warm welcome to you. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका। और जैसे कि अर्जुन जी ने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाना है। और इससे पहले भारत ने दोनों ही मुकाबले जीते हैं, तो सबको इंतज़ार रहेगा इस बात का कि क्या श्रीलंकन टीम आज का मुकाबला जीतकर जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ होगी उसके लिए कुछ अपना मनोबल जुटा पाएगी। लेकिन समाचार ये है कि श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। That's correct. Sri Lanka won the toss, and instead of choosing to field like they did in the previous match, they have elected to bat first. And it is the Sri Lankan openers who are out there on the field. There are also changes in the Indian start list. Rohit Sharma, the captain of the Indian squad, deciding to bring about these changes after India won the first 2 T20s. The first T20 that India won by 62 runs. But it is the second T20 yesterday at the HPCA Stadium itself that the viewers, listeners and the commentators enjoyed the match because of Sri Lanka fighting back, scoring 186 for 3. That is what India scored in their reply after Sri Lanka scored 183 for 5 in the 20 overs. It was a fighting match and certainly enjoyed by those who viewed it and listened to it as well. Today's match should be no different, with Sri Lanka winning the toss and electing to bat first, trying to take something away from this T20 series before the start of the first and second test match at Mohali on March 4 to 8. जी हाँ, और सबकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि क्या विराट कोहली उसमें अपना शतक बना पाते हैं नहीं। हालांकि जो टेस्ट मैचेस है उसका शतक ज़रूर बन जाएगा। और आज हम अपने देखने वालों को ये भी बता दें कि जो भारतीय टीम है उसमें रोहित शर्मा कप्तान, संजू सैमसन जो कि टीम के विकेट कीपर हैं, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आवेश खान, यानी टीम में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। Well, the first delivery was by Mohammad Siraj, giving room on the offside and looking to make room on that cover point area. Well intercepted by Jadeja, who's in that fielding position. So valuable run stopped by the fielder there. There are still field restrictions in this first 6 overs. And the second delivery now being bowled by Siraj, and plenty of movement off the wicket there. He's also getting pace, bowling at 137 kilometers per hour. It is Nissanka who is in a spotter bother right now. Not enough footwork in his play there, Adesh. जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि काफ़ी हैवी वेदर था और बारिश का अनुमान लगाया गया था, हालांकि बारिश तो नहीं हुई लेकिन जो मौसम है उसका असर ज़रूर। और मोहम्मद सिराज क्षमता रखते हैं गेंद को विकेट के दोनों तरफ स्विंग कराने की। और ये जो जोड़ी है प्रथम निशांका और इसके अलावा जो उनके साझेदार हैं, कल देखिए किस तरह से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक की साझेदारी की थी। गुनातिलका ने इस बीच अगली गेंद जो कि ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को हल्के से ऑन साइड में टर्न किया। रन बनने की यहाँ कोई संभावना नहीं थी। तो यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और कल जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने काफ़ी कोशिश की रन बनाने की और एक अच्छा स्कोर भी बनाया, तो आज क्या वो इतना टारगेट भारत के सामने रखेंगे कि उनके गेंदबाज कुछ दिक्कतें पैदा कर सकें। Well, 3 dot balls so far. Siraj using the crease quite well. Once again looking to run it down towards the short third man area, and once again called back by the non-striker because the non-striker Gunathilaka can actually see the fielder, and Nissanka being sent back to the striker's end. He scored 75 in the second T20 of 53 deliveries, and a key component in that batting lineup when Sri Lanka scored 183 for 5, which India was able to overhaul thanks to stellar batting performances where they scored 186 for 3 in under 18 overs. In fact, 17.1 overs by which they won the match.
This time once again looking to make room, and he does, and picks up run on the offside behind the wicket, running it down to third man. So the first run is on the board. Nissanka batting on 1 of 5 deliveries, and the non-striker Guna Tilaka is on strike right now. He will be facing his first delivery. This is a right and left hand combination. Guna Tilaka is a left-handed batsman, and over here we'll have to see, Adesh, how the bowler Siraj actually adjusts to this right-left combination. दरअसल मोहम्मद सिराज आईपीएल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने के बाद आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सेलेक्ट हुए और वहां जाने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब टेस्ट कैप मिली तो बहुत भावुक थे, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। और जब इतने साल इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट कोई खिलाड़ी खेलता है तो फिर काफ़ी मदद मिलती है। इस बीच अगली गेंद, और यहाँ पर मोहम्मद सिराज को कामयाबी मिली, जबकि उनकी गुडलैंड स्पॉट पर पिच होती हुई गेंद जो कि स्टंप से काफ़ी ऊंचाई लेकर जा रही थी, लेकिन बैट्समैन ने उसे खेलने की कोशिश की और गेंद ने उनके बल्ले का भीतरी किनारा लिया और उसके बाद वो विकेट में चली गई। इस तरह से प्ले डाउन हो गए यहाँ पर गुनतिल का, और भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि श्रीलंका का स्कोर अभी 2 अंकों तक भी नहीं पहुँचा है। Well, the mistake Guna Tilaka made was, instead of trying to pull it in front of the wicket, he should have tried to cut it, played it late. And the mistake has caught him because the extra pace of Mohammad Siraj catching the inside edge of the bat and crashing it onto the stumps. So the first wicket has now fallen with a score 1 on the board after 1 over. And it's really the extra bounce of Mohammad Siraj catching Guna Tilaka off guard there. Even though it was not good length, it was short of good length, but not staying on the back foot and playing it late. And that's a mistake he made, as a result of which Sri Lanka has lost their first wicket. We have the new batsman coming in, Lanka, who scored 53 in the first T20 but was dismissed cheaply in the second T20. Will he be able to make amends here? And I'm sure, Adesh, winning the toss and electing to bat first might have been a mistake, because in the first 3 T20s they have chosen to field first. आपने बिल्कुल सही कहा, और जिस तरह से हैवी कंडीशन है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अभी सर्दी का मौसम है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है ये तो पहाड़ियों के बीच ही है, और जो वेदर है वो फास्ट बॉलर्स को हमेशा सपोर्ट करता है। शायद उनकी सोच ये रही हो कि बाद में ड्यू फैक्टर होगा, बॉल को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। और इस बीच आवेश खान नए ओवर की शुरुआत करते हुए निशांका इस समय विकेट में क्रीज पर, और ये गेंद जबकि पैड पर रैफ करती हुई, लेकिन निश्चित रूप से लेग स्टंप के काफ़ी बाहर। और अभी भी कप्तान से सलाह लेते हुए कि थर्ड अंपायर के लिए जाएं या न जाएं। डीआरएस का टाइमर का जो समय है अभी भी 4 सेकंड शेष, लेकिन ये समय शायद बीत जाएगा। और कप्तान रोहित शर्मा जो कि स्लिप में खड़े हैं और उन्होंने विकेट कीपर संजू सैमसन से भी सलाह ली, तो निश्चित रूप से सबको पता था कि ये गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर जा रही थी, तो डीआरएस लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन यहाँ तारीफ़ करनी होगी भारतीय थिंक टैंक की, जिस तरह से उन्होंने टीम में काफ़ी चेंजेस किए हैं और युवा खिलाड़ियों के लिए काफ़ी मौके की बात। इस बीच आवेश खान अगली गेंद के साथ शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन इस गेंद में काफ़ी ऊंचाई भी थी जिसकी वजह से बैट्समैन शॉट खेलने तो ज़रूर गए लेकिन बॉल के पास तक बैट को नहीं ले जा सके। दरअसल ये दूसरा ही ओवर है और निशांका इस गेंद को ज़रूर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं। दरअसल खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, वो फ्रंट फुट पे निकले ज़रूर लेकिन गेंद की लाइन से बहुत ज़्यादा दूर थे, और ये कोई अच्छी रणनीति नहीं क्योंकि अभी एक विकेट गिर चुका है, उन्होंने अपने साथी को खोया। इस बीच अगली गेंद, और इस बार विकेट कीपर और स्लिप के बीच से गेंद निकलती हुई सीधे 4 रन के लिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, और ये ज़रूर एक खतरे का सिग्नल हो सकता था निशांका के लिए क्योंकि उनके बल्ले का भीतरी किनारा लगा था और ये चौका ज़रूर मिला, लेकिन ये शॉट ऐसा था, हालांकि पैड पर रैफ किया यहाँ पर, लेकिन एक नज़र में ऐसा लगा कि शायद बैट और गेंद का संपर्क हुआ। दरअसल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद काफ़ी तेज़ी से मिडिल स्टंप की तरफ आई, तो बैट की जगह गेंद शफल करते हुए पैड पर लगी। इस बीच अगली गेंद और पिच गेंद, और इस बार कवर्स में गेंद को ड्राइव किया, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ सर्कल में खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। श्रीलंका का स्कोर अभी भी 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। We're seeing Avesh Khan getting plenty of pace and bounce, and he bowls as off cutter. He uses a wrist very well,
and it's the reason why he's able to adjust to any movements of the batsman looking to make room and score runs. Yes, in the previous delivery, it's the extra cover fielder blocking that stroke. So no runs off that delivery. It's 5 for 1. And Nissanka trying to make room, score, and this time heaving it on the offside over the infield. Does he find the fielder? He does. And the second wicket has fallen with a score 5 on the board. Avesh Khan's bowling, his strong wrist work, ensuring that the second wicket has fallen with a score 5 on the board. These key changes have been very important as far as India is concerned, and Rohit Sharma's captaincy has to be marked for this because, as you said, Adesh, that I just confused the bowler for my co-commentator, that giving the opportunity to these young fast bowlers in this third T20 after India winning the series has been crucial, and it's already paying dividends. और क्लीन स्वीप के लिए तो ज़रूर जाना चाहेंगे रोहित शर्मा इस 2020 मुकाबले को भी जीत कर, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ इससे पहले न्यूजीलैंड का सफाया किया और रिकॉर्ड बनाया भारत ने, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का कभी भी इस तरह से क्लीन स्वीप नहीं हुआ था, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 3 बार इस तरह से क्लीन स्वीप किया था भारत का। लेकिन आज आवेश खान को जिस तरह से टीम में शामिल किया गया तो उन्होंने दिखा दिया। और देखिए, सिराज खान और आवेश खान एक तरह से इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सिराज खान ने पहले गुना तिलके को आउट किया और यहाँ फिर आवेश खान ने निशांका को चलता किया। और जैसा कि हम कह रहे थे कि अभी शुरुआत है बैटिंग की, निशांका को इस तरह के शॉट्स नहीं खेलने चाहिए। और ये लॉफ्टेड शॉट, हवा में गेंद खड़ी हो गई, बहुत ही आसान मौका था और छक्के चौके लगाने के लिए अभी काफ़ी ओवर पड़े हैं। अब श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी दबाव होगा। It is Asalanka on strike, facing Avesh Khan, and doing well this time to play towards cover point. But it's a more of a check drive on his part, trying to recover after the damage done by both the opening fast bowlers, Mohammad Siraj and Avesh Khan. A wicket falling in each over. So the score is 5 for the loss of 2 wickets. And I'm sure the Sri Lankan captain, Dhasun Shanaka, who's the all-rounder in the side as well, would be regretting the decision he's made because 2 quick wickets have fallen. And as my co-commentator was mentioning about Dharamshala, where the temperature has actually fallen, it's 9 degrees centigrade now as compared to yesterday, where it was 14 degrees centigrade. So I'm sure playing on that fresh pitch, because there are 3 pitches laid out simultaneously, the curator's gone for a new pitch, and we can see the pace and bounce as the ball hurries off the wicket, and we can see the wicketkeeper really catching it on the high. 5 for 2 at the end of 2 overs. It is Lianage who's on strike. He's a right-handed batsman facing Mohammad Siraj, who has a fairly long run-up if he wants to, but this time just going through and not delivering the ball. And rhythm is very important for the fast bowler. Mohammad Siraj's figures are 1 for 1, because unless he's able to get the rhythm, he will not be able to deliver the ball at the speed or the accuracy that he is seeking. 2 slips in place and an appeal for leg before wicket. It's been turned down by the umpire. Will they take the DRS? That's the key question. शायद यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कप्तान, और हालांकि मोहम्मद सिराज उनसे लगातार सलाह ले रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा डबल माइंड है कि वो डिसीजन ले या ना ले, और अब उन्होंने ले ही लिया है आखिरकार। काफ़ी हद तक इस बात पर डिस्कशन हुआ कि क्या गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, यानी कि क्या गेंद आउट स्विंग थी और क्या विकेट से ऊपर जा रही थी। और अगर आवेश खान की बात की जाए तो आवेश खान का ये दूसरा 2020 इंटरनेशनल मुकाबला है और उस तरह से उन्होंने विकेट लिया, ये इनका पहला 2020 इंटरनेशनल विकेट है। तो जो पहला मुकाबला खेले थे उसमें विकेट नहीं मिला था, लेकिन अब इसके बाद वो और जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे। तमाम फील्डर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि DRS का आखिरकार फैसला क्या होता है। शायद गेंद स्टंप से ऊपर जा रही है क्योंकि पैड के काफ़ी ऊपर लगी है बॉल। Well, it's above the knee roll of the pad if you examine the replay. And I'm sure the height and the speed at which the ball is moving would be a factor for the third umpire. And which is why Rohit Sharma initially was just waving his head, saying that it's not worth the DRS. But again, being compelled by the teammates who said, why don't we take it? And it's easy for the third umpire to take a decision at this stage because of the IT technology available. You can track the ball, whether it's going above the stumps, whether it's in line of the stumps or not. So the decision in favor of the batsman.
And in Sri Lanka is 5 for 2 into the third over right now. It is Mohammad Siraj. Now he's bowling cutters. We had seen earlier where he was trying to swing the ball, but like his co-bowler Avesh Khan, he's bowling cutters now with two slips. And another attempt there, just squaring the batsman, picking up a quick single. और मोहम्मद सिराज की एक खासियत है, ये सिंगल ज़रूर बना श्रीलंका का स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर, कि ये एक ही स्पॉट पर और लगभग एक ही एक्शन से गेंद को आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों कराने की क्षमता रखते हैं। मोहम्मद सिराज से पहले 2020 मुकाबले के बाद जब पूछा गया था कि आपकी बॉलिंग की क्या खासियत है, किस चीज़ पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो मोहम्मद सिराज ने कहा था कि मैंने नेट पर इस चीज़ का अभ्यास किया कि स्पीड से बैट्समैन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना स्विंग से पड़ता है, तो उस पर उनका काफ़ी कंट्रोल नज़र आया। इस बीच अगली गेंद के साथ एक बार फिर से, लेकिन इस बार बहुत ही शानदार शॉट लगाया श्रीलंका ने और गेंद कवर बाउंड्री से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए श्रीलंका का स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये कुछ एरी शॉट ज़रूर खेल रहे हैं श्रीलंकन बैट्समैन। इससे अर्जुन ये पता चलता है कि जो श्रीलंकन बैट्समैन हैं उनकी मनोस्थिति क्या है, काफ़ी दबाव में हैं, रन भी बनाने की होंगे उन्हें, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा खतरा तो उठा रहे हैं। Well, Asalanka took advantage of that because if you see the ball, it did not land on the seam, and this is where the bowler is in two minds. Should he bowl a slower delivery or a faster delivery? And as a result, if you don't land the ball on the seam, then it will go haywire, and that's the advantage he took. This time beating Asalanka outside the off stump, and that's a line he needs to maintain. 10 for 2 into the third over. Chadit Asalanka, who scored a valuable 53 in the first T20, which Sri Lanka lost to India quite comprehensively, and trying to make a mark in this third T20. So it's all happening here at the HPCA Stadium in Dharamshala, Himachal Pradesh, in the Kangra district. It's a very scenic area around the stadium, and the weather is also holding up. There is no threat of rain. This time bowling it short, and Asalanka attempting to play a late cut but then letting it go. अच्छा हुआ उन्होंने बॉल को छोड़ दिया, क्योंकि एक तरह से वो पहले तो इस तरह का माइंड बना चुके थे कि शॉट खेलेंगे, और ये देखिए किस तरह से श्रीलंका ने पहला विकेट खोया। हवा में बहुत ऊंचाई पर ये शॉट था और फील्डर्स थे जो उन्हें कैच करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अर्जुन, एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है इंडियन टीम का। ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी संजू सैमसन के साथ आज रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, और बड़ा ही दिलचस्प कंपटीशन इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम में चाहे केएल राहुल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो ओपनिंग स्लॉट में हैं, और ख़ुद कप्तान रोहित शर्मा। और अगर पेस अटैक की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज हैं, और इसके अलावा अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को जिस तरह से रेस्ट दिया गया है, और आवेश खान है, हर्षल पटेल हैं, तो एक बहुत बड़ा बंच अब भारतीय टीम के पास है। लेकिन डिपेंड ये करेगा और सेलेक्टर्स की नज़र इस पर रहेगी कि इनका फिटनेस का लेवल क्या है। जो वर्ल्ड कप होना है 2020, तो उसके लिए खिलाड़ियों को परखा जा रहा है अभी, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है उनकी। Well, Rohit Sharma is a very astute captain, and he did observe Ishan Kishan being knocked on the visor yesterday off the bowling of Kumara, and he saw Ishan Kishan batting quite irresponsibly thereafter. Even though he was a man of the match in the first T20 with a valuable 89, we are into over number 4 now, as I'm just recalling what happened in the earlier T20s. It's 10 for 2. Avesh Khan now into his second over, and in the deliveries before, it was Mohammad Siraj who beat the bat quite consistently, once again holding the seam, and that's very important, especially for the opening bowler. But just coming back to Ishan Kishan, he was knocked on the visor quite hard, and his recovery, his response was not so good, and I'm sure Rohit Sharma observed it, which is why Sanju Samson has made it. And remember, Sanju Samson's contribution with the bat was also very good. Beating the bat on the offside, once again, Lian Nage playing and missing. 2 slips in place, and it's all happening here with the opening bowlers right on top of Sri Lanka right now, 10 for 2. अर्जुन, दरअसल जो संजू सैमसन को मौके दिए जा रहे हैं, ईशान किशन को भी भरपूर मौके दिए गए हैं, उन्हें और मौके दिए जाएंगे। दरअसल भारतीय थिंक टैंक यानी जो सिलेक्शन कमेटी है,
वो ये देखना चाह रही है कि जिस तरह से रिद्धिमान साहा को अ, टेस्ट मैच से भी बाहर किया गया और टेस्ट स्क्वाड से बाहर हुए, कि संजू सैमसन थोड़े से युवा हैं और युवा खिलाड़ियों पर इनकी ज़्यादा नज़र है। हालांकि संजू सैमसन इतने युवा नहीं हैं जितने ईशान किशन हैं। संजू सैमसन तो आप ये देखिए कि पहले आईपीएल से ही खेल रहे हैं और राजस्थान रॉयल्स तब विनिंग टीम थी और उसके बाद भी कुछ सीज़न ऐसे रहे जो संजू सैमसन के लिए बहुत अच्छे रहे। दरअसल संजू सैमसन को जितने मौके मिले वो उसको भुना नहीं पाए, जितना दूसरे बल्लेबाजों को मौका मिला, जैसे केएल राहुल, उनको मेकशिफ्ट ओपनर भी बनाया गया, मिडिल ऑर्डर में भी, चौथे नंबर पर भी। और रोहित शर्मा ने जब से ओपनिंग करनी शुरू की है तो किसी खिलाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बचती, कम से कम एक स्लॉट के लिए। फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अर्जुन, यहाँ भारतीय खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए कम है, खासकर आवेश खान और मोहम्मद सिराज, वो दोनों युवा हैं, काफ़ी तेज़ी से गेंद कर रहे हैं, मौसम उनको हेल्प कर रहा है और एक तरह से जो रनों की रफ्तार है उसको काफ़ी हद तक रोक दिया है। जो जो पहला पावर प्ले होगा उसमें मुझे लगता है कि कल जैसी सिचुएशन नहीं होगी। Well, 4 dot balls so far in this Avesh Khan over. In the previous delivery, it was Lianage looking to run it down towards third man, but finding the second slip. This time, playing it with soft hands and picking up a single on the offside, where your shot mid-off would have been, and hitting the stumps there, 11 for 2. So you were just mentioning about Sanju Samson. He scored 39 of 25 deliveries, and it's a one over where 23 runs had been scored by the Indian batting pair, which included Sanju Samson. And that was a key turning point because it allowed India to go ahead of the required run rate and scored 186 to win the match in the second T20. So even though coming back to this third T20, we are seeing once again a bowling change, both Mohammad Siraj and Avesh Khan making it count there. So far 4 dot balls and a single. Avesh Khan has figures of 1 for 1. And possibly another wicket as a miss hit being skied. It is a wicket keeper that picks up the catch. So the third wicket is now fallen with the score 11 on the board. और देखिए कि 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर ये स्कोर 2020 क्रिकेट में बहुत ही खतरनाक होता है। हमने आईपीएल के सीज़न में भी देखा कि अगर पहले पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर टीम 140 रन तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है और मिडिल ऑर्डर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। लेकिन अगर शुरुआती 6 ओवर में यानी पहले पावर प्ले में 30-35 रन गिरते बनते हैं और अगर रन भले ही ना गिरे लेकिन अगर विकेट बचे रहते हैं तो फिर एक लंबे स्कोर की उम्मीद रहती है। तो यहाँ पर सारा क्रेडिट जाएगा और टॉस आज बड़ा क्रूशियल हो गया। Absolutely, and there is plenty of juice in the wicket. We're seeing Avesh Khan this time pitching it up. And you mentioned earlier about how Mohammad Siraj is able to swing the ball both ways with one motion of the action. There's also wrist play here by which they're able to change the pace. So the alteration of the pace and the speed at which they're delivering the ball is all making it count. The third wicket has fallen with the score 11 on the board. We're into the fourth over and Sri Lanka's batting is in tatters. Remember, Sri Lanka won the toss and elected to bat first. In the first two T20s, the captains had won the toss, elected to field first because of the dew factor, because of the movement of the wicket that the bowlers would be able to get if they decided to bowl first. And over here, the captain, Dasun Shanaka of Sri Lanka, would be, I'm sure, regretting the decision that he has taken. At the end of over number 4, Sri Lanka is 11 for 3 and Mohammad Siraj has figures of 1 for 6 in 2 overs. Will he be continued by the captain or not? Because not only is the objective to stop the flow of runs, but also to pick up wickets. So Sri Lanka very vulnerable right now. We'll have to wait and see whether Siraj would be continued or not. It's Chandimal on strike. He's a new man in. Mohammad Siraj now continues into his third over. दिनेश चांदिमल जो कि बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, इस टीम में शायद सबसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं। लेकिन अगर हम पूरा स्कोर कार्ड अपने देखने वालों को बता दें तो उनमें जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना टेलीविज़न सेट खोला है, प्रथम निशांका जिन्होंने कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज 10 गेंदों का सामना करने के बाद वो 1 रन बनाकर अय्यर के हाथों कैच हुए, आवेश खान की गेंद पर वेंकटेश अय्यर के हाथों, और उसके बाद धनुष्का गुना तिलके जो अपना खाता भी नहीं खोल सके, मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हुए और
चरित असालंका थोड़ी देर पहले संजू सैमसन के हाथों कैच हुए आवेश खान की गेंद पर। तो इस तरह से जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय था वो एक तरह से उल्टे पासे जैसा साबित हुआ। दरअसल बल्लेबाजों ने विकेट खोए हैं, जो बॉलर्स हैं उनका तो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंद पर बोल्ड किया, लेकिन बाकी दोनों बैट्समैन अतिरिक्त दिलेरी दिखाते हुए आउट हुए हैं। और अब यहाँ पर लियानगे और दिनेश चांदीमल, इनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होगी कि कम से कम ये 10-12 ओवर तक विकेट पर टिके रहें, ज़्यादा रन भले ही ना बने। उसके बाद जो 8 ओवर बचेंगे फिर इनके हाथ में विकेट भी होंगे, फिर वहाँ पर ये हार्ड हिटिंग के लिए जा सकते हैं। Well, yes and no situation there as a single picked up by Chandimal playing with soft hands on the offside and lucky not to be run out there. So that's what happens when you lose three quick wickets with a score 11 on the board. With that single, it's 12 now. So the infield really making it count, attempting a shy at the stumps but missing. 12 for 3 into the fifth over. And this time an outside edge of the bat, the ball goes all the way to the third man fielder. It is Harshal Patel throwing it to the striker's end. It's 13 for 3. So Sri Lanka in a spot of bother now. That would be an understatement. There have been inroads made into the top order. And Rohit Sharma, he's part of that slip cage right now. He's in there watching the batsman and the bowler. It's 13 for 3. Still 2 deliveries to go in this fifth over. जी हाँ, और जिस तरह से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हर गेंद पर विकेट लेने की कोशिश है। इस बीच अगली गेंद जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, उसे पुल करने की कोशिश में थे लियानगे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। और इस तरह से इस टाइम शॉट्स हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लगातार दूसरे दिन ही मैच है, तो शायद प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिला। बहुत से क्रिकेट प्रेमियों में बड़ी उत्सुकता है ये बात जानने की, तो हम आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर है वो शायद इस तरह का है। फिर टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होनी है, तो ये देखते हुए शायद लगातार 2 दिन मैच करा दिए गए। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है। One more delivery to go and a bouncer there by Mohammad Siraj. Is at the end of the over. Has the umpire called it a wide or not, or a no ball? We'll have to wait and see. But right now, over number 5 is about to finish. Over number 6 will commence. Our next set of commentators, Ayush Sharma and Amit Arora, would be joining us in the commentary box to take you from over number 6 all the way to over number 10 and explain to you the situation right now, the state of the game in which Sri Lanka are 13 for the loss of 3 wickets or 14 for the loss of 3 wickets. So let's welcome a new batch of commentators, and our listeners would certainly enjoy what they take is on the game, ball by ball commentary. स्वागत है अमित अरोड़ा जी आपका और आपके साथी कमेंटेटर का भी। Thank you very much, Adesh and Arjun. Sri Lanka, 15 runs for the loss of 3 wickets, 6th over in progress. This is the last of the power play overs, and certainly not a start that Sri Lanka would have wanted after winning the toss and electing to bat first. Janit Lenage, one of the 2 changes that Sri Lanka made to their side, at the crease batting at 3, having faced 9 deliveries. And accompanying him now is Dinesh Chandimal, also 3 runs. Avesh Khan into his 3rd over, bowling this one in line with the wicket, and Lianage just defending that. From here, the next few overs are crucial. Sri Lanka would certainly not want to lose another wicket. I'm Amit Arora, and here in the commentary booth, I'm joined by Ayush Sharma, the Hindi commentator. Hello, Ayush. शुक्रिया अमित। मुकाबला चल रहा है तीसरा और अभी तक 6ठे ओवर में हमें 3 विकेट श्रीलंका के जा चुके हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी की दरकार थी श्रीलंका को, आज वो श्रीलंकाई बल्लेबाजों से दिखी नहीं है। आमतौर पे बात चल रही है कि लगातार 2 दिन में 2 मैचेस खिलाए गए हैं, बट वो सिचुएशन तो भारतीय टीम की भी है। भारतीय टीम भी दूसरे दिन गेंदबाजी करने के लिए उतरी है और 15 पे 3 आवेश खान इस ओवर की तीसरी गेंद डाउन द लेग साइड, उस गेंद को धकेला था। क्या ये गेंद पैड के लग के गई है या बल्ले का कोई संपर्क हुआ है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अंपायर के निर्णय का। करंट रन रेट बहरहाल 2.91 की और लेग बाई का इशारा अंपायर का आया, यानी कि कोई संपर्क नहीं 7 पाई गेंद बल्लेबाज के बल्ले से।
श्रीलंकाई टीम अभी तक 25 डॉट का सामना कर चुकी है। अमित, 25 डॉट बॉल T20 फॉर्मेट में आपकी टीम पहले ही 2 मुकाबलों में पीछे रह चुकी है, हार चुकी है वो मुकाबला। ये मुकाबला यदि आपको जीतना है तो अच्छे रन्स बनाने हैं, और ये तो अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। Well, credit goes to both the opening bowlers for India. Avesh Khan was absolutely spot on, bowling a wicket maiden in his first over, and here also trying to bounce Dinesh Chandimal as the ball goes back to the keeper's glove. He's been very impressive, Avesh Khan. He's done well in the franchise cricket, got his cap that was overdue to represent Indian colours, and both him and some of the other youngsters making the most of the opportunity, as in the third T20 between India and Sri Lanka, skipper Rohit has made 4 changes. So you've got 2 spinners, Ravi Bishnoi and Kuldeep Yadav, into the side, along with the 2 pacers in action right now, Avesh Khan and Mohammad Siraj. And it's interesting that Rohit chose to bring in 4 bowlers, while the people who are out of the playing 11 include a wicketkeeper batsman Ishan and 3 bowlers. ओवर की अगली गेंद, 5वीं गेंद खेल दिया उसे थर्ड मैन की दिशा में। कुलदीप वहां मौजूद है और फील्ड करके जब तक वापस विकेट कीपर के पास में पहुंचाएंगे, एक सिंगल दोनों ही बल्लेबाज ले लेंगे तो एक और रन का इजाफा होगा श्रीलंका के स्कोर कार्ड में। आप 2-2 की बात कर रहे थे ना, 2 स्पिनर्स 2 तेज गेंदबाज, तो यहाँ पे 2 खिलाड़ी स्लिप में भी लगा रखे हैं अमित, क्योंकि जब आप अपने गेंदबाज को ज्यादा मौका देते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो आपको बढ़ चढ़कर विकेट निकाल के दे, तो वहां पे ये एक अच्छी चीज हो जाती है हर किसी गेंदबाज के लिए। अगर आप रफ्तार की बात करेंगे तो तेज गति से रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद सिराज, आवेश खान, दोनों गेंदबाज। फास्टेस्ट बॉल दोनों की 140 से ऊपर की है, और एवरेज स्पीड की आप बात करेंगे तो 137 से 136। ओवर की अंतिम गेंद, आवेश खान राइट आर्म ओवर द विकेट, मिडिल स्टंप के वहां पर गुड लाइन डिलीवरी थी, हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ खेला और एक ही रन से काम चलाना पड़ेगा। तो ओवर हुआ है समाप्त, और श्रीलंका की टीम को अब दरकार है एक अच्छी पार्टनरशिप की, क्योंकि जब भी आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है तो वो जो आपका फ्लो है, जो बन रहा है, जो बनता, वो मुझे इस मैच में तो नजर नहीं आया श्रीलंका की साइड के लिए, लेकिन उसकी दरकार जरूर रहेगी। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि पावर प्ले ओवर सब समाप्त हो चुके हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन सब ओपन है, तो जो नंबर ऑफ डॉट डिलीवरीज है उनको कम किया जाए, सिंगल डबल्स लिए जाए, स्ट्राइक रोटेट की जाए, जिससे आपका स्कोर कार्ड भी बढ़ता रहे और कॉन्फिडेंस भी बढ़े आपके बल्लेबाजों का। Absolutely. This is the picturesque Himachal Pradesh cricket ground, and one can't really take the eyes off the beautiful, magical stadium. It's hosting India versus Sri Lanka, and yesterday also we had the second T20 encounter, which was a high-scoring one. Sri Lanka certainly doing better than what they offered in the first T20. India won the first T20 that was played in the Ikana Cricket Ground, Lucknow, by 62 runs, and yesterday India won by 7 wickets. Will Sri Lanka bounce back? They haven't done well in the 6 overs of power play. 18 for 3. In comes Harshal Patel. राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, और श्रेयस अय्यर वहां मौजूद, तो सिर्फ एक ही रन से काम चलाना पड़ेगा बल्लेबाज को। हर्षल पटेल इतने अच्छे गेंदबाज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है, 13 साल का इस खिलाड़ी का स्ट्रगल रहा है, और अब अगर आप इनका T20 करियर देखेंगे तो 8 मैचेस खेले, 10 विकेट चटके हैं। इकोनॉमी थोड़ा सा हाई है 8.72, लेकिन जब इनको गेंदबाजी कराई जाती है वो आमतौर पर डेथ ओवर्स होते हैं, जहां पर स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग बल्लेबाजी करने वाली साइड चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं, दबाव बनाया जाए गेंदबाज के ऊपर। 7वें ओवर की दूसरी गेंद, हर्षल पटेल एम्पायर को क्रॉस किया, इस बार हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, रफ्तार में परिवर्तन किया, लेकिन तेज तर्रार सिंगल दौड़ लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। ऐसा लग रहा था कि पॉइंट के जो खिलाड़ी है, और वो भी खिलाड़ी कौन, रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा जब खड़े हो, और पिछला जो उन्होंने वो विकेट उनको मिला था उसके बाद में जो पुष्पा वाला उन्होंने एक्ट किया था, वो तो ज्यादा ही वायरल चल रहा है अमित। But I think that the good fielding skills are rubbing off to other fielders as well. The catch that Venkatesh Iyer took, the skyer in Dharamshala Night Sky, was certainly also very good. Samson also had that beautiful catch. So fielding is improving in the third T20, which the skipper had mentioned was a little concern in the first T20s. इस बीच ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार वेंकटेश अय्यर के पास गेंद जाएगी, हल्के हाथों से धकेला था फाइन लेग की तरफ, वेंकटेश अय्यर मौजूद, सिंगल मिला है। इस चीज की दरकार है श्रीलंका इस साइड को कि लगातार स्ट्राइक रोटेट होती रहे। चांडीमल फिलहाल 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लियांगे भी 5 के स्कोर पे। लियांगे की जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम, 14 गेंदों का सामना किया है, चांडीमल ने 8 गेंदों का किया है सामना। फील्ड सेट की यदि आप बात करेंगे तो एक खिलाड़ी है जो स्क्वायर लेग पे लगा रखा है, एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन पे भी मौजूद है, थर्ड मैन है जो बहुत ज्यादा स्क्वायर नहीं रख रखा, हर्षल पटेल। ओवर की चौथी गेंद, बहुत तेज बाउंसर का प्रयास किया, लेकिन क्या ये अंपायर की बाजू खोलने पे मंजूर करेगी? बिल्कुल मजबूर भी किया है, अंपायर ने खोल दिया बाजू, वाइड
साइड का इशारा आया, हर्षल पटेल को ये गेंद एक बार फिर डालनी होगी और एक एक्स्ट्रा रन आपने दे दिया है श्रीलंका इस साइड को। साथ ही साथ अमित, वन बाउंस का इशारा कर दिया एम्पायर ने, यानी कि जो ओवर की सीमित बाउंस होती है वो भी आप डाल चुके हैं। कटर टाइप सी गेंद थी, ऑफ सीम क्रॉस सीम गेंद को पकड़ा और पटक कर तेज मारने की कोशिश की। जब भी आप ऑफ सीम डिलीवरीज करते हैं, क्रॉस सीम डिलीवरीज करते हैं, तो वो टप्पा खाने के बाद सीम मूवमेंट की मदद से नहीं आती, तो थोड़ा सा भापना और मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। एक बार ओवर की चौथी गेंद, एक स्लिप मौजूद है। इस बार हल्की गति से गेंद में थोड़ा सा परिवर्तन किया, धीमी रफ्तार की गेंद टप्पा खा के थोड़ी सी अंदर आई और बल्लेबाज भाप नहीं पाए। डॉट डिलीवरी रही, 117.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी वो गेंद। Well, this is Harshal Patel's first over here. He has given away 4 runs so far. And what would be worrying for him is giving that extra run in terms of wide. Hasn't really performed to potential in this series. Yesterday, in 4 overs that he bowled, he gave away 52 runs, picking up 1 wicket. So that's an economy rate of 13. Won't be happy with that. And even in the first T20, he bowled a couple of overs, gave away 10 runs, didn't pick up any wicket. One wonders if Harshal is trying too hard. In comes Harshal Patel, the 5th delivery of the over. This one was pitched slightly outside the off stump. Batsman wants to steal a quick single, and they do so. And that's very essential. That T20 is not just about 4s and 6s, but also quick single. Rohit unhappy conceding that single. बिल्कुल अमित, और अगर कहीं पे भी चूक हो जाती है फील्डर्स से, जो स्पेशली आज का फॉर्मेट चल रहा है, आपकी फील्डिंग भी ना 3 डायमेंशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग में कहीं पे भी अगर कोई भी खिलाड़ी सुस्ती दिखाता है ना, तो कप्तान को थोड़ी सी दुखी जरूर होते हैं। और पावर प्लेस की यदि आप एक बार नजर डालेंगे तो 23 पे 3, ये जो था इससे पहले सबसे वर्स्ट पावर प्ले श्रीलंका का इन 3 खेले गए मुकाबलों में। बात करते हैं अंतिम गेंद की, स्लोवर वन, कदमों में गेंद थी, उसको फ्लिक किया, कलयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ खेल दिया। वहां पे वेंकटेश अय्यर मौजूद है, तो थोड़े से स्क्वायरिश ऑफ द विकेट, और इसी के साथ एक और रन का इजाफा होगा श्रीलंका के स्कोर कार्ड में। So after 7 overs, Sri Lanka have scored 24 runs for the loss of 3 wickets. They've lost both their openers, Pathum Nissanka, who scored a nice half century yesterday. He was caught by Venkatesh Iyer off the bowling of Avesh Khan. He scored a solitary run and faced 10 deliveries. Danushka Gunatilaka was bowled by Siraj of the very first delivery he faced, didn't trouble the scorers. And Charita Salanka, who scored runs in the first T20, that half century, was caught brilliantly by the keeper today, Sanju Samson, off the bowling of Avesh, scoring 4 runs. Janit Lianage right now at the crease. He was in the side for the first T20. How do you see Dasun Chanaka, the captain of Sri Lanka, making those 2 changes? Lianage coming back into the playing 11, along with the leg spinner Wandase, and Kamil Mishara and Jayavik Rama not in the playing 11. अमित, यदि आप सनका की कप्तानी की बात करें तो मैं लंका प्रीमियर लीग में भी उनको फोकसफुली देखता रहता हूं। एक अच्छे कप्तान है और स्टेप इन करते हैं जब भी उनकी साइड को जरूरत होती है। जानते हैं कि नई साइड है और नए गेंदबाज को भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। कुलदीप यादव गेंदबाजी पे आए, एक स्लिप, रोहित शर्मा खुद स्लिप के तौर पे मौजूद है। पहली बॉल करी डॉट बॉल, 82 किलोमीटर की रफ्तार से की गई थी वो गेंद। और अब जब ट्रैक बदलेगा ना, जो आप पेस दे रहे थे लगातार बल्लेबाजों को, उसमें भी कटौती करने की कोशिश करेंगे कप्तान रोहित शर्मा, ताकि बल्लेबाज सेटल ना हो सके। एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद थी, उसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया। लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर जरूर है, वो आगे आकर गेंद को फील्ड करेंगे और वापस लौटाएंगे जब तक गेंदबाज के पास आवेश खान का होगा ये काम। 1 रन चुरा लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। आप कप्तानी की बात कर रहे थे सनका की, तो ये वो खिलाड़ी है जो हमेशा अपने पोटेंशियल से ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। कभी भी आप इनको अपॉर्चुनिटी बतौर कप्तान दीजिए, मुश्किल सिचुएशंस में जब भी इनकी साइड रहती है, ये हमेशा हाथ ऊपर कर कर और अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। जो 2 चेंजेस जो इन्होंने बनाए हैं, वो अपने उन प्लेयर्स को वापस मौका देने के लिए कि आपको एक स्टेबल साइड चाहिए। बहुत सारे फेर बदल, अमित आपको याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप श्रीलंका की साइड खेली थी, 2017 से लेकर 2018 के बीच में 50 के लगभग चेंजेस इस साइड ने किए थे। तो ऐसे चेंजेस आमतौर पे चलते नहीं, और इसी बीच में चल रही है तेज तेज गेंदबाजी। 2 और डॉट बॉल कर चुके हैं कुलदीप यादव, 7.4 गेंदें करी है अभी तक, महज 1 रन खर्च किया है। Well, spectators certainly are cheering from the Himachal Pradesh Cricket Stadium. They are wearing woolens, clearly an indication of the cold conditions. This ball by Kuldeep Yadav, how did it miss the stumps? He is asking probably for another slip. Will captain yield to the request by the bowler? And sharp keeping there by Sanju Samson. Samson keeping wickets today because Ishan is not there in the playing 11. He was hit by a rising delivery by Lahiru Kumar yesterday, and because of the concussion rules, maybe skipper Roy doesn't want to take any chance. In comes
Kuldeep Yadav, this one again pitched absolutely in line, though this time the ball has been hit by the batsman towards the mid-off area, and before the fielder could cut that off, one more run gets to the Sri Lankan total. This is an important phase where the batsmen need to consolidate the innings. और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि अर्ली 3 विकेट्स आप लोग गवा चुके हैं, और अब अगर उसको कंपनसेट करना है तो एक पारी सजानी होगी, आपको सेटल करनी होगी, एक पार्टनरशिप बनानी होगी, और उसके बाद एक बड़े टारगेट को भी नजर करना होगा। क्योंकि आपने देखा था अमित, पिछले मुकाबले में भारतीय टीम जब शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अर्ली जो विकेट्स फ्लो है वो हो चुके हैं, इंडियन टीम को किस तरह से मैच को संभालेगी, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर जिसकी आप बात करेंगे, युवा खिलाड़ी, वो वहां आए और परफॉर्म करके दिया, तो टारगेट इजीली चेज भी कर दिया भारतीय टीम ने। तो आंखें जरूर रहेगी, निगाहें जरूर रहेगी श्रीलंका इस साइड की कि एक अच्छा टोटल सेट करके दे, जिससे उन्हें ही मदद हो, उनके गेंदबाजों को मदद हो, और कुछ हालत बहुत अच्छी चल नहीं रही है श्रीलंका की गेंदबाजों की भी। Well, Sri Lanka is on a tour to India that comprises T20 and Test matches, no ODIs, so that's quite a surprising thing in itself. And this is the third T20 as we see another bowling change by captain Ravi Bishnoi included in the playing 11. Bowling his first over, this one slightly on the leg side, and all the Asian players are very strong to score off their foot, and one-run results. 27 for 3, 8.1 overs. Ravi Bishnoi has played 4 matches in his T20 international career so far, picking up 3 wickets at the economy of 6.33, the best being 2 wickets, giving away 17 runs. This one slightly outside the off, has been hit towards the deep covers, and before Mohammad Siraj could dive and field, couple of runs added to Janit Lianage's score, who now moves on to 9 runs, and Sri Lanka on to 29 for 3. लियानागे एक और रन की मांग कर रहे थे, लेकिन चांडीमल ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं। युवा खिलाड़ी हैं, एक जज्बा होता है आपका कि जितने रन आप कन्वर्ट कर सके आपकी टीम के लिए उतना बेहतर। 2 रन पिछली गेंद से आए, ओवर की तीसरी गेंद, रवि बिश्नोई फ्लाइट कराने का प्रयास और विकेट, भारतीय टीम को मिला एक और विकेट, और रवि बिश्नोई के खाते में जाएगा पहला विकेट इस मुकाबले का, करियर का 4था विकेट। क्या शानदार गेंदबाजी करी, बल्लेबाज सोच रहे थे कि टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन जिस तरह से गेंद ने रुख बदला, अंदर की तरफ आई और ऑफ और मिडिल स्टंप को बाहर कर दिया। एक और झटका श्रीलंकाई साइड को, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स गेटिंग बैड टू वर्स्ट फॉर द श्रीलंकन साइड, But it is getting good, better, best for the Indian bowling, and given the fact that skipper Rohit has beefed up bowling today, bringing in 4 bowlers in the playing 11, this is a kind of start that will certainly bring a smile onto the Indian skipper and the Indian cricket fans. And what a coincidence that today Mohammad Siraj in his first over picked up a wicket. So did Davish in his first over. And Ravi Bishnoi completing the hat-trick, picking up his first wicket in the first over. Completely foxed there. Janit Lianage could not read the spin there, and the ball hitting the stumps. अमित, मैं उम्मीद करता हूं कि हर्षल पटेल ये ना सुन रहे हो, वरना उन्हें थोड़ा बुरा लग जाएगा। Well, Harshal Patel certainly is a very class bowler, and one expects that now that other bowlers have done well, then each of them have healthy competition and they can raise the bar. यही होता है, जब कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है तो हर खिलाड़ी को परफॉर्म करना होता है अपनी साइड के लिए। और रवि बिश्नोई एक युवा खिलाड़ी, जोधपुर के पास एक गांव है लूणी, वहां से बिलोंग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अच्छा एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी ने दिखाया, अच्छे विकेट्स चटके और क्रूशियल सिचुएशंस पे परफॉर्म करके दिखाया। बात कर रहे थे दूषण शनका की, कप्तान श्रीलंका के, वो आ चुके हैं क्रीज पे, दारोमदार बहुत रहेगा और वो क्रीज पे हैं। साथ ही साथ स्लिप में रोहित शर्मा भारतीय कप्तान, वो भी मौजूद। ओवर की चौथी गेंद, अपील जरूर की गई है लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन यहाँ डाउन द लेग साइड जरूर जा रही होगी गेंद। एक और डॉट गेंद, शनका की जो स्टार्ट है वो उतनी अच्छी हुई नहीं है। कोशिश कर रहे थे कि गेंद को मिडिल करे अपने बल्ले से, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इनके करियर की बात करें तो 65 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, जिसमें 873 रन इनके बल्ले से आए। 110 का इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट है। 90 ओवर की 5वीं गेंद, रवि बिश्नोई टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई, एक और गूगली गेंद, उसे खेल दिया डाउन द लेग साइड और स्क्वायर लेग की तरफ से फील्डर दौड़ लगाकर आएंगे और वापस गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में देंगे। तब तक 2 रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 2 और रन का इजाफा होता हुआ श्रीलंका टीम के स्कोर कार्ड में। लेकिन अमित, अगर आप टोटल को देखेंगे तो 31 है, इतना ज्यादा इजाफा हो नहीं रहा है। जिस स्पीड से ग्रो होनी चाहिए T20 फॉर्मेट में आपके स्कोर कार्ड की, वो नजर नहीं आ रही श्रीलंका में।
Well, the average first inning score here at this ground is 168. So Sri Lanka at 31 for 4, nowhere near. This one was a loose delivery by Ravi Bishnoi, very much outside the leg. And the umpire had no hesitation in giving that wide. So one extra run results in the Sri Lankan total. After the fall of the fourth wicket, Dasun Shanaka, the captain of Sri Lanka, has come to the crease. And yesterday he did hit ball pretty hard, scoring unbeaten 47 of 19 runs. But right now it's the time for him to consolidate alongside Dinesh Chandimal, who hits this one towards the mid-off to steal another single. So 47 unbeaten runs of 19 deliveries yesterday from Sri Lankan skipper's bat. That was punctuated by 2 boundaries and 5 huge sixes. Do you think Shanaka, as an all-rounder, has got the capability to perhaps go for some sort of total here? Maybe not 168, but some sort of respectable total. अमित, प्रयास तो करना होगा। कप्तान है आप अपनी साइड के, तजुर्बा सबसे ज्यादा आपको अपनी टीम में है, प्लस अगर आपको सपोर्ट मिलता है ओपन एंड से कम कोई और खिलाड़ी अपना विकेट ना गंवाए तो कोशिश करेंगे कि एक लंबी पारी खेलें। अगर ये खिलाड़ी लंबी पारी खेल जाता है तो इनमें वो क्षमता है कि बड़े हिट्स भी, लूजनर बॉल हमेशा हर गेंदबाज कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे करके जाता है और वो आपको कन्वर्ट करनी होगी। यहां स्वीप खेल दिए कुलदीप को, विकेट कीपर के पास में से गेंद जा रही है, लॉन्ग लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं, रोहित शर्मा पीछे दौड़ लगाते हुए क्या गेंद को रोक लेंगे, बिल्कुल रोक लिया और मोहम्मद सिराज ने अपना साथ निभाया, वापस विकेट कीपर के पास थ्रो कर दिया। लेकिन डबल या ट्रिपल ये आपको देखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 3 रन तो कम से कम बल्लेबाजों ने दौड़ लिए होंगे। बिल्कुल 3 रन लिए हैं, चांडिमल स्ट्राइक पर थे और अब शनका स्ट्राइक पर आ जाएंगे। मौका जरूर था वहां पर विकेट कीपर संजू सैमसन के पास, लेकिन थोड़ी चतुराई रखनी पड़ती है। रेगुलर जब आप ज्यादा लंबे समय तक विकेट कीपिंग करते नहीं अपने साइड के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रोहित शर्मा बाउंड्री के एकदम पास पहुंच गए थे और फिर गेंद को फील्ड करके मोहम्मद सिराज के हाथ में दे दिया। थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर एक बार चेक जरूर कर रहे हैं कि क्या उनके पांव का कोई संपर्क हुआ है बाउंड्री रोप से जब गेंद उनके हाथ में थी, लेकिन क्लियर विजन जो है, जो विजुअल्स है वो यही नजर आ रहे हैं कि एकदम सेफली रोहित शर्मा ने गेंद डिलीवर कर दी थी मोहम्मद सिराज के हाथ में। ओवर की दूसरी गेंद टपक आने के बाद अंदर आई, लेग कटर, ऑफ कटर, हर तरह की गेंद का इस्तेमाल यहां पर करना होगा कुलदीप को, क्योंकि आपको एक मौका है, एडवांटेज है, आपका ऑलरेडी दबाव है श्रीलंका साइड के ऊपर। यहां आप 1-2 विकेट और चटक देते हैं तो पूरा ही बैकफुट पे धकेल देंगे आप श्रीलंका साइड को। ओवर की तीसरी गेंद, गूगली गेंद, और क्या वहां पर स्टंप आउट करने का प्रयास किया है विकेट कीपर संजू सैमसन ने, अपील भी की है और कॉन्फिडेंस तो पूरा हाई है। ऐसा लगता है भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ियों को कि हाँ वहां पर एक मौका बना है और शनका के चेहरे पे भी वो कॉन्फिडेंस का लेके देखने को मिल रहा है। अमित, Well, if one could read gesture, certainly the spirit is high as far as the Indian team is concerned. They are all in a huddle, waiting for the umpire's review. And Dasun Shanaka, perhaps apprehensive, which way is it going to go? But certainly a very good ball by Kuldeep Yadav. The first ball that he bowled was where he was a bit wayward, gave away 3 runs. Good relay effort between Captain Rohit and Siraj in the deep. But after that, he's come back with 2 good balls. The second ball was a dot ball, and this one under review. The question is, what did the ball do? And has it put the Sri Lankan captain in a spot of bother? The Ultra Edge will, in moments from now, tell whether the ball did kiss the edge of the bat of Shanaka or not. And if it did, that's the end of the Sri Lankan captain innings. And if it didn't, then maybe sometimes when you get a chance, you do convert that opportunity into a big score. By the look of it, it appears he might have just survived. देखिए अभी अल्ट्रा एज का तो जो रिव्यू है वो यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि बल्ले का कोई भी किनारा लगा नहीं है, लेकिन स्टंप आउट की जो अपील है वो भी अब इस एंगल से देखी जाएगी कि क्या उनका पांव हवा में था। मुझे जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि सेफली इन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम हो जाएगा भारतीय टीम का और सेफ रहेंगे श्रीलंकाई कप्तान संजू सैमसन। प्रयास तो बहुत अच्छा किया था लेकिन समय रहते अपने पांव को क्रीज पे टिका लिया श्रीलंकाई कप्तान ने। Sanju Samson already has a good catch to his credit in this innings, and this time attempting a stumping. Pretty nimble-footed is Sanju Samson. And now we have the decision on the board, which is not out. So Sri Lanka 37 for the loss of 4 wickets and a reprieve for the captain Shanaka as Kuldeep comes into bowl the 4th delivery of his second over. This one hit towards the deep mid-wicket region. A single
gets added to the Sri Lankan total. The current run rate of 3.93 won't bother Rohit Sharma much, although captain wasn't pretty happy losing the review there. रोहित शर्मा का हमेशा यही प्रयास रहता है कि जितना ज्यादा दबाव आप बना ले ओपोनेंट पे वो ज्यादा बेहतर होता है। फिलहाल यहाँ पर गेंद को खेल दिया है कवर्स की दिशा में, शॉर्ट कवर पे वहां एक खिलाड़ी मौजूद था और एक तेज तर्रार सिंगल कंप्लीट किया है। अमित, यही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बतौर बल्लेबाज कि जब जब आपको मौके मिले सिंगल्स कन्वर्ट करने के लिए, आप डॉट डिलीवरी की उम्मीद कर रहे हैं वहां पर फील्डिंग साइड की, हमारा फील्डर बहुत ज्यादा पास है, इतनी ज्यादा रिस्क श्रीलंकन साइड लेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट डाउन है। उसके बाद भी अगर आप सिंगल्स ले सकते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बताता है कि किस हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10वें ओवर के अंतिम गेंद, फुल टॉस बनाया, स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ पर, मोहम्मद सिराज से मिस्टेक हुई और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। एक और चौका श्रीलंकाई खाते में ऐड होगा। चांडीमल के बल्ले से निकला है, 13 रन पर पहुंच चुके हैं अब चांडीमल। 18 गेंदों का सामना किया है। इस कमजोर फील्डिंग की तो बहुत निंदा करेंगे कप्तान रोहित शर्मा। दिख रहा था गेंद साफ आपके हाथ में आ रही है, उसके बाद में आपने नीचे झुकने में वहां पर थोड़ी सी डिले किया और उसके बाद भी गेंद आपके हाथों से चटक कर सीधे बाउंड्री रोप्स के पार चली गई। अमित, So after 10 overs, Sri Lanka is at 43 for the loss of 4 wickets. This is the halfway stage and the drinks will be called in. And this is the third T20 international match between India and Sri Lanka. Yesterday, the second T20 went in India's favour, India winning by 7 wickets. But the pitch that is being used today is a different one. It's the right of the square. So it's 63 metres offside field shorter. Onside, it's 69 metres. The straight length remains the same, 76 metres. Will Sri Lanka make a comeback from here and put up a sizable total? Or will Indian bowlers continue to hold a tight leash on the Sri Lankan batsmen? Remains to be seen. And to get you the commentary in the booth, we now have Arjun Chaudhary. And joining him in Hindi will be Adesh Gupta. Well, thank you so much, Amit, for that. It's 43 for 4 at the end of 10 overs, and the last delivery of the 10th over was bowled by Kuldeep Yadav, but a misfield by Mohammad Siraj in that long leg area meant that from 39 they moved on to 43. 4 wickets have been lost, and as my co-commentator Ayush Sharma was mentioning about the finger spinners, both Kuldeep Yadav and Ravi Bishnoi, both exponents of the googly. And it must be borne in mind that apart from the opening fast bowling pair, it was Ravi Bishnoi who picked up the wicket with a googly, deceiving the batsman quite comprehensively. Lianage for 9 of 19 deliveries. So it's all happening here at the HPCS Stadium in Dharamshala, Himachal Pradesh, where the third T20 is being played. India's already taken a comprehensive lead of 2-0. They have won the T20 series. And I'm joined by Ayush once again in the commentary box, who will give us his views in Hindi. Ayush, for Sri Lanka to make a comeback at this stage is being seen difficult because they opted to bat first after winning the toss. That's quite a strange decision, wouldn't you say? अर्जुन, जो डिसीजन है श्रीलंका की साइड का वो पहले T20 मैच में भी यही था। उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया था और गेंदबाजी बहुत बुरी की थी। आज उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी बहुत बुरी की है। और आप कमबैक्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए भी था कि जैसे मैं कमेंट्री बूथ से बाहर गया और वापस अंदर आया, लेकिन उसी तरह का कुछ कारनामा श्रीलंकाई बल्लेबाजों को भी करना होगा। बहरहाल मजाक की बात अलग है, लेकिन यस, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द फैक्ट इज कि यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। और रवि बिश्नोई 11वें ओवर की पहली गेंद और उसे धकेल दिया है चांडीमल ने ऑफ साइड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, 4 रन मिलेंगे। चौका और जड़ दिया चांडीमल ने एक और। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पे कुलदीप यादव थे और इस ओवर की पहली गेंद पे आप देखेंगे तो यहां आपको ये युवा खिलाड़ी रवि बिश्नोई नजर आएगा। फ्लाइट कराने का प्रयास किया था, बहुत प्यारा कवर ड्राइव मारा, कोई खिलाड़ी उस दिशा में मौजूद नहीं था और इस खूबसूरती के साथ जो चौका गया है उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम। Attempted googly by the Ravi Bishnoi there, but he overpitched it, which allowed Chandimal to get on the front foot and drive it towards deep extra cover for a boundary. 47 for 4. We're into the 11th over, and it is Ravi Bishnoi, another googly, but this time picked up by the batsman. And it's very important really for a leg spinner who's using finger spin here to only use a googly sparingly. If you're using it in every delivery, then the batsman can read you. And this is a mistake that Ravi Bishnoi is making. Even though he can deceive the batsman, we saw him pick up the wicket of Lianage, but easily picked up by Chandimal here, who's playing him off the front foot like a off spinner. अर्जुन, यही होती है ना तजुर्बे की कमी।
एक युवा गेंदबाज है और आपके सामने चांडीमल जिन्होंने 140 से ज्यादा T20 मैचेस खेले हैं। ओवर की तीसरी गेंद इस बार फिर ड्राइव कर दिया और ऑफ साइड में फील्डर है रविंद्र जडेजा। सर जडेजा तो आपको मौके नहीं देते कि आप सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 48 रन श्रीलंका का स्कोर है, 4 विकेट पतित हो चुके हैं। रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे हैं, 11वें ओवर की चौथी गेंद डाली जानी बाकी है। ये जिसकी अभी अर्जुन बात कर रहे थे कि बार बार आप गूगली करने का प्रयास करते हैं, कभी आप चाहते हैं कि आप फ्लिपर्स मार के बल्लेबाज को चौकाए, तो वो जो कंफ्यूजन है वो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ सेटल करना है। यहाँ एक और एक्सपीरियंस की कमी, डाउन द लेग साइड गेंद कर दी, एम्पायर को खोलनी पड़ेगी अपनी बाजुएं और एक और अतिरिक्त रन श्रीलंका के टोटल में ऐड हो जाएगा। 49 पे आ गए, एक और रन कम है अपने अर्धशतक से श्रीलंका की साइड। You just mentioned the flipper. He bowled it short, but it went down the leg side. As a result, it's another extra. Sri Lanka is 49 for 4, and this time giving it more room, playing it on the offside and picking up runs towards long on. 50 has come up, 50 for 4 into the 11th over. Chandimal batting on 18 and Shanaka, the captain, at the non-strikers end. चांडीमल बल्लेबाजी करने के लिए आए जब से तो थोड़े से शांत नजर आ रहे थे, लेकिन अब जैसे स्पिनर्स आए आड़े आ तो लेने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अब मैं इनकी गेंदबाजी को और ज्यादा धीमी गति से खेल नहीं सकता। पहले 21 गेंदों का सामना कर दिया, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट रखा उस गेंद को, ऑन साइड में खेल दिया। मिड विकेट से फील्डर आएंगे, दो फील्डर्स में दौड़ थी कि कौन जाकर उस गेंद को फील्ड करेगा, लेकिन अच्छा यह है भारतीय टीम के लिए कि मैच एक ही रन गया है। इस ओवर में अभी तक आप देखेंगे 4 और 4 8 रन आ चुके हैं, एक बाउंड्री लग चुकी है, एक वाइड और 3 सिंगल्स चुरा लिए हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने। रवि बिश्नोई ओवर की अंतिम गेंद, 11वां ओवर गतिमान, एक बार फिर तेज तर्रार शॉट मारने का प्रयास किया था, घुटनों पे जरूर गए थे बल्लेबाज लेकिन संपर्क उतना अच्छा रहा नहीं है। तो भाग्यशाली रहे रवि बिश्नोई कि एक रन से ही उनका पाला छूटा। और कमेंट्री बॉक्स में यहां पे परिवर्तन होगा, आदेश कुमार गुप्त आएंगे। एक जूनियर का ओवर समाप्त हुआ, सीनियर गेंदबाज आया, उसी तरह कमेंट्री बॉक्स में भी सेम चेंज। स्वागत है आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारतीय गेंदबाजों का जलवा धर्मशाला में और श्रीलंका के कप्तान का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित होता हुआ और भारतीय गेंदबाजों ने विकेट का जिस तरह से उपयोग किया, सदी हुई गेंदबाजी की, बेहतरीन कैच पकड़े और इसकी वजह से श्रीलंकाई पारी काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रही है। और जो उम्मीद थी श्रीलंका से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद कि उनके बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे, ऐसा नहीं हुआ। 11 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Kuldeep Yadav, another finger spinner from this spin bracket of the Indian bowling attack, and this time playing it across the line towards the vacant long leg area, cut off by the fielder there. It is Mohammad Siraj throwing it to the striker's end, and runs picked up by the batsman. 53 for 4. We into the 12th over. Chandimal, who is himself a wicket keeper for Sri Lanka, batting on 19 of 22 deliveries, and the captain Shanaka, he's at the non-strikers and batting on 10 of 9 deliveries. Kuldeep Yadav is a left-arm leg spinner. He's a finger spinner into his third over. His figures of none for 12. Sri Lanka 53 for 4. Bowling from over the wicket and easily read by the batsman there. Picking up runs in that onside in the short mid-on area. Short mid-wicket, in fact. 54 for 4. We're into the 12th over. And just looking at the variations, we were talking earlier about leg breaks and googlies. Somehow the googlies have not been used sparingly. It's 42% of the total number of deliveries that he has bowled are googlies. And the element of surprise is missing. We saw Ravi Bishnoi pick up the wicket of Lianage earlier with a surprise googly, which was very well bowled and pitched. But both the spinners are overusing the googlies too much. 54 for 4. दरअसल अर्जुन जी, जो गुगली है वो हथियार है लेग स्पिनर का। इस बीच अगली गेंद और इसको रिवर्स हिट किया और इससे पहले की गेंद हालांकि जो इस तरह से रिवर्स हिट किया तो फिर बैट्समैन के लिए तो लेग साइड की तरह ही हो गई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ये गेंद गई और 1 रन ज़रूर मिला। 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर चांदीमल खेल रहे 20 रन बनाकर। एक तरह से अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। शनाका 11 रन बनाकर खेल रहे हैं, उन्हें भी अच्छा स्टार्ट मिला। दरअसल जो कुलदीप यादव हैं ये चाइना मैन स्पिनर हैं, तो इस वजह से जो एक लेफ्ट हैंडर बॉलर होता है उसकी स्वाभाविक बॉल होती है कि जो
लेग स्पिनर हो, लेकिन इनकी बॉल ऑफ स्पिन की तरह आती है। और जो गुगली होती है वो राइट आर्म लेग स्पिनर का हथियार होता है, वेपन। तो यहाँ पर जो गेंद ऑफ स्पिन की तरह आती है वो फिर कुलदीप यादव के लिए गुगली की तरह हो जाती है। तो यानी वो लेग स्पिन होती है। बेसिकली ये खब्बू ऑफ स्पिनर है, तो वो चाइना मैन बॉलर हैं। It also depends upon whether you're bowling to a right-handed or a left-handed batsman, and whether you're a Chinaman or not. Basically, you are a leg spinner. That is what we are seeing here. This time cut off by the fielder, but the third umpire is actually seeing if the fielder was able to field the ball with his legs not touching the boundary rope. So it did touch, and therefore a boundary signal by the on-field umpire there. The score is 59 for 4. It will see some revision now into the 12th over. The fifth delivery with one slip in place, and this time deceiving the batsman in flight only. Rohit Sharma at first slip. He can observe the spinners at this stage, and it was a slower delivery. And that's what's required here with Rohit Sharma at first slip. And we can see this delivery being given more air and deceiving the batsman in the air. We also saw the rear leg of the batsman being disbalanced, and that is what the wicketkeeper and the first slip are looking for. अपने स्पिन से काफ़ी हद तक छकाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार बैट्समैन की रीच में थी बॉल, ड्राइव किया, और इससे पहले कि मिड ऑफ पर फील्ड किया जाता गेंद को, बल्कि हम कहेंगे कि लॉग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन और बैट्समैन के खाते में जाता हुआ। काफ़ी दबाव श्रीलंका टीम पर, क्योंकि 4 विकेट उनके गिर चुके हैं। लेकिन ये जो पार्टनरशिप है कप्तान शनाका और चांदीमल के बीच, ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन आधे से ज़्यादा ओवर हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, अगर ये काफ़ी तेज़ तर्रार बल्लेबाजी करेंगे तब जाकर 130, 135 या 140 रन तक ये पहुँच सकेंगे। जहाँ तक 160, 170, 80 रन का प्रश्न है, तो उससे ये काफ़ी दूर रहेंगे। दरअसल जो शुरुआती बैट्समैन थे, चाहे वो पतुम थे या फिर उनके जोड़ीदार गुणतिलके, उन्होंने जिस लापरवाही से बल्लेबाजी की, उसका खामियाजा श्रीलंकन टीम भुगत रही है। और अगर 1-2 विकेट जल्दी और गिर जाते हैं तो फिर श्रीलंका के सामने ये दिक्कत होगी कि वो पूरे 20 ओवर किस तरह से खेले, क्योंकि इनकी टेल काफ़ी लंबी है। फ़िलहाल 12वां ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 60 रन श्रीलंका का स्कोर। और हर्षल पटेल की ये गेंद, जहां पर काफ़ी सफाई से फील्डिंग करने की कोशिश की थी वेंकटेश अय्यर ने, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद गेंद उनके शरीर पर लगी है और यहाँ पर थोड़ा मुश्किल में नज़र आते हुए वो। लेकिन ये 5वां विकेट गिरा। दरअसल कैच जिस तरह से पकड़ा था उन्होंने, तो थोड़ा सा चोट उन्हें ज़रूर लगी, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ जिस तरह से उन्होंने कैच को पकड़ा, तो ये 1 विकेट और गिरता हुआ। Well, we can see Venkatesh Iyer at cover point, really express himself after taking a difficult catch. And please remember that it's coming at a speed which the average person cannot comprehend. And this time being cut on the offside by Chandimal, who was batting on 25. We'll have to wait and see if he's a batsman who is actually being dismissed. But the cover point fielder is always your best fielder. But we saw Venkatesh had dropped a catch earlier as well in the earlier T20s. It was a sitter and Rohit Sharma was not very happy with it. But he has once again reimposed the faith in the captain about his ability by taking a stupendous catch here. So possibly the 5th wicket has fallen. We will confirm it with more visuals from Dharamshala, where this third T20 match is being played between India and Sri Lanka. And clearly the decision of Sri Lanka to bat first after winning the toss is something that they would regret. It is a captain, Dhasun Shanaka, who is also there at the non-strikers end. He had played a captain's knock in the second T20 by scoring 47 not out of 19 deliveries, which is why Sri Lanka had scored 183 for 5 in the second T20, which India was able to overhaul within 18 overs. But in this time round also, with 4 or 5 wickets down, he'll have to play a captain's knock again. यहाँ पर काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है, और जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से श्रीलंकन बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। इस बीच अगली गेंद और इसे कवर्स में निकाल दिया था 2 फील्डर के बीच से। फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और दरअसल जो हर्षल पटेल को पिछला विकेट मिला, तो वहाँ पर
शॉर्ट पिच गेंद थी और बैट्समैन ने कवर्स में ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में थी। और उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने बहुत तेज़ कैच को जिस तरह से पकड़ा, तो तारीफ़ करनी होगी। और जैसे कि आपने कहा कि पिछली गलतियों को उन्होंने सुधारा है, जैसे कि कैच छोड़ा था उन्होंने पहले मैच में, लेकिन फ़िलहाल अच्छी फील्डिंग भी करते हुए इस बीच हर्षल पटेल की अगली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन बैट्समैन को बहुत ज़्यादा रूम नहीं मिला शॉट लगाने के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं करुणा रत्ने, जो 2 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हर्षल पटेल का ये दूसरा ओवर है और अभी तक वो 7 रन दे चुके हैं, लेकिन 1 विकेट उनके खाते में जा चुकी है। 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर अर्जुन काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है श्रीलंकन टीम, और यहाँ से ऐसा लगता है कि वो अपने बॉलर को कुशन नहीं दे पाएंगे बड़े स्कोर का। Really, it was a bad ball by Harshal Patel, but great fielding by Venkatesh Iyer. This time, the batsman running the ball down towards that vacant third man area, picking up a single. So Shanaka is on strike, batting on 11 of 10 deliveries, and Karuna Ratne is batting on 3 of 3 deliveries. So Harshal Patel had picked up a wicket in the first delivery itself, when Chandimal had cut him fiercely, and this was picked up by Venkatesh Iyer at cover point. I'm sure Rohit Sharma would be quite happy with that display of fielding. And it was not caught clearly by him because of the speed at which it was like a bullet that Venkatesh Iyer caught it, and possibly an injury as well. This time a short delivery, and it was pulled towards the square leg fieldsman for another single. So it's 64 for 5. It is Karuna Ratne on strike, batting on 3. At the non-strikers end is Dasun Shanaka, the captain of the Sri Lankan side, who is batting on 12 of 11 deliveries. And Harshal Patel, who picked up a wicket in the first delivery, has so far given 4 runs in this over with 1 dot ball. He has figures of 1 for 9 into his second over. The 13th over is about to finish. The last delivery of the 13th over is being bowled. Another short delivery, this time ducking under it. And I'm sure this is not very advisable, Adesh. If you just pitch it up and invite a drive at this stage of the game, then you can possibly pick up more wickets also, because the field restrictions to some extent have been lifted. It is 64 for 5 at the end of 13 overs. We'll have to wait and see if the umpire has ruled a no ball or not. हाँ, ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अगर बॉलिंग एनालिसिस की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज ने अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी में 9 रन दिए, 1 विकेट लिया है। आवेश खान ने 3 ओवर में 1 ओवर बैटिंग रखते हुए 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। और हर्षल पटेल ने 2 ओवर की गेंदबाजी में केवल 9 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। कुलदीप यादव ने 3 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन दिए हैं, पहले विकेट का उन्हें इंतज़ार। और रवि बिश्नोई ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन देकर 1 विकेट लिया है। यहाँ ये देखना बहुत अच्छा लग रहा है कि चाहे वो रवि बिश्नोई हो, हर्षल पटेल हो, आवेश खान हो, सबको लगातार मौके दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर कुलदीप यादव इस समय नए ओवर की शुरुआत करते हुए, और उनकी गेंद जो कि काफ़ी स्लो डिलीवरी थी, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया, और इससे पहले कि गेंद फील्ड होती रविंद्र जडेजा थे वहाँ पर। और जब वो फील्डिंग करते हैं तो फिर बल्लेबाजों की हिम्मत नहीं होती कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि बेहतरीन थ्रो भी करते हैं। और इसी तरह से श्रीलंका को सिंगल्स और डबल्स के सारे स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। अगली गेंद जिसमें थोड़ा सा फ्लाइट था, बैट्समैन ड्राइव तो करना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन फिर भी इतना समय ज़रूर था कि इससे पहले कि फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन खाते में जाता। तो यहाँ पर आज के इस मुकाबले में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जिस तरह से लॉफ्टेड शॉट्स खेलने की कोशिश की, वो बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं पहुंचा सके, और इसका नतीजा ये निकला कि भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी फील्डिंग करते हुए उनके कैचेस को पकड़ा। और पिछले 2 मुकाबलों में जिन बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन वो अच्छी शुरुआत के बावजूद अपनी पारी को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ शनाका ज़रूर है जो 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि करुणा रत्ने 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच अगली गेंद, और इसे फाइन लेग की और टर्न किया। फील्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँची थी। इससे पहले फील्डर ज़रूर दौड़ते हुए आए। इस बीच लेग बाई का इशारा, गेंद काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर पैड पर लगने के बाद फाइन लेग की तरफ गई थी, और मोहम्मद सिराज गेंद के पीछे पहुँचे थे। तो लेग बाई का इशारा
अंपायर के द्वारा, लेकिन जिस तरह से बैट्समैन शॉट के लिए गए थे, एक बार ऐसा लगा कि शायद गेंद उनके बैट से लगी है, लेकिन फिलहाल 4 अतिरिक्त रन श्रीलंका के खाते में जुड़ते हुए 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Yes, it did appear that it kissed the glove, but 4 runs adding to the total of Sri Lanka, 71 for 5 into the 14th over. And Kuldeep Yadav is getting bounce off this wicket, finger spinner, bowling left arm, leg spin as well. And he's able to hit the seam, which is why we're seeing the bounce there. It was almost a leg glance by the batsman. This time playing it on the back foot with one slip in place behind, picking up a single in front of the wicket on the offside towards the long off fielder, where Avesh Khan, the bowler, who's really impressed everyone in the opening spell. He's picked up 2 wickets so far. Sri Lanka 72 for 5. Still the one delivery to go into this 14th over. Karuna Ratne batting on 4 of 7 deliveries at the strikers, and Shanaka, the captain, batting on 15 at the non-strikers end. This time a sweep and beating that leg slip in place. Does he beat the long on fielder? No. Mohammad Siraj is able to cut it off and throw it to the strikers. And so a couple of runs adding to Sri Lanka's score at the end of 14 overs. The score is 74 for the loss of 5 wickets there. So the sweep is quite an effective weapon against the left-arm spinner. That's what we are seeing with both Shanaka and the batsman at the other end. जी हाँ, बिल्कुल। और हमें याद आते हैं सचिन तेंदुलकर, जब भारत में श्रीलंकाई टीम आई तो सचिन तेंदुलकर ने नेट्स पर लोकल लेग स्पिनर्स को बुलाया और स्वीप शॉट्स खेलने की बहुत प्रैक्टिस की, और यही वजह थी कि मुरलीधरन को उन्होंने चलने नहीं दिया बिल्कुल। Well, Adesh, I'm sure you remember Graham Gooch against Maninder Singh in the 87 World Cup semi-final. ग्राहम गूच और जो उनके कप्तान थे, तो उन्होंने बहुत माइक गेटिंग, ग्राहम गूच और माइक गेटिंग, उन्होंने बहुत लंबी पार्टनरशिप की थी, तो वो तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल निकाल कर ही ले गए थे। That's true, and this time the Sri Lankan batsman making the most of the sweep shot, and you know, the fine leg and the long leg position where the fieldsmen really have to cover a lot of ground, because the captain is placing along with the bowler fieldsman in front of the wicket. 74 for 5 into the 15th over right now, and Ravi Bishnoi being brought back into the spin attack, 1 for 17 of 2 overs. This time another googly and picking up a single towards the onside in that short square leg area. 75 for 5 with both the batsmen now rotating the strike. It is Shanaka, the captain, who is batting on 17 of 14 deliveries, and Karuna Ratne at the non-strikers end batting on 5 of 8. Karuna Ratne showing quite a lot of maturity, rotating the strike. Sri Lanka 75 for 5. The second delivery of the 15th over is now in progress. Ravi Bishnoi into his third over. He has figures of 1 for 18. 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर, और 15वां ओवर पारी का इस समय चलता हुआ रवि बिश्नोई काफ़ी सी तेज़ी से गेंद करते हुए, और उनकी जो गेंद लेग स्पिन आई थी अगेंस्ट द स्पिन, इसको ऑन साइड में खेलकर 1 रन जुटाया बल्लेबाज ने। 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर शनाका बल्लेबाजी कर रहे 18 रन बनाकर, और करुणा रत्ने खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, और इससे पहले दिनेश चांदीमल आउट हुए थे और उनसे बहुत उम्मीदें थी क्योंकि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। 19 रन देकर 1 विकेट अभी तक लेने में कामयाब रहे हैं रवि बिश्नोई, और जिस तरह से पहले ही मैच में जब उन्हें मौका मिला था खेलने का तो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे वो, और इस बीच अगली गेंद और इस बार फिर अगेंस्ट द स्पिन, लेकिन काफ़ी डिफेंसिव स्टाइल में इस गेंद को पुश किया, और अब अगर 1-2 विकेट जल्दी और गिरते हैं तो फिर मुश्किलें होंगी श्रीलंका के लिए पूरे 20 ओवर खेलने की। लेकिन क्योंकि ये पारी का 15वां ओवर है तो इसके बाद जो 5 ओवर होंगे यहाँ पर करो या मरो जैसी हालत होगी, और श्रीलंका के बैट्समैन ज़रूर बड़े हिट्स के लिए जाएंगे। इस बीच हल्के से गेंद को ऑन साइड में टर्न किया, और इससे पहले कि गेंद फील्ड होती 1 रन और चुराया। श्रीलंका का स्कोर 77 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर पूरा होने से पहले केवल 2 गेंदें शेष, और देखते हैं इसमें श्रीलंकाई बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी कर रहे हैं रवि बिश्नोई, जिसकी वजह से बैट्समैन को शॉट खेलने का मौका नहीं मिल रहा, किसी भी तरह की कोई फ्लाइट नहीं दे रहे हैं, और बैट्समैन को थोड़ा सा शॉर्ट गेंद कर रहे हैं, हालांकि इतना भी शॉर्ट नहीं, गुटलैंड स्पॉट से थोड़ा सा पीछे अपनी बॉल को पिच करते हुए
कुलदीप बिश्नोई की अगली गेंद ये तो गेंद काफ़ी शॉर्ट थी बल्लेबाज के पास, हालांकि मौका भी था लेकिन काफ़ी तेज़ी से गेंद कर रहे हैं, इसकी वजह से शायद इतना रूम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी इससे पहले कि मिड ऑन पर गेंद फील्ड होती 1 रन और श्रीलंका के खाते में जुड़ता हुआ, लेकिन इन 1 रन से श्रीलंका का भला नहीं होने वाला, उन्हें बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। Well, Shanaka did go down the track, and which is why the ball was pitched short by Ravi Bishnoi. He has a long run up for a leg spinner, and another googly there, but not with that kind of off spin that he's able to generate through his finger spin delivery, and beating the batsman there, but well outside the off stump. The batsman could have stayed on the back foot and tried to play it late, try and play a cut shot to the spinners. We're seeing the spinners also trying to push it fast, trying to use the pace of the ball. It's 78 for 5 wickets. We're into the last delivery of this 15th over before there's a change in the commentary box with Ayush and Amit, who will be taking over. But right now, the spinners are just lost that bit of guile, surprise against the batting pair. And yes, they still have 5 wickets in hand. There are still 5 overs remaining. That's 30 deliveries in which to at least add 50 runs. If they do it, then it should be a fighting total that they may be able to defend against a strong batting lineup of India. और अर्जुन, आपने पिच को देखा होगा, बड़ा केनली वॉच किया आपने, तो ये महसूस ज़रूर किया होगा कि विकेट में काफ़ी बाउंस है। ये ट्रेडिशनल विकेट नहीं है जहाँ पर गेंद काफ़ी स्लो आती है या फिर विकेट पर ग्रास नहीं होता। तो जितना बाउंस फास्ट बॉलर्स को मिला, उतना ही उछाल स्पिनर्स को भी मिला है। और it's time now to rotate the strike. Sri Lanka 78 for 5. Let's welcome our co-commentators back into the commentary box, Amit and Ayush. Thank you very much, Arjun and Adesh. After 15 overs, Sri Lanka 78 runs for the loss of 5 wickets. Sri Lankan captain Shanaka had won the toss and elected to bat first. He's batting on 19, and right now on strike is Karunaratne batting on 5. Last 5 overs, 30 deliveries. How much can Sri Lanka score from here? ये अंतिम बल्लेबाजी की जोड़ी है। कम से कम प्रयास रहेगा कि 45 से 50 रन और जोड़े जाए, और जोड़ क्या, अभी तो तोड़ देते इनका एक और विकेट भारतीय फील्डर। जिस तरह से रवि बिश्नोई चुस्ती दिखाकर गेंद के ऊपर आए, थोड़ा सा जो शंका है वो आने लग गई दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाजों के ऊपर। हर्षल पटेल पटकी हुई गेंद थी, उसके सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करके बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला रवि बिश्नोई, युवा खिलाड़ी। उन्होंने एक अच्छा थ्रो साधा, भाग्यशाली रहे श्रीलंकाई बल्लेबाज की गेंद सीधे जाके स्टंप्स को लगी नहीं तो वापस करुणा रत्ने को ये रत्न लेकर वापस जाना पड़ता पवेलियन में। 79 रन श्रीलंका का टोटल है, 5 विकेट पतित हो चुके हैं। 16वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकी जानी बाकी। हर्षल पटेल, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, 2 खिलाड़ी जो ऑन साइड में थे उनको बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ धकेला गया। दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार गुडलैंड डिलीवरी हवा में उछल गई है। क्या ये एक और मौका है? नीचे 3 फील्डर आए लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में, और आप सोच नहीं सकते जनाब सबसे पास में कौन थे? सर रविंद्र जडेजा। यदि इनसे ये कैच पकड़ा नहीं गया का मतलब है ये कैच वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल था। Or let it put it this way, that since it was Ravindra Jadeja that the fielder was able to touch the ball. Good effort there, and 2 more fielders were converging, but ultimately the catch didn't happen. And Sri Lanka 80 runs for the loss of 5 wickets as Harshal Patel is in his 3rd over. This one on the leg side has been hit for a boundary, so a nice stroke, 4 runs. अमित, ये तो जले पे नमक है। पिछली गेंद पे आपका कैच छूटा है और अगली गेंद के ऊपर आपने चौका जड़ दिया। हर्षल पटेल वो खिलाड़ी जिसको बाउंड्री रोप्स के बाहर पहुंचा दिया बल्लेबाज शनका ने। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक किया, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ में कोई फील्डर था नहीं वहां मौजूद, तो अच्छा चौका मिल गया। फाइन लेग की साइड में थोड़ा ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग पे एक फील्डर मौजूद था, फाइन लेग की दिशा पूरी खाली थी और उस खाली दिशा का फायदा उठाया। चौथी गेंद ओवर की, इस बार फिर स्लोवर गेंद करी मिडिल और लेग की तरफ, उसको हल्के हाथे से धकेला कुलदीप यादव। वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 30 यार्ड के घेरे के अंदर फील्डर मौजूद, तो महज सिंगल से काम चलाना पड़ेगा कप्तान शनका और उनके साथ भी बल्लेबाज करुणा रत्ने को।
Harshal bowled that delivery, the fourth one of his over at 120 km per hour. So he's trying to mix and match. He's tested the batsmen by short pitch delivery, bouncers, and also bringing in variation in terms of the slow deliveries. But both the batsmen, Chanaka and Karuna Ratne, are dealing with it in a nice fashion. Fifth delivery right now. This one a short pitched. And not only the batsman misses it, so does the keeper, and it goes behind for another 4 runs. So certainly this is turning out to be a good over. 2 boundaries. And the umpire signals by, something that won't really bring Sanju Samson a smile. But Sri Lanka adding crucial boundaries, because the idea is that in these last 5 overs, they must really go for runs, because there's no point scoring 110, 120 for the loss of 7-8 wickets. They should make a match out of it. अमित, बहुत सही कहा आपने. अंपायर ने कहा बाय, लेकिन अंपायर ने सिर्फ बाय कहा है, श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बाय बाय कह दिया होगा, क्योंकि वो चौका जो उनको बाई का मिला है एडिशनल है, एक्स्ट्रा रन के तौर पे वो चौका आया. हर्षल पटेल अंतिम गेंद 16वें ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट. करुणा रत्ने बल्लेबाजी पे हैं, डाउन द ग्राउंड खेल दिया उस गेंद को, हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के फील्डर जब तक उसे फील्ड करते एक और रन कंप्लीट किया. इसी के साथ ओवर हो चुका है समाप्त और श्रीलंकाई पारी जो लड़खड़ा रही थी वो अब कहीं ना कहीं सही होती हुई आ रही है नजर. Small little partnership right now building up for the 6th wicket. And not much batting to come from here. You've got Dushmanta Chamira, Jeffrey Vandersay, the leg spinner, included in the playing 11 today. Binura Fernando and Lahiru Kumara, 4 batsmen who will still to come. So Sri Lanka would certainly want their skipper Dasun Chanaka, who scored good 47 runs in yesterday's match. He's in good nick to score some quick runs for Sri Lanka. And Karuna Ratne, can he give some company to the skipper? Last 4 overs, so 24 deliveries more to go. And sizable total is what they would like to have, because if you look at the Indian batting, skipper Rohit Sharma, you've got Sanju Samson, Shreyas Iyer in the form that he is, 2 unbeaten, half century so far. Ravindra Jadeja, Venkatesh Iyer, 120, 130 is not going to be any difficulty for the Indian batting lineup. मगर और कोई चारा नहीं है श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास में. अंतिम 4 ओवर बचे हैं. सिराज का 1 ओवर बाकी, आवेश खान का 1, हर्षल पटेल का भी 1 ओवर बाकी है. तो 3 तो आपके तेज गेंदबाजों के ओवर बाकी. मोहम्मद सिराज 3 ओवर में 9 रन दिए हैं. पहली गेंद लेकर आए हैं 17वें ओवर की. शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, पुल करना चाह रहे थे करुणा रत्ने, लेकिन संपर्क अच्छा रहा नहीं. सिर्फ 1 ही रन से काम चलाना पड़ेगा. ये वो चमचमाती रेक ट्रॉफी है जिसके लिए ये ट्राई सीरीज खेली गई, जो 3 मुकाबलों की सीरीज थी T20 फॉर्मेट में, और वो ऑफिशियली तो भारतीय टीम के नाम हो चुके. लेकिन क्या यहाँ श्रीलंकाई साइड एक मुकाबला जीत के कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस करने की कोशिश करेगी? हालांकि पेपर्स के ऊपर तो अभी भी आप कह सकते हैं पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अमित, यहाँ से जो मैच के हालात दिख रहे हैं बहुत मुश्किलात में है अभी श्रीलंका की टीम. In comes Mohammad Siraj, slightly outside the off stump, and that has been brilliantly cut from the point region for a boundary. So Captain Shanaka adding 4 more runs to his total. He moves up to 29, score of 20 deliveries. Sri Lanka 95 for the loss of 5 wickets. So the last over, 2 boundaries, and this one brings another boundary for Sri Lanka. They have to accelerate the pace from here. Mohammad Siraj just digressing a bit from his line, and once you give Shanaka some width, he's certainly going to go for that cut shot. Sri Lanka 95 runs for the loss of 5 wickets, and this entire innings hasn't seen any 6 so far. 6 boundaries, but no 6. और अगर आप फील्ड सेट की बात करेंगे तो एक खिलाड़ी थर्ड मैन की दिशा में लगा रखा है. डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद. इसी बीच मोहम्मद सिराज की एक तेज तर्रार यॉर्कर ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी वो गेंद, भापना बहुत मुश्किल था. अगर आपको एक ही ओवर के अंदर चौकों की बरसात कर रहा है बल्लेबाज तो बचना बहुत मुश्किल होता है. अमित, ओवर की शुरुआत की चौके के साथ, एक सिंगल गया, उसके बाद में फिर आपको चौका लगा और एक अच्छा कमबैक मोहम्मद सिराज के स्तर के गेंदबाज का. 95 रन के स्कोर पे श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी कर रही है. करंट रन रेट जो बहुत पहले बहुत बुरी थी, अब थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, 5.76 पे पहुंची है. 17वां ओवर गतिमान. ओवर की चौथी गेंद मोहम्मद सिराज, राइट आर्म ओवर द विकेट. स्लोवर गेंद थी, ऑफ साइड में, उसको कट कर दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं और चौका मिलेगा. पॉइंट की दिशा के बीच में से, लॉन्ग ऑफ की दिशा के बीच में से इस शॉट को बनाया कप्तान शनका ने, और यह शॉट देके जाएगा पूरे 4 रन. छक्का भले ही अभी तक इस पारी में कोई नहीं लगा, लेकिन चौकों की जो नंबर है उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज. जैसा पहले भी जिक्र किया गया है कि ये अंतिम बैटिंग पेयर है श्रीलंका का.
इसके बाद में चमीरा आएंगे जो आमतौर पे ज्यादा बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते, और उनका साथ देने के लिए जो सब बल्लेबाज है वो पिछुल्ले क्रम के बल्लेबाज। तो जितने रन टोटल ऐड करना है दारोमदार इन्हीं दो खिलाड़ियों पे है। इस सीरीज में अभी तक 6 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं शनका। ये एकमात्र वो बल्लेबाज है जिनसे अब श्रीलंका की साइड उम्मीद कर रही होगी कि ये खिलाड़ी कुछ रन बटोर दे। अंतिम एक और रन यदि ऐड हो जाता है तो श्रीलंका की साइड का शतक कंप्लीट हो जाएगा। ओवर की 5वीं गेंद, मोहम्मद सिराज 2 चौके ऑलरेडी इस ओवर में लग चुके हैं। एक तेज तर्रार यॉर्कर सीधे ब्लॉक होल में, उसे ब्लॉक तो जरूर करा और साथ ही साथ 2 रन और ले लिए। मिड विकेट पे खिलाड़ी दौड़कर जब तक आते 2 रन कंप्लीट कर लिए। रवि बिश्नोई वो खिलाड़ी था जो दौड़ लगाकर आया जरूर, लेकिन भाप नहीं पाया कि ये वो श्रीलंकाई खिलाड़ी है जो कोशिश पूरी करेंगे, और सिर्फ कोशिश ही नहीं करेंगे, ये वो खिलाड़ी है जो रन्स भी ले लेंगे। सेकंड जो T20 मुकाबला था उसमें बाउंड्रीज हिट की थी, बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे श्रीलंका की टीम ने, लेकिन यहां कोई बड़ा हिट नहीं आया। अमित, अभी तक एक भी छक्का इस पारी में देखने को मिला नहीं है। Well, I won't be surprised with Shanaka still at the crease. For the last 3 overs, we'll get to see a few sixes, because don't forget, yesterday he had 5 sixes to his credit, so he's in a very good nick. But Sri Lanka has been able to come to 3 digits now, 101 for the loss of 5 wickets, as Siraj will now be bowling the last ball of his 4th over. So far, he has given away 11 runs. This one was drifting towards the leg side, and Shanaka made some room for himself. They have run the first single hard, and yes, they will complete the second run as well. अमित, ये तो वो डीजल का इंजन है जो शुरू होता है, थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए उसके बाद में आपको रफ्तार पकड़ के देता है। यही करते हुए श्रीलंकाई दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अंतिम कुछ ओवर्स में जितने ज्यादा रन आप बना ले उतना आपके लिए अच्छा होगा, और वही प्रयास कर भी रहे हैं। अगर आपको चौके छक्के नहीं मिल रहे हैं तो वहां सिंगल डबल्स खोज रहे हैं, सिंगल्स को कन्वर्ट करके डबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी। और अब हर्षल पटेल का भी एक ओवर फेंका जाना बाकी है। मोहम्मद सिराज अपना ओवर डाल चुके हैं। आवेश खान अब वो गेंदबाज है जिसका एक ओवर बाकी। अमित, किन उन खिलाड़ियों से आपको गेंदबाजी की उम्मीद है, और क्या लगता है कि 19वां ओवर कौन खिलाड़ी डालेगा, 20वां ओवर कौन सा खिलाड़ी डालेगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो ओवर्स? Well, so far, 2 Indian bowlers have completed their quota of 4 overs. Mohammad Siraj just completed his 4 overs. So 4 overs, he's given away 22 runs and picked up the wicket of Danushka Gunatilaka, the opener from Sri Lanka, whom he had clean bowled. So overall, with the economy of 5.50, Mohammad Siraj would be very happy with his effort. The other bowler who has completed his 4 overs is Kuldeep Yadav, giving away 22 runs. So exactly the same number of runs as Siraj, but Kuldeep could not pick up the wicket. But right now, the 18th over has been given to Ravi Bishnoi. Now, that's an interesting choice. बिल्कुल अमित, हम बात कर रहे थे कि कौन सा वो तेज गेंदबाज होगा जो ये ओवर लेकर आएगा। स्पिनर को कुछ अलग सी सोच दिखाई है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद ऑफ साइड में टप्पा खाने के बाद गई और बल्लेबाजों ने हल्के हाथ से धकेल दिया उसे। जो कवर्स की रीजन है वहां पर फील्डर मौजूद थे, महज 1 ही रन मिलेगा। और इसी के साथ स्ट्राइक पे आ चुके हैं शनका। 37 के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 गेंदों का सामना किया है। करुणा रत्ने ने 9 रन उनके बल्ले से आए, 16 गेंदों का सामना कर चुके हैं। T20 फॉर्मेट चल रहा है। शनका उन्हें बार बार याद दिला रहे होंगे कि ये टेस्ट मैचेस अभी 4 तारीख से शुरू होने, अभी T20 फॉर्मेट चल रहा है। आप साथ ही हाथ बटाना और स्कोर बढ़ाना हमारी टीम का। Well, cricket is the game of partnerships, and certainly Shanaka would want the support from Karuna Ratne if Sri Lanka has to add another, say, 30 to 35 runs. 104 for the loss of 5 wickets. Captain Rohit making some fielding arrangements as Ravi Bishnoi gets ready to bowl the second delivery of the 18th over. On strike, Dasun Shanaka, unbeaten 37 of 24 deliveries. This one in line with the stumps, cramping the batsman for any space. And as the ball heads towards the mid-on area, and the fielder from the deep mid-on could come and field, 1 run gets added. At this stage of the game, singles won't really impact much, and Sri Lanka would certainly want more of those boundaries and maybe a couple of sixes as well from the skipper's bat. बहुत सही बात कही अमित आपने कि बूंद बूंद करके ना घाघर बढ़ता है, सागर नहीं बढ़ता। और अगर आपको सागर को बढ़ना था तो बहुत पहले शुरुआत करनी थी। ओवर की तीसरी गेंद इस बार उठा के मार दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑन से ज्यादा दूर जा नहीं पाएगी गेंद और फील्ड कर लिया गया। सिर्फ 1 ही रन गवाया है भारतीय टीम ने। कुलदीप यादव वहां पे मौजूद थे। 106 रन श्रीलंका का स्कोर, 5 विकेट जा चुके हैं। 17.3 ओवर हो चुके हैं और करंट रन रेट जो अब लगातार बढ़ रही है, बढ़कर 6 के पार आ चुके हैं, 6.06। और फील्डिंग की बात करेंगे तो मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है
लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी रख रखा है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है। ये वो 5 खिलाड़ी जो 30 यार्ड से 22 बार डाउन द ट्रैक आके मार दिया है लॉन्ग ऑफ के पास से। गेंद सीधे सीमा रेखा को पार करेगी एक टप्पे के साथ, तो एक और चौका श्रीलंकाई कप्तान शनका के बल्ले से निकलता हुआ। 8 चौके पारी में आ चुके हैं। And with that boundary, also 50-run partnership coming for the 6th wicket between the skipper Shanaka and Chamika Karunaratne. This one was absolutely in the slot and dealt harshly as there was no chance for the fielder in the deep to cut that off. 4 more runs to Shanaka and Sri Lanka. Good 50-run partnership because the 5th wicket of Chandimal had fallen when the Sri Lankan score was 60. Right now it's 110 for the loss of 5 wickets. The run rate little over 6. 5th ball of the 18th over. This one has been smashed towards the extra cover region. No fielder there. So another boundary. Ravi Bishnoi. Still early days as far as international cricket is concerned. All of this comes very handy because later this year, all the teams will be vying for the T20 World Cup and you need to really understand how to bowl in the death. और मारना चाह रहे थे उसे ऑन साइड में, पूरी ताकत से बल्ले को घुमाया था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन भाग्यशाली है कि चौका आया उनके खाते में, क्योंकि यदि यहाँ कोई फील्डर मौजूद होता, जिस तरह की गेंद थी, फील्ड सेट एकदम अच्छी, फील्ड सेट में कोई बुराई नहीं है। रवि बिश्नोई ने जो गेंद की उसमें कुछ खासा बुराई नहीं थी, लेकिन टॉप एज लगी। इस गेंद में आप कमियां ढूंढ सकते हैं जनाब, क्योंकि यहाँ पे मिड विकेट की तरफ रविंद्र जडेजा मौजूद है और वहां तक गेंद पहुंचा दी है बल्लेबाज श्रीलंकाई टीम की। जो साझेदारी हो रही है करुणारत्ने और शनका की, वो लाजवाब और लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। परेशानियों का सबब बनेगी ये भारतीय टीम के लिए। कितना स्कोर और ऐड कर लेंगे इन बचे हुए 2 ओवर में, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण। फिलहाल अपनी 50 के भी बहुत पास आ चुके हैं अब श्रीलंकाई कप्तान शनका, तो दरकार करेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आने के बाद अमित, आपकी कोशिश रहती है कि आप टीम को ज्यादा महत्व दें रेदर देन आपके इंडिविजुअल स्कोर को, और अभी तो श्रीलंकाई साइड को दरकार भी ऐसी की। Well, after 10 overs, Sri Lanka were 43 runs for the loss of 4 wickets. But one can say in the last 4 overs, the run rate has certainly picked up. They are in far better position than they were at the halfway stage. The question is, can they have some big hits from here? Because the stadium is picturesque, but the boundary and the length on each side of the square is good enough for batsmen to go all the way and hit into the stands. Right now, for the 19th over, we've got Avesh Khan. He has bowled 3 overs so far, and he was among the wickets as well. And Avesh Khan is going to bowl the 19th over. पिछले 20 गेंदों की बात की जाए तो 11 से ज्यादा की औसत से रन बने। आवेश खान फुल टॉस डिलीवरी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया अंपायर के सर के ऊपर से, और 2 फील्डर्स को भेजती हुई गेंद, जिस तरह से सुई के अंदर धागा पिरोया जाता है उस तरह से बल्लेबाज ने इस शॉट को सेट कर दिया और चौका मिलेगा। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शनका, और उसी के साथ अपना अर्धशतक भी किया पूरा। 51 के स्कोर पे आ चुके हैं। 29 गेंदों का किया है सामना, और जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी श्रीलंकाई साइड को, वही पारी खेल दिया आज इस कप्तान ने। Well, Avesh Khan was trying to get a yorker, what eventually turned out to be a full toss, and Shanaka leveraging it nicely, hitting it right in straight for that boundary. 51 runs, that's his half century. The next ball has been again driven beautifully towards the cover, so another boundary gets added. Back-to-back boundaries for the Sri Lankan skipper. He moves to 55 of 30 deliveries. And Sri Lanka now in some sort of respectable total, 123 for 5. अमित, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकाई कप्तान का स्कोर जो है वो ही नहीं बढ़ रहा है, वहां पे आवेश खान का अगर आप स्कोर देखेंगे तो उसमें भी लगातार परिवर्तन हो रहे। 2 चौके आए, 12 रन अभी तक खर्च किए, यानी कि पहले के ओवर में महज 4 रन दिए थे और अब 2 ही गेंदों में उसका दुगना दे चुके हैं। क्या रोना था, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके ओपोनेंट अंतिम के कुछ ओवर में तो आप पे प्रयास करेंगे, अगली गेंद पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच बॉल, उम्मीद है कि वाइड दी जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंपायर ने अपनी बाजू में खोल दी वाइड का इशारा, और उसी के साथ श्रीलंकाई कप्तान शनका डिमांड कर रहे हैं कि ये फर्स्ट बाउंस क्यों नहीं दी गई है, फर्स्ट बाउंस आपको देनी चाहिए। और रोहित शर्मा भी लुफ्त उठाते हुए बीच में आए, अंपायर से कुछ चर्चा की, और फिर अंपायर और रोहित शर्मा दोनों ही हंस के जुदा हो गए। It is good to see Rohit coming over and having a quick chat with the bowler. This is his 125th appearance as far as T20 international is concerned. So vastly experienced Rohit, telling Avesh
how to bowl. And this one again, another full toss. Is this going to be the first six? Yes, into the stands. That's the six that probably Sri Lankan cricket supporters were waiting for. Eventually, it comes in the 19th over through the bat of their skipper, Shanaka. 2 boundaries and now a 6. This is turning out to be a very good over for Sri Lankans. ये गेंद करने को तो नहीं कहा होगा रोहित शर्मा ने कि आप ये लो फुल टॉस डालिए, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। उम्मीद की जा रही होगी कि एक यॉर्कर मारने का प्रयास कीजिए। आप डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपको बनाना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में डेथ ओवर्स डालते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए डेथ ओवर्स में अगर आपको परफॉर्म करना है तो यॉर्कर्स की स्पेशलिटी चाहिए होगी। लेकिन जिस फॉर्म में शनका है, ये तो लो फुल टॉस थी। यदि ये यॉर्कर भी होती तो उम्मीद की जा रही थी इनसे कि ये उसको कन्वर्ट करते, कुछ रन उसमें से निकाल के देते। करंट रन रेट जो है वो बढ़कर 7 से ऊपर चली गई है। 130 श्रीलंका का स्कोर, 5 विकेट गए हैं। 19वें ओवर की चौथी गेंद लेके आवेश खान इस बार वाइड ऑफ स्टंप के बाहर मारा था, उसको कट कर दिया है। फील्डर जरूर थर्ड मैन पे मौजूद, लेकिन शॉट बड़ा अच्छा था, देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत क्लीन लग रहा था। अमित, ऐसा उम्मीद की जा रही थी, ऐसा दिख रहा था कि यदि फील्डर थोड़ा दाएं या बाएं की तरफ होते तो शायद एक और चौका ऐड हो जाता श्रीलंका के टोटल में। Well, as they say that the batsman now having spent so much time there at the crease probably would be viewing the ball just like a football. And no matter where you bowl, he's connecting it real well. And Shanaka adding very useful runs to the Sri Lankan innings. 131 runs for the loss of 5 wickets, punctuated with 11 boundaries and a 6 as well. In comes Avesh, and clearly the pressure on the young bowler. Bowls it real wide outside the off stump. Umpire widening his hands. An extra run conceded. बल्लेबाजों को तो गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही होगी, लेकिन आवेश खान को इस ओवर में गेंद रग्बी की बॉल की तरह दिखी है। और सामने वाला बल्लेबाज जो है वो रग्बी का एक प्लेयर ही दिखा है। किस तरह से गेंद उनसे छीन के लेके गए, और सिर्फ गेंद ही नहीं छीनी है, पूरा का पूरा गेम छीनने का प्रयास किया। पिछला ओवर बहुत एक्सपेंसिव। दसुन शंका की आप बात कर लीजिए तो 60 से ऊपर इस खिलाड़ी का स्कोर हो चुका है। 62 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल करुणा रत्ने स्ट्राइक पर। 19वें ओवर की 5वीं गेंद आवेश खान ने डाली और फील्ड करेंगे कुलदीप यादव लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक और मौका, थोड़ा सा थ्रो वाइड हुआ और उसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और रन लेके। तो जहां पर एक ही रन मिलना चाहिए था वहां 2 रन भाग लिए, और परिस्थितियों को भांपते हुए इस टफ कंपटीशन के अंदर भी उनका जो मेंटल लेवल है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो बहुत क्लियर है कि जहां आपको मौका मिल रहा है वहां आप रन बनाइए और वहां पे आप एक्स्ट्रास को कन्वर्ट कीजिए। जितना ज्यादा आप अपने स्कोर कार्ड को बढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा स्कोर कार्ड को बढ़ाइए। पीछे से मोहम्मद सिराज ने आकर गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और अब रोहित शर्मा के चेहरे पे वो जो गुफ्तगू सी नजर आती है ना, जो मन ही मन बल्लेबाज करता है, कप्तान करता है, वो नजर आई। ओवर की अंतिम गेंद स्लोवर 1 के साथ ओवर किया, डॉट बॉल के साथ किया ओवर समाप्त, और इसी के साथ 19 ओवर हो चुके हैं समाप्त। So after 19 overs, Sri Lanka 134 for the loss of 5 wickets. And Avesh Khan has completed his quota of 4 overs. 4 overs, 23 runs. And he picked up a couple of wickets. He got the opener, Pathum Nisanka. And the second wicket was of the batsman Charit Asalanka. And interesting to observe that after 3 overs, Avesh had conceded just 4 runs, picked up 2 wickets. And his 4th over, he gave away 19 runs. And in T20 international cricket, Ayush, 1 or 2 good overs could actually swing the game in your favor. अमित, वो क्या है ना, गेंद तो एक ही कम होती है लेकिन रन सीधे 6 बढ़ते हैं। तो वही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इस मुकाबले में नजर आ रही है श्रीलंका की साइड की तरफ से। इसी चीज की दरकार थी। यदि शनका को कोई और पार्टनर मिल जाता जो इसी तरह की साझेदारी उनके साथ निभाता, शुरुआत में थोड़ा समय लेता, उसके बाद पारी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि ये मुकाबला भी फंस जाता। एक अच्छा स्कोर श्रीलंका का हो सकता था, लेकिन शुरुआत से ही विकेट चटकते रहे भारतीय गेंदबाज, दबाव में आते रहे श्रीलंका की साइड। युवा साइड है, लगातार ट्रांजिशन फेज से काफी समय से गुजर रही है, तो अब स्टेबिलिटी की उम्मीद जरूर करेंगे। फिलहाल अगर आप बात करें कि कौन कौन से खिलाड़ी 20वें ओवर में फील्ड सेट के बाहर है, तो उससे पहले बता दें हर्षल पटेल ये अंतिम ओवर भारतीय टीम के लिए डालेंगे। डॉट बॉल के साथ गुड लेंथ थी, थोड़ी सी कटर गेंद का इस्तेमाल 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जिसको भांप नहीं पाए बल्लेबाज। तो डॉट के साथ हुआ है 20वें ओवर का आगाज। और जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था कौन कौन से खिलाड़ी है, जो 5 प्लेयर्स इंडियन टीम ने 30 यार्ड के घेरे के बाहर रखे हैं। ऑफ साइड में सिर्फ एक खिलाड़ी जो लॉन्ग ऑफ पे, उसके बाद में सारे खिलाड़ी लेग साइड में है। लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है। तो यदि गेंद आप 30 यार्ड के पारे में ऑफ साइड से पार करा देते हैं तो चौका जाने का पूरा पूरा चांस है। और वो चीज दिमाग में होगी शनका के, क्योंकि भांप चुके हैं पूरी फील्ड को और काफी समय से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, क्रीज पे मौजूद हैं।
I think Shanaka is not looking at the fielders. He would like to go for a 6. And he has the capability to clear off the field. In comes Harshal. This one short pitched and it's a good heave. And see, it's a 6. तो अमित, आप इसके साथ में कुछ ज्योतिषी वोतिषी का भी कुछ काम कर रहे हैं, या फिर जो मैच की अंडरस्टैंडिंग है वो उस लेवल की हो चुकी है तजुर्बे के साथ साथ कि आप भाप सकते हैं कि क्या चल रहा है बल्लेबाज के दिमाग में? Well, the captain certainly would like to stretch the target for the Indian batting lineup, and once the opportunity comes of a slower delivery, short pitch delivery, then given the fact that he's already scored half century, he would like to go for the maximum. और इसी छक्के के साथ में श्रीलंका इस साइड का स्कोर बढ़ता हुआ, और इस बढ़ते हुए स्कोर के ऊपर कोशिश करनी होगी दबाव बनाने की। जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे हर्षल पटेल के। 140 रन श्रीलंका का स्कोर हो चुका है। रन रेट 7.24 की चल रही है। शनका 68 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। महज 34 गेंदों का सामना किया और वहां करुणा रत्ने 19 गेंदे खेल के 12 रन बनाए। तो अच्छा तो श्रीलंका की साइड के लिए यही है कि शनका बल्लेबाजी पे रहे। अगर आप बात करें कि कितनी बड़ी बाउंड्रीज है तो सामने की 79 मीटर्स की, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ फाइन लेग की तरफ फुल टॉस बॉल को धकेल दिया। कुलदीप यादव फील्ड करके जब तक गेंद को वापस क्रीज में पहुंचाते 2 रन कंप्लीट कर लेंगे श्रीलंका ये बल्लेबाज। Excellent running between the wickets. They were quick to get that first single, and therefore the conversion into 2 was always on. Shanaka now 70 runs of 35 deliveries, so that's an exactly strike rate of 200. And courtesy that innings from the captain, Sri Lanka is now at 140 for the loss of 5 wickets. In comes Harshal, 4th delivery of his over, and this one was in good line and length. Batsman was not able to connect with the ball, and the ball went into the gloves of Sanju Samson. No run results. Current run rate is that of 7.22. 2 more deliveries in this Sri Lankan innings. This is the 3rd T20 international. India has already got the unassailable 2-0 lead. And will the victory stretch continue from 11 to 12? अंतिम 2 गेंदे बाकी है। पटकी हुई गेंद, किनारा जरूर लगा और कीपर के ऊपर से गेंद जा रही है। क्या वहां पे चौका मिलेगा? बिल्कुल। कुलदीप यादव जब तक आते और गेंद को रोक पाते, एक और चौका चला गया। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर बढ़ रहा है और बढ़कर जा पहुंचा 146 रन 5 विकेट के नुकसान पे। किस तरह की गेंद करी थी, पटक के गेंद को मारा था, डाउन द लेग साइड गई थी। गेंद में रफ्तार इतनी ज्यादा थी नहीं कि वो बैट्समैन को चौका दे, और टॉप एज लगकर एक और चौका श्रीलंकाई कप्तान के खाते में जुड़ेगा। नाखुश है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। जानते हैं कि इस तरह की गेंदबाजी आप डेथ ओवर्स में अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये पार्टनरशिप 86 की जा पहुंची है महज 48 गेंदों में, जिनमें 63 रन्स कप्तान शनका ने ऐड किए हैं। 20वें ओवर की अंतिम गेंद, हर्षल पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार डॉट रहेगी। नॉन स्ट्राइकर एंड पे करुणा रत्ने भाग जरूर गए थे, लेकिन शनका ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसी के साथ ओवर हो चुका है समाप्त। 20 ओवर की समाप्ति के बाद, इस इनिंग की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 146 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद द रन रेट ऑफ 7.30। शनका नाबाद हैं, 74 रन की पारी उन्होंने खेली, और करुणा रत्ने 12 रन की पारी खेल चुके हैं 19 गेंदों का सामना करने के बाद। So after winning the toss and electing to bat first, Sri Lanka have managed to score 146 runs for the loss of 5 wickets. A captain's knock by Dasun Shanaka, unbeaten 74 runs, scored of 38 deliveries. And he was primarily instrumental for that score by the Sri Lankans. A nice partnership with Chamika Karunaratne, who remained unbeaten on 12 of 19 deliveries. In terms of the scorecard, Pathum Nisanka caught Venkatesh Iyer of the bowling of Avesh for a solitary run. Tanushka Gunatilaka was clean bowled by Siraj for no score. Charit Asalanka caught by Sanju Samson, a skyer of the bowling of Avesh Khan, 4 runs. Janit Lianage, into playing 11 today, was bowled by Ravi Bishnoi. Dinesh Chandimal was caught by Venkatesh Iyer off the bowling of Harshal, and that 5th wicket fell when the Sri Lankan score was 60. Add another 86 runs, they ended up with 146 for 5. So unbeaten 86 run partnership between Captain Shanaka and
Chamika Karunaratne. अमित, यदि क्रिकेट में कोई रबर होता ना तो भारतीय कप्तान कोशिश करते कि वो अंतिम के 10 ओवर है उनके ऊपर वो रबर फेर दे, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने करके दिखाई है अंतिम के 10 ओवर में, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रन्स थे वो बता दिए। लास्ट के 5 ओवर में हमें उम्मीद थी कि कोई भी 6 अभी तक श्रीलंकाई बल्लेबाजों के बल्ले से आया नहीं, तो शनका ने वो भी आपकी मुराद पूरी की, 2 छक्के उन्होंने वहां ऐड कर दिए और जो पूरा का पूरा समीकरण था भारतीय गेंदबाजों का वो बदल दिया। और इसी के साथ श्रीलंका की ये जो पारी थी जिसमें अंत में उन्होंने गेयर बदले और भारतीय टीम को टोटल बनाने को दिया है वो है 147 का, 147 रन बनाइए और ये तीसरा मुकाबला आप जीत जाइए। 2 मैचेस भारतीय टीम ऑलरेडी जीत चुकी है, तीसरे मुकाबले को जीतने के लिए 147, अगर आप ऑन पेपर और टीम के पूरे टोटल को देखेंगे तो इतना ज्यादा बुरा स्कोर रहा नहीं है। पहले के जो 4 विकेट गए उसके बाद में अमित 4 विकेट आपके चले गए, आपका रन अगर आप टोटल देखेंगे तो 20-25 रन तक भी आप नहीं बना पाए थे। उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन आपके कप्तान का रहा और करुणा रत्ने ने एक अच्छी चीज की कि वो टिके रहे वहां पे, अगर उनके बल्ले से रन नहीं आया तो उन्होंने अपना विकेट भी नहीं गंवाया, क्योंकि अगले आने वाले जो बल्लेबाज हैं वो सब पिछुल्ले कम के थे। So India need 147 runs from 20 overs to win the series 3-0. Remember, they had defeated West Indies as well 3-0. So will India go for the clean sweep remains to be seen. But in terms of Indian bowling today, Captain Rohit Sharma used 5 bowlers. Mohammad Siraj, 4 overs, no maiden, 22 runs, 1 wicket. Avesh Khan, 4 overs, 1 maiden, 23 runs, 2 wickets. Harshal Patel, in his 4 overs, gave away 29 runs, picked up 1 wicket. Kuldeep Yadav couldn't pick any wicket today, gave away 25 runs in his 4 overs. And Ravi Bishnoi, 4 overs, no maiden, 32 runs, 1 wicket. In terms of extras, there were 21 runs given away. And that includes 6 wides. I'm joined by Arjun in the commentary booth. Arjun, 21 extras, that includes 6 wides. Probably an area of concern for the Indian skipper? Well, that's obvious the case. If you look at Avesh Khan's figures, 2 for 23 of his 4 overs, it's very misleading because his first 3 overs didn't give away many runs. He picked up 2 wickets early on in that spell. And then it was up to Shanaka, who scored a valuable 74 to ensure Sri Lanka's revival in this third T20. Even though the total is not as imposing as it should be, but if you look at where they were, having lost 5 wickets and then reaching a total of 146 after 20 overs, it is a challenging score for India to overhaul 147 to win this match. I'm now joined in the commentary box with Adesh Kumar after the exit of Amit Arora, who gave us just a rundown of the batting scores from Sri Lanka. Dasun Shanaka, the captain, scoring 74 of 38 deliveries. Strike rate of almost 200, 195 was the strike rate. And Karuna Ratne scored 12 of 19 deliveries. And as Ayush Sharma had pointed out, he was a valuable partner, just rotating the strike and ensuring that Sri Lanka not lose any more wickets after the dismissal of Chandimal, the wicketkeeper, for 25. And it's thereafter, from the 16th over onwards, so when we gave up the commentary to this duo, that Sri Lanka recovered and this put up 146 on the board for the loss of 5 wickets in their 20 overs. So 147 to win. Rohit Sharma would be walking in as the opener. He's the captain of the Indian squad, the Indian team. And we saw in the second T20 where he was dismissed very cheaply for 1 only after scoring 44 in that first T20. I'm sure his approach to this particular third T20 would be to ensure a brown wash by India against Sri Lanka and maintain their unbeaten record that they have continued after beating the West Indies as well. और ये 12वीं जीत होगी भारत की लगातार अगर वो जीतते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अर्जुन तारीफ करनी होगी शनाका की, जिन्होंने जिस तरह से 74 रन्स बनाए और 146 रन्स की अगर बात की जाए तो आधे से ज़्यादा योगदान एक तरह से इनका हो जाता है, जिसकी बदौलत एक फाइटिंग स्कोर ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की होती तो ये स्कोर शायद 170-180 होता, तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम में जो आज परिवर्तन किए गए, जिस तरह से
यहाँ पर युजवेंद्र चहल को रेस्ट दिया गया और फिर तेज़ गेंदबाजी में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। मोहम्मद सिराज, आवेश खान, कुलदीप यादव, तो ये जो चेंजेस थे ये इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहे। और जैसा कि आपने बार बार जिक्र किया रोहित शर्मा का, पहले मुकाबले में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, दूसरे मैच में चीपली 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यहाँ ज़रूर वो खामोश नहीं रहना चाहेंगे और एक कप्तान के तौर पर वो बहुत ही मैच्योर कैप्टन बनकर उभरे हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप में भारत हारा तो उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठे, लेकिन अब हालत ये है कि उसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, अब क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार हैं श्रीलंका का। अगर आज जीत जाते हैं तो जिसको भी मौका मिला उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। Well, that's a sign of a mature captain, and he's also focusing on youngsters, as he put it earlier in the commentary when Sri Lanka was batting. Ravi Bishnoi promised a lot, but he gave away runs later, 1 for 32, picking up that sole wicket of Lianage by bowling a googly. Kuldeep Yadav had none for 25 of his 4 overs. Harshal Patel 1 for 29 of his 4 overs. He pitched way too short, but once again, the captain's patience with the youngsters is what one could see on the on-field. And Mohammad Siraj 1 for 22 of his 4 overs. I'm sure Avish Khan would have to work more on his temperament, especially at the end overs, because bowling the Yorker, which dips onto the popping crease, requires a late swing, reverse swing, and those skills have not come in to a youngster like Avish Khan as yet. So he ended up bowling full tosses or half volleys at the end over, which was taken full advantage by Dasun Shanaka, who scored a valuable 74 with a strike rate of 195, which allowed Sri Lanka to score 146 in their 20 overs. Now, in reply, Rohit Sharma would be walking in with his co-opener, and Sanju how they Samson. approach. अप्रोच तो उनकी यही रहेगी। संजू सैमसन भी जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन हैं और जिस तरह से दूसरे 2020 मुकाबले में उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाए, लगातार छक्के भी लगाए, तो बैटिंग पोटेंशियल है। और विकेट की बात की जाए तो विकेट काफ़ी अच्छा है, हालांकि विकेट में थोड़ा बाउंस भी है। तो जो श्रीलंका के शुरुआती तेज़ गेंदबाज होंगे, अगर वो कोई दिक्कत पेश नहीं करते हैं पहले स्पेल में, खासकर 6 ओवर के बाद देखना होगा कि भारत का स्कोर क्या है, और अगर विकेट नहीं गंवाते तो फिर भारत आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगा। और ये Well, it's too early to make that prediction, Adesh. Anything can happen. Sanju Samson, yes, you mentioned, he scored 39 or 25 deliveries in that second T20. He played a very valuable role in India breaking the grip of the Sri Lankan bowlers, especially between the 12th and the 15th over, which allowed India to win the second T20 by scoring 186 for 3 in under 18 overs. But if we talk about the Sri Lankan bowlers, Chamira and the left-handed fast bowler Binuro Fernando, both have tremendous potential. That right and left-hand combination, even though we saw that in the second T20, can be potent in the third T20 as well, because this pitch at the HPCA Stadium is showing more bounce and pace as compared to the pitch yesterday. जैसे अर्जुन टेस्ट मैच में कहा जाता है कि जो चौथे और तीसरे और चौथे दिन की पिच होती है वो बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ तक विकेट की बात है, कल भी हमने देखा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी, और आज भी हमें नहीं लगता कि विकेट में कोई इतना वियर एंड टीयर है। तो बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छी है। और शनाका ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो उन्होंने दिखाया कि आप अननेसेसरी शॉट्स ना खेलें, बल्कि जो आपकी अपनी एबिलिटी है उस पर अगर जाएं, जिस पर बिलीफ है आपका, जिन शॉट्स पर, उसे ही खेलें। क्योंकि शुरुआती बैट्समैन ने जिस तरह से लॉफ्टेड शॉट्स खेले और अंदाज़ा नहीं लगाया, यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी आवेश खान और मोहम्मद सिराज की। उन्होंने गेंद को स्विंग कराया और बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया। तो शुरुआती 2-4 ओवर के बाद पता चल जाएगा कि विकेट का बिहेव कैसा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि विकेट के बिहेव में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। और डिमोरलाइज्ड है इस समय श्रीलंकन टीम, इतनी होपलेस उनकी बॉलिंग रहेगी। जैसे पहले मैच में उन्होंने 191 रन दिए, और सेकंड मैच में भारत ने जिस तरह से स्कोर को चेज़ किया केवल 3 विकेट के नुकसान पर,
तो उससे जो इंडियन बैट्समैन है उनका मोरल काफ़ी हाई है। और सभी खिलाड़ी जानते हैं कि 2020 वर्ल्ड कप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। बहुत निराश थे भारतीय खिलाड़ी पिछले 2020 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से भारत हारा और नॉकआउट तक नहीं पहुंचा। अब बिनूरा फर्नांडो की जैसे आपने बात की थी, तो 9 मैचेस में 10 विकेट हैं। ये बताता है कि इतने इम्प्रेसिव तो नहीं हैं, क्योंकि अगर केवल 1 विकेट की एवरेज है लगभग पर मैच में, तो 2-3 विकेट अगर मैच में मिलते इन्हें, तो इनके जो विकेट हैं वो ज़्यादा होते। तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के लिए ये। और रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। और संजू सैमसन भी फॉर्म में हैं। लेकिन अब देखना है कि भारतीय पारी किस तरह से शुरू होती है। पहली गेंद, और इस गेंद को हल्के से मिड ऑफ पर खेल दिया, और इस तरह से भारत का खाता पहली ही गेंद पर खुला। बिनूरा की ये गेंद जो कि शॉर्ट पिच थी, और इस गेंद में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि विकेट में कुछ हलचल है। तो संजू सैमसन ने अपना खाता खोला और भारत का भी खाता खोला। India won without loss, and Binuru Fernando is opening the bowling for Sri Lanka from over the wicket. He's a left-arm fast bowler, tall in stature. We saw him in action in the second T20. What marks him out is the catch he took at first slip, really, and this time being given the responsibility instead of Chamira. This time it's Rohit Sharma making sure the inside edge does not go onto the stumps, and the first slip coming into play. Not a very convincing defensive stroke, neither on the front foot nor on the back foot, and a dot ball to mark the second delivery of the first over. So Sanju Samson is in place of Ishan Kishan, who was hit on the visor yesterday of the bowling of Kumara. We haven't mentioned him. He is a stout fast bowler bowling at 140, 145 kilometers per hour, and we saw Ishan Kishan being dismissed cheaply yesterday after being hit on the visor in that manner. This time playing it off his toes there towards the vacant long leg boundary, Rohit Sharma. And that's very positive to see, Adesh. Rohit Sharma would be looking to bounce back after scoring only 1 in the second T20. He's batting on 4, and India's score is 5 without loss. और सब जानते हैं कि रोहित शर्मा ऑन साइड में बहुत ही शानदार खेलते हैं, और इनमें थोड़ी वीकनेस ज़रूर आई थी। ये जिस तरह से हुक और पुल करते हुए कैचेस देते थे, बाद में इन्होंने अपने शॉट्स पर कंट्रोल किया, और उसके बाद क्या लाजवाब बैट्समैन उभर कर आए। इंग्लैंड में जो सीरीज़ जीती थी, खासकर टेस्ट मैच में, दरअसल किसी भी खिलाड़ी को सबसे बड़ा मापने का जो मापदंड है वो टेस्ट क्रिकेट है। इस बीच बिनोरा की अगली गेंद, और इस गेंद को फाइन लेग की तरफ हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन बैट के ऊपरी सिरे पर गेंद लगी, एक तरह से बैट पर ठीक से आई नहीं, तो यहाँ पर कोई रन मिलने की संभावना नहीं थी। और फिलहाल भारत का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा जब कुछ गेंदें खेल लेते हैं और उसके बाद जो अंदाज उनका खेलने का होता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही दर्शनीय बैटिंग होती है उनकी। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास समय बहुत है किसी भी शॉट को खेलने के लिए। हमेशा से इस बात की चर्चा रही है कि उनमें प्रतिभा बहुत है, और जब से उन्होंने एक ओपनिंग बैट्समैन का रोल अदा किया, तब से उनकी एवरेज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। इस बीच एक क्रैकिंग शॉट ज़रूर था, लेकिन फॉलो थ्रू में बॉलर्स ने अपने शरीर की मदद से गेंद की गति को काफ़ी कम किया, अन्यथा ये चौका ज़रूर हो सकता था। बेन्यूरो देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। ये थोड़ा सा ओवर पिच बॉल थी, और गुडलैंड स्पॉट के आसपास उन्हें अपनी गेंदबाजी को रखना होगा। और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, फ़िलहाल राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। और रोहित शर्मा ने ड्राइव ज़रूर लगाया था, तो यहाँ पर बिनूरा की तारीफ़ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने शॉट की ताकत को अदा किया। और इस बीच बिनूरा अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए और फुल टॉस बनाकर उसे ड्राइव किया, हालांकि हवा में था, और यहाँ पर एक आसान सा जीवन दान मिलता हुआ रोहित शर्मा को, क्योंकि मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े थे उनके हाथ से गेंद छिटक गई। Yes, going down the track, and we've seen Rohit Sharma's technique in this over. He's been looking to dominate the bowler, and this is a bounce back from the second T20. We're into the third T20 now, and lucky to escape without being dismissed there. The mid-off fielder making a forward drive
towards a catch, but dropping it in the process. So Rohit Sharma should consider himself very lucky. And at the same time, Binuru Fernando, who's been brought in as the new ball bowler, is also struggling here because he had fielded a ball of his own bowling, which ricocheted off his hand. He was ringing in pain, while at the same time, he's also trying to mix the pace at which he's bowling, and he's struggling at this stage. But all credit to the left-arm fast bowler. He's trying to make a mark. Not very impressed as far as my co-commentator is concerned with his performance, but I think he has great potential for the future. He's tall. He's a left-arm fast bowler, and if he can make the most of his abilities, he can be a force to reckon with. Someone like Chaminda Vas, who was short in stature. जी मैं बिल्कुल वही नाम मेरी ज़बान पर था कि जो श्रीलंका ने आज तक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, चमिंडा वास जैसा इंटेलिजेंट बॉलर दुनिया ने नहीं देखा। और अगर स्पिनर की बात की जाए तो मुथैया मुरलीधरन। अब देखना है कि चमीरा किस तरह से साथ देते हैं, क्योंकि बॉलर्स अगर एक दूसरे को साथ ना दे तो फिर दिक्कत होती है। इस बीच काफ़ी उछाल मिला इस गेंद में और एक बार बीट हुए पूरी तरह से रोहित शर्मा। और ये जो जीवनदान मिला है ये कितना महंगा पड़ेगा श्रीलंका को, ये तो आने वाला समय बताएगा। और रोहित शर्मा को जब मौके मिलते हैं तो अक्सर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और बड़ा स्कोर बनाते हैं। In the last delivery of the previous over where the catch was dropped in mid-off, a single was picked, so he has retained the strike. And once again, not being able to take advantage of Chamira's short pitch delivery on the off stump. So playing and missing India, 6 for no loss. And this time playing it on the uprise towards a cover point fielder, straight to the fielder, no runs there, another dot ball. And Rohit Sharma was batting on 5 of 7 deliveries, maybe struggling. I'm sure someone may interpret that as him coming back into form, looking to dominate because of his tremendous record in the white ball cricket and in test match cricket as well. Into the second over right now, Chamira, who is looking to take advantage of Rohit Sharma's attitude right now towards batting on 5 of 7 deliveries. India 6 for no loss into the second over. Sanju Samson are the non-strikers and batting on 1. This time pitching it up and playing it straight to the mid-on fielder. So what's happening right now, Adesh, is that Rohit Sharma is finding the fieldsman both on the offside and in front of the wicket on the onside. ज़रूर वो मौके तलाश रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ऑन साइड और ऑफ साइड में कहाँ से फील्डर्स के बीच से गेंद को निकाला जा सकता है। इस बीच चरिथा लंका जो कि टीम के वाइस कैप्टन हैं, वो तालियां बजाकर अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चांस मिला है रोहित शर्मा को, ये शायद उनको काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। फ़िलहाल चबीरा अपने नए ओवर के साथ और ये गेंद लॉफ्टेड शॉट हवा में फील्डर गेंद के नीचे और इस बार कोई चूक नहीं की। और रोहित शर्मा यहाँ पर पेवेलियन की तरफ लौटते हुए डग आउट 2020 में कैसा कहा जाता है। और अर्जुन, आपका प्रिडिक्शन काफ़ी सही निकला और स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे जिस तरह से, और चांस भी मिला तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका हिला हुआ था और इसका फ़ायदा उठाया। निश्चित रूप से ये ऐसी गेंद नहीं थी जिसे लॉफ्टेड शॉट के रूप में खेला जाए, और ये टेलर मेड कैच था एक तरह से। There was really no need for him to slog, and we saw in the first and the second over where he's trying to go down the track and force the paces against inexperienced bowlers, and this time not being able to get under it, skying it, and the mid-off fielder doing well to catch that under the lights. Remember, this is a day and night T20 game, and Rohit Sharma, the captain of the Indian side, dismissed for only 5. बहुत बड़ा झटका है। और जैसे कि आपने फ्लड लाइट की बात की तो अर्जुन देखिए, ये जो खिलाड़ी दो दो चश्मे लगाकर रखते हैं अपनी कैप पर, इससे बड़ा असर पड़ता है। जो विज़न है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, या फिर कई खिलाड़ी कैप लगाकर फील्डिंग करते हैं तो उसकी रीज़न यही होता है कि जो फ्लड लाइट है उसका रिफ्लेक्शन आंखों पर इस तरह से ना पड़े कि बॉल का विज़न सही ना हो। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका। और फ़िलहाल श्रेयस अय्यर इस समय बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए हैं, और उन्होंने जिस तरह से गेंद को कट किया और उसके बाद 1 रन भारत के खाते में जुड़ता हुआ, भारत का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर अब देखना होगा कि इस एडवांटेज का फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं श्रीलंकन गेंदबाज। शुरुआती
ओवर्स में जैसा कि आप लगातार कह रहे थे कि रोहित शर्मा को काफ़ी संभल कर खेलना होगा और चीपली आउट की बात आप कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एक तरह से जो पिछला मुकाबला था उसे दोहराया रोहित शर्मा ने। Well, clearly Ishan Kishan also, we saw him dismissed for 16 after being hit on the visor, and he was also trying to slog it out despite being the man of the match in the first T20. India 7 for 1, Rohit Sharma dismissed for 5, and we have Shreyas Iyer, who is at the non-striker's end. Samson on strike, playing a forward defensive stroke, looking quite confident against Chamira. And Shreyas Iyer has been the player of the tournament so far as batting is concerned. He scored 57 not out in the first T20. Then India scored 199 for 2. And then in the second T20, he was the player of the match. He scored 74 not out of 44 deliveries, 74 out for 44 deliveries. And he's the reason why India won that T20 match. अर्जुन दरअसल फियरलेस हैं, श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो, और प्रूवन बैट्समैन हैं और उन पर काफ़ी भरोसा किया जाता है। इस वजह से लगातार उन्हें मौके भी मिलते हैं। हालांकि टेस्ट टीम में कई बार उन्हें जगह मिली, कई बार मौके गंवाए, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी बड़ा नाम कमाएंगे। और जब टेस्ट सीरीज़ होगी तो वहाँ पर देखा जाएगा कि अब रोहित शर्मा किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्हें एक चांस मिल भी चुका था तो उसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाए। फिलहाल संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर विकेट पर। भारत का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद थी दरअसल जिस पर रोहित शर्मा ने आसान सा कैच दिया मिड ऑफ पर, और आप देखिए कि मिड ऑफ पर ही उनका कैच छूटा था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा फील्डर को। Well, it was not an easy catch for the mid-off fielder, and the reason why it appeared to be almost an overpitch delivery is because he went down the track, but the bounce off the wicket is what undid Rohit Sharma, out for 5. India 7 for 1, and it is Fernando who is into his second over now. Shreyas Iyer batting on a 1. He'll have to curb his natural instinct to try and attack at this stage. The asking rate is a little more than 7 runs and over. So it's just a question of scoring a run a ball and picking up a boundary. Within the T20 format, you have the field restrictions in the first 6 overs in the power play phase. And even after the power play phase from over number 7 to 20, the field restrictions are not so limiting for the batsman. So Binuru into his next delivery, this time testing Shreyas Iyer and playing it towards that vacant mid-wicket area for another single. 8 for 1. And more importantly, they're rotating the strike. So it's Samson on strike, batting on 1. और अर्जुन, जब हम श्रीलंका की इनिंग के दौरान बात कर रहे थे कि भारत को किस तरह की पिच मिलेगी, तो विकेट में काफ़ी बाउंस है और जो श्रीलंकन बॉलर हैं इनकी बिल्ट काफ़ी अच्छी है, और जो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से बैट्समैन परेशान करते हैं बॉलर्स को, तो बॉलर्स भी काफ़ी परेशान करते हैं, और फिर जो डायगोनली कई बार बॉलिंग करते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तो काफ़ी स्मूथ एक्शन है इनका। अदरवाइज़ हमने श्रीलंका के कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स पहले देखे हैं जो काफ़ी परेशान करते थे अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से ही। Binuru this time dropping his pace and pitching it right up to the batsman who plays it to that deep mid-off area, picks up a single. 9 for 1, and I completely agree with you. If you look at the turf in the field, it's very green. And you look at the 3 pitches, the pitch on which they are batting on right now, it has a tinge of grass. And that's what's making the ball really talk on this pitch, man, every time it pitches on it. This time Binuru just pitching it up and finding the gap there. Shreyas Iyer picks up a boundary, valuable boundary at this stage, and just breaking the shackles. India 13 for 1. ज़रूर, और इससे जो बॉलर्स के हौसले हैं वो थोड़ा सा पस्त होंगे, और करुणा रत्ने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे होंगे कि रोहित शर्मा ने उन्हें इतनी जल्दी मौका दे दिया दूसरा कैच देकर, और पहला कैच हालांकि उनसे छूटा था, लेकिन ये बहुत ही शानदार ड्राइव था। ओवर पिच गेंद थी और बिल्कुल गेंद की पिच पर आए, और पूरा भार उन्होंने बैट का गेंद पर दिया, जिसकी वजह से शॉट में काफ़ी तेज़ी थी। और लश ग्रीन ये आउटफील्ड है, तो आउटफील्ड काफ़ी तेज़, और विकेट में भी जिस तरह से उछाले, तो जो
स्ट्रोक बैट्समैन होते हैं उनको ऐसे विकेट पर खेलने में मज़ा आता है, जो अटैकिंग बैट्समैन होते हैं। Yes, Shreyas Iyer this time finding the point fielder on the offside, square off the wicket. No runs off that delivery. But before that, Adesh, he was able to pierce the gap between cover point and mid-off. And the hallmark of any good batsman is to be able to find the gaps, because we saw Rohit Sharma also middle the ball, but he was finding the fielder both on the offside and in front of the wicket on the onside, and which is why he was frustrated. And he went down the track, lost his wicket for 5 only. What we see with Shreyas Iyer is just a continuation of good form. 57 not out of the first T20, 74 in the second T20, and now the hopes would be pinging on this batsman to ensure that India do not lose their way again. दरअसल डिस्ट्रॉय किया उन्होंने श्रीलंकन गेंदबाजों को पिछले दोनों 2020 मुकाबलों में, और बड़ी अहम भूमिका रही उनकी भारत को मैच जिताने में, और अच्छी फॉर्म में हैं, आईपीएल में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और आप देखिए कि संजू सैमसन तो एक मेकशिफ्ट ओपनर के तौर पर यहाँ आए हैं ईशान किशन की जगह, लेकिन ये जो श्रेयस अय्यर हैं वन डाउन आए हैं, लेकिन ये भी बेसिकली ओपनर बैट्समैन ही हैं। और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन लाहिरू कुमारा यहाँ पर आते हुए, और ये परिवर्तन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। एनर्जी को बचाना चाहते हैं। 14 रन भारत का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। लाहिरू कुमारा भी काफ़ी एनर्जेटिक है। Look at that pace, 147 kilometers per hour, and he's a person who got Ishan Kishan. He caught him off guard by hitting him on the visor, who is now going through medical checkups, CT scans, and it's a deceptive pace which the batsman needs to watch out for, especially when you play the pull or the hook shock. So Shreyas Iyer batting on 6 now, 6 deliveries, 1 slip in place, and this time making room and playing it in that vacant third man area. I tell you what, this is probably the shot of the match. Shreyas Iyer in form, batting on 10 or 7 deliveries, and word exchange between Kumara and Shreyas Iyer. काफ़ी यहाँ पर एक तरह से टीज़ किया और डिमोरलाइज किया। देखिए ये बहुत ही प्लानिंग के साथ लगाया गया शॉट था। हालांकि वो प्री बाइंड थे कि मुझे इस तरह का शॉट लगाना है। बॉल में काफ़ी बाउंस था, लेकिन उसको अपर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल किया। और ये 2020 के जो नए शॉट्स हैं, अब ये नए नहीं लगते, बल्कि दुनिया भर के बैट्समैन खेलते हैं, चाहे स्लिप के ऊपर से, विकेट कीपर के ऊपर से, और ये तो देखिए पॉइंट फील्डर के ऊपर से इन्होंने अपर कट लगाया। इस बीच अगली गेंद, और इस बार ओवर पे गेंद थी, और कवर और एक्स्ट्रा कवर फील्डर के बीच से गेंद दंदन आती हुई सीधे 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और भारत का स्कोर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार दूसरा चौका निकलता हुआ यहाँ श्रेयस अय्यर के बल्ले से। फियरलेस बैट्समैन है, जैसा कि मैंने पहले कहा। Once again finding the gap between cover and extra cover and picking up the boundary, playing it along the ground on the front foot, and that drive, timing the ball sweetly, and another boundary. Earlier one playing it over the infield, and this time playing it on the ground. और सबसे अच्छी बात ये देखिए कि गेंद के पिच होते जिस तरह से वो शॉट्स के लिए गए, उसके बाद उन्होंने अपनी बैक लिफ्ट को कंप्लीट किया, और बिल्कुल कारपेट के सहारे गेंद गई, बिल्कुल ज़मीन के सहारे, यानी किसी भी तरह का कोई खतरा इस शॉट में नहीं था। और इससे श्रेयस अय्यर का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। फिलहाल भारत का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, और लाहिरू कुमारा, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को वो खुराक मिल गई है। बैट्समैन के साथ एक है ना स्वीट वॉइस आती है जब अच्छा शॉट लगता है, जैसे उन्होंने अपर स्ट्रोक लगाया और अब बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया था। और कवर ड्राइव लगाने के बाद जो चौका मिलता है ना, बैट्समैन के लिए वो उसके जोश को दुगना कर देता है। अब यहाँ पर संजू सैमसन स्ट्राइक के लिए तैयार। अगली गेंद, और इसको ड्राइव कर दिया था मिड विकेट की तरफ, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर ज़रूर चली जाती। 2 फील्डर्स वहाँ पर मौजूद थे, एक फील्डर्स ने गेंद को रोका, दूसरे ने थ्रो किया। अच्छी अंडरस्टैंडिंग फील्डर्स में, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी फील्डर की, जिस तरह से डाइव लगाकर उन्होंने गेंद को रोका। It was a deep mid-wicket fielder who ran all the way to his right and cut it off. Otherwise, it would have been a certain boundary. 24 for 1. Shreyas Iyer in tremendous form, playing it on the back foot, just using his wrist to turn it on the onside for 2 valuable runs and a good relay fielding there, even though there was an element of misfield. But Sri Lanka looking to fight back here, trying to
salvage a win in this T20 series, 24 for 1, final delivery, and an almost identical shot, but this time finding the vacant mid-wicket area for another boundary, 28 for 1, Shreyas Iyer on song. आप देखिए कि कितनी ख़राब लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पिछली गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट पर शानदार शॉट लगाया था और फिर ओवर पिच गेंद, जबकि फास्ट बॉलर्स के लिए ये कहा जाता है कि आप चौथे स्टंप पर बॉल कीजिए, ऑफ स्टंप पर, अगर बैट्समैन को रोकना है तो। और ऑन साइड में चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, आप देखिए कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनको अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है तो थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद की जाए गुड लेंथ के आसपास और ऑफ स्टंप पर अटैक रखा जाए। ये तो टेलर मेड गेंदें जो मिलती हैं, इसका दरअसल ये बल्लेबाज इंतज़ार करते हैं और ये आईपीएल खेल खेल कर इतना मैच्योर हो चुके हैं कि इन पर इस बॉल से दबाव नहीं बनाया जा सकता और जैसे जैसे अभी थोड़ा सा और खुलते जाएंगे तो यही गेंदें छक्कों में कन्वर्ट होती भी नजर आएंगी। Well, Chamira now bowling his second over. He has figures a 1 for 1, and the batsman Shreyas Iyer just playing it towards that mid-on area, dot ball there. The man on form, and as my co-commentator just said that given enough time, you'd find Shreyas Iyer taking the aerial route as well. But at this stage, playing it along the ground, piercing the gap, taking full advantage of the power play in the first 6 overs is what's actually required. 29 for 1. Shreyas Iyer batting on 20 of 11 deliveries. Samson at the non-strikers end batting on 4. Chamira into his second delivery, and this time playing with soft hands. Shreyas Iyer rotates the strike as he plays it down towards the mid-on fielder, and that's the confidence we are seeing. Shreyas Iyer's call it was to take the run because he was facing the fielder, and that is a maturity we are seeing in Shreyas Iyer into this T20, the third one. और अर्जुन, आपने देखा कि जो तीनों बॉलर्स हैं, ठीक है रोहित शर्मा का विकेट ज़रूर मिला, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन ये ला रहे हैं अपनी बॉलिंग में, एक ही स्पॉट पर बॉल नहीं कर रहे, हालांकि विकेट से मदद मिल रही है, विकेट में काफ़ी बाउंस है, तो यहाँ पर अगर वो थोड़ा कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करें तो रनों की रफ्तार पर भी रोक लगेगी और बल्लेबाजों के आउट होने की संभावनाएं भी होंगी। लेकिन बहुत ही ख़राब लेंथ लाइंस के साथ ये बॉल करे, इस बीच ये बाउंसर, और इस गेंद को ज़रूर खेलना तो चाहते थे लेकिन ये वाइड का इशारा भी हुआ, चमीरा थे गेंदबाज, तो लाइन और लेंथ बहुत ख़राब है। देखिए भारत के गेंदबाजों ने जब गेंदबाजी की, आवेश खान और मोहम्मद सिराज ने, तो अपनी जो स्विंग थी उस पर पूरा कंट्रोल रखा और यही वजह थी कि श्रीलंका का जो टॉप ऑर्डर था पूरी तरह से तहस नहस किया। यहाँ पर कभी शॉर्ट पिच गेंद, कभी लेग स्टंप पर गेंद, कभी पैड्स पर गेंद, और एक तरह से अभी अपनी दिशा नहीं हासिल कर चुके हैं। इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को फ्लिक कर दिया था, यहाँ पर मिसफील्डिंग ज़रूर हुई फील्डर से, जिसका फ़ायदा उठाते हुए 1 रन और बैट्समैन के खाते में जाता हुआ भारत का स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 4.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है, यानी 8 रन के करीब जो भारत का रन रेट है वो, और ये अच्छा रन रेट कहा जाएगा। Yes, it was Kumara in that short fine leg position as a single picked up on the onside behind the wicket, 32 for 1. And we can also see Chamira lacking some confidence, which is why he's bowling it short. One slip in place now to Shreyas Iyer, and a good delivery, a good length, but once again turned it towards a mid-on fielder and picking up another single, 33 for 1. And this is what's required here into the 5th over right now. 2 more deliveries to go before the end of the over. It's Samson batting on 5 to rotate the strike, pick up the singles, and then pick up a boundary every now and then. बिल्कुल अर्जुन, और देखिए जहाँ तक पिछले 2 मुकाबले खेले गए, आज के विकेट की अगर बात की जाए तो डबल बाउंस नहीं है। हालांकि वेदर काफ़ी हैवी था, शायद थोड़ी बहुत बारिश भी हुई हो, क्योंकि दिल्ली में भी कल रात को बारिश हुई, और ग्राउंड्समैन की तारीफ़ करनी होगी, बहुत ही लश ग्रीन और फास्ट आउटफील्ड है और विकेट से काफ़ी मदद है, लेकिन श्रीलंकन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन अब यहाँ पर एक अच्छी बॉल थी ज़रूर, जो मिडिल स्टंप को छोड़कर लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, यहाँ पर हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन संजू सैमसन, और भाग्यशाली रहे कि गेंद ने उनके बैट का किनारा नहीं लिया, और विकेट कीपर ज़रूर तैयार थे किसी भी कैच को पकड़ने के लिए,
और बहुत ही शानदार गेंद थी यहाँ पर, इन स्विंग हुई और बॉलर्स को यहाँ पर जिस तरह से कुछ कर दिखाने का मौका मिला, लगातार चर्चा कर रहे थे कि बॉलर्स यहाँ पर कुछ करें सही लेंथ और लाइन के साथ, तो चमीरा की ये काफ़ी समझदारी से की हुई गेंद थी। Seam bowling by Chamira, pitching it on the seam and this time playing it over the infield in front of the wicket towards that long on boundary. India is now 37 for 1 because both Sanju Samson and Shreyas Iyer are going great guns and really dominating the ball after 5 overs. बिल्कुल, और जो कंसिस्टेंसी होती है बॉलर्स में वो कुछ इस तरह की नज़र नहीं आई। 2 गेंदें बहुत अच्छी की, यहाँ पर ओवर पिच गेंद की और संजू सैमसन तो तैयार ही थे। उन्होंने उस गेंद को ऑन द राइज कह सकते हैं, अच्छा हिट लगाया और क्योंकि सर्कल था, फील्डर्स था नहीं, तो आसानी से चौका मिला। और अब हमारे साथी कमेंटेटर इंतज़ार कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और के आउट होने के बाद संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर जिस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करें। अर्जुन भाई, मेरे तो पसीने आ गए हैं इतनी शानदार बल्लेबाजी को डिस्क्राइब करते हुए। That's why you should take a break and I should take a break, and it's time to rotate the strike and give it now to Amit and Ayush. स्वागत है अमित और आयुष आपका। और काफ़ी शानदार फॉर्म में फ़िलहाल श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। बिनूरा यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत करते हुए, भारत का स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमित जी, स्वागत है आपका। Thank you very much, Adesh and Arjun. Shreyas Iyer, 23 not out of 14 deliveries, and this first ball flicked away nicely towards the mid-wicket area for a quick single. So this has been a good batting display after the loss of Rohit Sharma. Shreyas Iyer, what a form he has been in. The first T20 unbeaten, 57 of 20 deliveries. And in the second T20 yesterday at Dharamshala, 74 not out of 44 deliveries. Yet to be dismissed in this series so far. Right now, the 6th over of Indian innings in progress as Samson hits that ball towards the third man area for another 4 runs. So good partnership going between Sanju Samson and Shreyas Iyer. Ayush. अमित, ये गेंद कुछ कह रही थी, जैसे वो एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, ये गेंद कह रही थी आ बैट मुझे मार। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बार थी, सिर्फ बल्ला अड़ाना था और वही किया संजू सैमसन ने। स्लिप में एक खिलाड़ी जरूर मौजूद था, थर्ड मैन की दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं। स्लिप को यदि आपने भेज दिया तो आपको चौका मिलना ही था और वही हुआ, चौके का फायदा मिला। श्रेयस अय्यर तो ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में, और वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो संजू सैमसन भी कुछ ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों का सामना किया, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छठे ओवर की तीसरी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इसको फेंकने का प्रयास करा, टप्पा खाने के बाद में उसको मिड विकेट की तरफ धकेला है और जब तक फील्डर उसे फील्ड करेंगे 1 रन ले लिया। स्ट्राइक रोटेट कर ली और स्ट्राइक पे लेकर आए हैं श्रेयस अय्यर को। धीमी गति की गेंद थी, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को किया था। भारतीय टीम का स्कोर जो है वो 43 रन हो चुका है। अभी छठा ओवर गतिमान है और अगर आप टाइम टेबल को थोड़ा सा पीछे करते हैं तो उस घड़ी को पीछे करने पे आपको पता चलेगा कि 43 रन जो थे श्रीलंका ने तब बनाए थे जब श्रीलंका 10 ओवर से ज्यादा का खेल खेल चुकी थी। छठे ओवर की चौथी गेंद, 147 का टारगेट है भारतीय टीम के सामने और इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। एक बार फिर गुड लेंथ डिलीवरी डाउन द लेग साइड थी, कलाइयों का इस्तेमाल कर दिया, फाइन लेग को फील्डर को बीट करने के बाद गेंद सीधे 4 रन के लिए जाएगी। एक और चौका और बिनुरा को इस ओवर में 2 बार चौके के लिए धकेल दिया है भारतीय बल्लेबाजों ने। पिछली बार संजू सैमसन, इस बार श्रेयस अय्यर। अय्यर पहुंच चुके हैं 27 पे, 15 गेंदों का किया है सामना और भारतीय टीम का जो टोटल वो बढ़कर जा पहुंचा है 47 रन। रोहित शर्मा का विकेट जरूर भारतीय टीम ने गंवाया, लेकिन उसके बाद भी बहुत डीप बल्लेबाजी करनी है और जिस तरह से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित, मुझे लगता नहीं है कि बाकी बल्लेबाजों का नंबर जल्दी आना है। Well, so long as it helps India's cause, they'll be happy with Shreyas doing bulk of the scoring because as they say in cricket, if you are in form scoring runs, then keep going. As this ball, Shreyas could not connect the bat with ball, no run results. So good comeback by Binura Fernando there. So far in the series, the biggest accomplishment of Binura would be the catch he took of Sanju Samson the other day off the bowling of Lairu Kumara. And therefore, Sanju Samson would certainly like to settle some scores. India needs another 100 runs of 85 deliveries. They are at 47 for the loss of Rohit Sharma's wicket. The target they're chasing to win this third T20 international is 147.
छठे ओवर की अंतिम गेंद है, पावर प्ले ओवर की और दबाव जरूर है बिनूरा पे। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड डिलीवरी थी, ऑफ साइड में धकेला और कवर्स के फील्डर ने फील्ड किया, डॉट के रूप में ओवर हुआ समाप्त। तो अंतिम गेंद पे कोई रन मिला नहीं भारतीय बल्लेबाजों को और 6 ओवर पावर प्ले की जो अवधि आपको मिलती है वो समाप्त हो चुकी है। भारतीय टीम का स्कोर 47 रन। अब जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। एक अच्छा एडवांटेज होता है अमित, जब आपको पता है कि आप ड्राइविंग सीट में हैं और यदि आपके बल्लेबाज आपकी टीम के लिए वो रन्स निकाल के देते हैं जो महत्वपूर्ण है, कम विकेट्स के साथ आप कम ओवर्स में मुकाबले जीतते हैं, तो मुकाबले में सिर्फ वहाँ मुकाबला जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक मेंटल रेस होती है जो भी आप जीतते हैं। और आपको पता है कि यस, आपके युवा खिलाड़ियों में वो क्षमता है, जब आप टूर्नामेंट से एंटर करेंगे, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, तो वहां पे जो नेट रन रेट का इशू आएगा वो सॉर्ट होगा अगर आप जल्दी गेम खत्म करना सीख जाएं तो। Well, a lot of these finer nuances that India needs to work on and ensure that people raise their bar and take responsibility. Certainly, kudos to Shreyas Iyer because in the absence of Virat Kohli and Rishabh Pant in the middle order, both of them rested for the T20 series. They are expected to be back for the 2 test matches that will be followed right after the T20 series concludes today. I think Shreyas Iyer has been quick to raise the hand and say, I can be dependable at number 3. For sure, when Virat returns in the T20 format, number 3 does belong to Virat. It'll be interesting to see where does Shreyas bat then, and does Venkatesh Iyer bat or 5 or 6? Does Rohit go with Jadeja up the order as the 7th over begins? And this first ball has been dispatched from the point area for another boundary, coming from the bat of Sanju Samson, who is matching Shreyas Iyer for every stroke. Sanju Samson now unbeaten on 18, accompanying him Shreyas Iyer on 27 as good partnership developing for the second wicket. The first wicket fell when the Indian score read 6 runs. That's when Rohit Sharma got out, caught by Karunaratne of the bowling of Jamira. But since then, both of them not only have put on this partnership, I think they've been flawless and they've hardly given the bowlers any chance. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अभी तक 9 चौके जड़ दिए हैं अपने बल्लों से। 18 पे सैमसंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाहरी किनारा और ये विकेट, पहली सफलता जिसकी दरकार थी श्रीलंका को, और वो विकेट करुणारत्ने ने निकाल के दिया है। संजू सैमसंग वो बल्लेबाजी कर रहे थे, आउटसाइड एज ली और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हल्की सी मूवमेंट थी उस गेंद में, दरकार यही थी कि टप्पा खाने के बाद यदि कोई मूवमेंट होती है, स्लिप जरूर नहीं लगा रखी थी क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने अपने उन शॉट्स के साथ, और इसका फायदा जरूर उठा लिया यहाँ गेंदबाज ने। शुरुआत बुरी थी, चौके के साथ ओवर का आगाज हुआ, लेकिन अंत जो है वो कैसा होगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो आगाज आगे की तरफ बढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है अमित, क्योंकि विकेट चटक लिया संजू सैमसन। एक बड़ा खिलाड़ी है, युवा है और जान रहे हैं कि अपनी टीम के लिए अगर अभी परफॉर्म नहीं करते तो टीम में जगह बनाना भी बहुत मुश्किल है। Well, Karunaratne scored unbeaten 12 runs, and that unbeaten partnership of 86 runs with the skipper for the 6th wicket that ensured 146 for 5 for Sri Lanka, and now showing his magic with the ball. So he's a right-arm fast medium, Chamika Karunaratne, getting some movement, some assistance from the pitch there, and Sanju Samson, who's looked so good so far, having scored 18 runs, just losing the concentration and nicking one to the keeper's glove. So that's the second wicket that India loses, and Shreyas Iyer is still there. He's the man in form, but given the depth of Indian batting, one expects that India should still continue with the momentum. वेल, दीपक हुड्डा अब नए बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने पे आए हैं, स्ट्राइक पे हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे, धकेल दिया है उसे लॉन्ग ऑन की तरफ में और एक सिंगल बड़ी आराम से मिलेगा। इसी के साथ खाता खुला दीपक हुड्डा का 1 रन के स्कोर पे। मुझे लगा था कि कहीं यो ना हो कि अय्यर के साथ एक और अय्यर बल्लेबाजी करना है, श्रेयस के साथ वेंकटेश को भेजा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दीपक हुड्डा एक अच्छे खिलाड़ी, रणजी क्रिकेट में पहले हरियाणा के लिए परफॉर्म किया करते थे और अब राजस्थान की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। संजू सैमसंग ने बाहरी किनारा दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ दीपक हुड्डा मैदान में आए। मैदान में आते ही रन्स बनाने होंगे, क्योंकि आपको अगर टीम में जगह चाहिए तो आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। जब जब आपको मौके दिए जा रहे हैं आपको अपने टीम्स के लिए रन बनाने होंगे। इस बार कलाइयों का हल्का सा इस्तेमाल किया, थर्ड मैन रीजन में धकेल दिया और एक सिंगल कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। हुडा स्कोर को बढ़ाएंगे और स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है भारतीय टीम का 53 रन पे 2 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर गतिमान, 2 और गेंदें फेंकी जानी बाकी है।
दीपक हुडा अब स्ट्राइक पर, श्रेयस अय्यर 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की शुरुआत थोड़ी सी बुरी रही थी, पहली गेंद पे करुणा रत्ने को चौका लगा, उसके बाद विकेट, एक अच्छा कमबैक और फिर दोनों बल्लेबाजों ने एक एक सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया। जानते हैं कि रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है और जब तक आपको रिस्क नहीं लेनी तो आप आराम से बल्लेबाजी कीजिए। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर थी, उसे सिर्फ डिफेंड कर दिया बल्लेबाज दीपक हुडा ने। अमित, बहुत क्षमता है इस खिलाड़ी की, लंबे लंबे छक्के जड़ते हैं ये। पिछले मैचेस में भी हमने देखा है कि जब भी जरूरत पड़ती है बहुत लंबी स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं। पार्ट टाइम स्पिनर है, आज जरूरत नहीं पड़ी इनको गेंदबाजी करने की तो बल्लेबाजी में आए हाथ आजमाने। Well, T20 format of international cricket does warrant that every nation has a couple of very good all-rounders. India is lucky that in addition to Ravindra Jadeja, Venkatesh Iyer, we now have Deepak Huda as well, who's been sent by the skipper at number 4, as this one has been flicked away by Deepak Huda towards the square boundary region, and he steals a couple of runs here. That's a good stroke. And right now, it would be a good opportunity for young Deepak Huda to prove his skills in batting as well. But what is interesting, Ayush, is that in the first T20, Captain Rohit sent Ravindra Jadeja at number 4. Yesterday, in the second T20 International, it was Sanju Samson. And today, we've got Deepak Huda. So, too many changes? आपके पास विराट कोहली नहीं है जो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं, तो वहां वो जो श्रेयस अय्यर है वो अपने कदम जमा चुके हैं। पहले मैच में हमने देखा अर्धशतक बनाया, नाबाद रहे, दूसरे मैच में अर्धशतक नाबाद रहे, तो उनको तो चेंज करने का कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। यहाँ पे जिन जिन खिलाड़ियों को आप देखेंगे, अमित आपने नोट किया होगा कि ये सीरीज तो भारतीय टीम जीत चुकी है, अब ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा समय से है नहीं। संजू सैमसन को दूसरे मुकाबले में मौका दे दिया क्योंकि आप 1-0 से आगे थे। संजू सैमसन ने जब वहां चौथे नंबर पे परफॉर्म कर दिया और वो मुकाबला भी आप जीत गए, तो इस मुकाबले में दीपक हुडा को प्रमोट कर दिया ताकि आपको एक्सपोजर मिले, ज्यादा से ज्यादा गेंदों का आप सामना करें और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करना है वो आप सिचुएशंस के आधार पर सीखें। The eighth over of Indian innings begins now as Captain Shanaka has brought in the leg spinner Jeffrey Wendese. He replaces Binura Fernando, and this first delivery has been hit for another couple of runs by Deepak Huda. And these are very good strokes coming from the meat of the bat from Deepak. Perhaps a testimony to the quality that he brings to the Indian 11 in terms of his batting skills. Jeffrey Wendese was part of the playing 11 in first T20, missed out yesterday. And it'll be interesting to see his quality of leg spin. This one, the second delivery, was a flighted one. Huda reaching out and meeting it on the volley, hitting it towards the mid-wicket area for another single. And I think it's a good brain usage from the young batsman to also rotate the strike and take those crucial singles. महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अभी तक आप फास्ट बॉलर्स का सामना कर रहे थे, तो वो जो पेस था उससे आप यूज टू हो गए। अब जब गति में परिवर्तन किया है विपक्षी कप्तान ने, तो आप समय लीजिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अभी करंट रन रेट से नीचे ही है, तो आपकी करंट रन रेट रिक्वायर्ड से ज्यादा है, यानी कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अगर आप सिंगल डबल्स लेके एक आध ओवर में कुछ ट्रायल लेके आप जानना चाहते हैं, भांपना चाहते हैं कि किस तरह की गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी कर रहा है, तो आप उसको भी भांप सकते हैं। और ये तो डॉट डिलीवरी, चौथी गेंद 8वें ओवर की, दीपक हुडा को फ्लाइट कराने का प्रयास कर रहे थे, लगातार लेग स्पिन गेंदें आप कर रहे हैं और गेंद टप्पा खाने के बाद कोई मूव नहीं रही। ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उसे खेल दिया, कोई रन मिलेगा नहीं उसके लिए। 4 गेंदें इस ओवर में डाली जा चुकी है, 58 रन पे भारतीय टीम का स्कोर है। 2 विकेट जरूर गए, कदमों का इस्तेमाल किया, सिर्फ कदमों के इस्तेमाल से रन नहीं बनते, आपको बल्ला भी तेज चलाना पड़ता है। भाप गए थे कि गेंद टप्पा खाने के बाद एक अच्छे उछाल के साथ आई और इसी के चलते ज्यादा रिस्क ली नहीं हुडा ने, सिर्फ एक सिंगल और छोर बदल लिया। श्रेयस अय्यर अब स्ट्राइक पर आए, अंतिम गेंद 8वें ओवर की, वेंडर से गेंदबाजी करेंगे। 7 से 20 ओवर में मैक्सिमम 5 खिलाड़ी बाहर 30 यार्ड के रह सकते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए श्रीलंका की साइड डाउन द ग्राउंड आके खेल दिया। यहां तो कोई फील्डर नहीं होता, अंपायर को आप क्रॉस कर दीजिए और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। ओवर की समाप्ति एक अच्छे नोट पे श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकला एक और चौका। इसी की दरकार है भारतीय टीम को कि कहीं पे आपने वो डॉट डिलीवरीज निकाली अमित, उनको कंपनसेट करना होगा और वही करते हुए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। Well, he conceded 4 singles in the first 5 deliveries and looked impressive, but that last delivery went for that boundary, thereby giving 8 runs in his first over. Wendese in the first T20 had given away 34 runs in 4 overs, didn't pick up the wicket. So he is a leg spinner,
But with all this experience, then with time, maybe he'll be able to contribute because it's essential to get some figures in that last column, pick up wickets as well. But the good thing is that the young leg spinner is having the courage to flight the ball and invite the batsman. But the margin of error at the highest level is so less that these are very experienced batsmen to take advantage of it. Ninth over progresses as India are at a comfortable 63 runs for the loss of 2 wickets. करंट रन रेट भारत की 7.46। अंतिम गेंद जो थी एकदम कदमों में की थी, और श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म चल रहा है ना, यदि आप उनके चरणों में जाकर समर्पण करेंगे गेंद का तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आशीर्वाद देंगे या तो चौके या छक्के के रूप में। और वही हो रहा है फिलहाल श्रीलंकाई गेंदबाजों के साथ। श्रेयस अय्यर 34 रन के स्कोर पर 90 ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर पटकी हुई गेंद, उसे धकेल दिया हल्के हाथों से ऑफ साइड में। फील्डर मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर से दौड़ के आएंगे, फील्ड करेंगे जब तक कंफर्टेबली 2 रन ले चुके हैं भारतीय बल्लेबाज। तो स्ट्राइक अभी भी श्रेयस अय्यर के पास रहेगी। उनका स्कोर 36 है, 22 गेंदों का सामना किया है। करंट रन रेट भारतीय टीम की 7.92 और रिक्वायर्ड जो है वो 6.74 की है। 1 से 10 रन जब वो बनाते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट 92 की रहती है। जब 11 से 20 वो बना देते हैं तो 110 के पास स्ट्राइक रेट चली जाती है। और श्रेयस अय्यर ने अभी आप देखेंगे कि 6 गेंदों के अंदर पहले 10 रन कंप्लीट किए, 4 गेंदों में बचे हुए कुछ जो 10 थे वो कंप्लीट किए। और यहां डाउन द लेग साइड लो फुल टॉस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में धकेलकर चौका अर्जित किया। एक और प्यारा सा शॉट श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ। इसी के साथ 40 पे पहुंच चुके हैं। महज 23 गेंदों का सामना किया, 11 चौके भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से आए हैं। पुअर बॉल अमित। Absolutely, it was a loose delivery on the leg side, and with the form that Shreyas is in, all he wanted to do was just connect bat with ball, and the fielder who was standing up had no chance to stop that one. Another 4 runs to Shreyas and India's score. India at 74-2. In comes Karunaratne with his 4th delivery of the 9th over. This one a better comeback from the bowler as Shreyas hits that delivery towards the mid-on region for a single. Shreyas right now has scored 41 runs of 24 deliveries and had 131 runs of the first 2. So he scored 172 runs so far. In all probability, he'll be the top run getter of the 3 T20 International and probably a front runner for the player of the series. But the task is not over yet. 8.4 overs, India 71 for 2. Deepak Hooda right now taking strike, as this one is a short pitch delivery, and the innovativeness of the T20 just showing the full blade of the bat, and the ball goes on the top from the wicketkeeper for 1 bounce 4. अपरकट खेल दिया विकेट कीपर के सर के ऊपर से, और इस तरह के शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। दीपक हुड्डा लगभग 6.25 फीट के कद का ये खिलाड़ी है। इन्हें अगर आप बाउंसर मारेंगे तो आपके पास रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए, वरना ये आपको सिर्फ दिशा दिखाएंगे। और वही किया, एकदम बाहरी किनारा पूरा का पूरा ब्लेड खोल दिया, अपर कट खेल दिया, और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली जाए या अंपायर के सर के ऊपर से चली जाए तो उस दिशा में कोई फील्डर मौजूद रहता नहीं है और परिणाम बहुत बुरा होता है। वही हुआ। अंतिम गेंद इस ओवर की 75 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। 2 विकेट गंवाए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट आके टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आई, जिसे मिड विकेट दिशा में धकेलकर एक और रन कंप्लीट किया दीपक हुड्डा ने, और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। तो ओवर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जो स्ट्रैटेजी है भारतीय टीम की वो अभी भी वही है। और अमित, स्ट्रैटेजी कुछ ज्यादा बुरी नहीं है। आपको जब लूज बॉल्स मिलती है, जो कि आमतौर पे श्रीलंकाई लेस एक्सपीरियंस बॉलर है, तो एक ओवर में 1-2 लूज बॉल्स आपको मिल जाती है, उस पर आप कन्वर्ट कीजिए चौके छक्के में। जब आपको लाइन टू लाइन बॉल मिल रही है, आप उसका सम्मान कीजिए। जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कीजिए, तो वो भी कर रहे हैं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो पार्टनरशिप लंबी जाने के चांसेस बढ़ते हैं। I think in the short stint that he has spent at the crease, Deepak Hooda would certainly impress many, because after getting those 4 runs by a very elegant uppercut to a bouncer that was bowled by Karunaratne, he showed sense by taking a single and ensuring rotation of the strike. And this is what cricket is all about, that while one does love the 4s and 6s and the big hits, T20 is also about the singles, as the 10th over starts with the leg spinner Wandersay. The first ball has been hit towards the deep mid-wicket area for a single. Shreyas batting on 41, Deepak Hooda on 12. So again, the rotational strike is so very critical, because once you are in the form that Shreyas is in, you don't want to spend too much time at the non-striker's end.
और धर्मशाला में जहाँ पे मुकाबला खेला जाना है वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अपने चौको छक्कों की उस गर्मी से माहौल को बराबर करके रखा है श्रेयस अय्यर और बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने। अगली गेंद फेंकी गई ऑफ स्टंप की तरफ और उसे ऑफ साइड में ही धकेल के 1 रन चुरा लिया और स्ट्राइक दे दी दीपक हुडा को, जो कि 12 रन के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया है। करंट रन रेट भारतीय टीम की उछलती हुई और उछल के जा पहुंची है 8.36 रन प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रेट 6.47 की है। 2 रन कम है भारतीय टीम के 80 होने में। ये उठा के खेल दिया ऑफ साइड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं और होता तो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये एक लंबा सा 6 था। तो पहला छक्का दीपक हुडा के बल्ले से निकलता हुआ इस मुकाबले का और भारतीय टीम के इनफैक्ट ये पहला 6 है इस इनिंग का। 12 चौके भारतीय टीम जरूर जड़ चुकी है। घुटनों पे बैठे, घुटनों का इस्तेमाल किया और सीधे गेंद को ऑफसाइड की दिशा में 6 रन के लिए भेज दिया दीपक हुडा ने। गेंद थोड़ी सी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी। कमबैक डिलीवरी थोड़ी सी अच्छी गूगली फेंकी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई। उम्मीद कर रहे थे हुडा की बाहर की तरफ जाएगी या स्ट्रेट रहेगी वो गेंद, लेकिन थोड़ी सी अंदर आई और उसका सम्मान भी किया। यही अच्छा क्रिकेट है अमित, यही सेंसिबल क्रिकेट है। जब आपने छक्का मारने की बॉल आई, छक्का मार दिया क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है। आप चाहें तो डॉट बॉल को फेस कर सकते हैं। Well, he has different strokes in his kitty. Looks absolutely comfortable as he tries to glance this one down to the third man and was beaten by the ball. So good comeback by the bowler, but overall very good cricket on display. अमित, आप अपने कंफर्ट को लग्जरी में नहीं ले सकते। वो करना चाह रहे थे दीपक हुडा। उनके पास में गेंद आई, उन्होंने विकेट कीपर के पास से चिप करने का प्रयास किया, जो इतना आसान होता नहीं है। And this next delivery has been comfortably hit towards the long off area. And 2 more runs get added to the batsman total. So overall, it has been a good over. And Sri Lanka needs to understand that if India play out few overs like this, they are certainly going to win this match. They have to bowl India out if Sri Lanka has any chance of winning this one. There's no other way. And they have the bowlers, and it will take at least a couple of bowlers to bowl really well. Binura Fernando, Dushmanta Chamira, Lahiru Kumara, Chamika Karunaratne have the pace, and Jeffrey Wendese, the right arm leg break bowler. Those are the 5 bowlers Sri Lanka has, and the captain Shanaka would certainly want them to come to the party today and get at least a consolation win for the Lankans. शनाका खुद भी पार्टी से कभी ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। जैसे उन्हें बताया कि कुछ चेंज लाना होगा, पेसर्स में स्पिनर एक ही है श्रीलंकाई साइड के पास, तो वहां पे शनाका भी आपको मीडियम पेस के साथ नजर आते आमतौर पे नजर आएंगे। तो क्या यहाँ इस मुकाबले में गेंदबाजी करते हैं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उनकी कप्तानी जो है वो काफी सेंसिबल रही है। युवा टीम है अमित, और ऐसा आमतौर पर जरूर देखने को मिला है। आज से आज तक इतिहास में होता रहा है कि टीम को एकजुट रख के खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब भी आपकी पूरी टीम में फेरबदल लगातार किए जाते हैं तो वहां उन चेंजेस को मैनेज करना इज नॉट दैट इजी, और वही कर रहे हैं कप्तान शनका। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। दबाव जो है वो पूरी तरह से श्रीलंका की साइड पे है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम जो है वो उस दरकार से रन बना रही है जिसकी उनको आवश्यकता है। सिर्फ 2 विकेट खोए। दीपक हुडा बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी अगर इसी रफ्तार के साथ चलती रही तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। दोनों ही बल्लेबाज इतना ज़्यादा समय लेंगे नहीं, और मुझे लगता है कि ये जो चेज़ है वो बहुत जल्द कंप्लीट करने की करेंगे कोशिश। And the cricket lovers would surely be happy with the way cricket has turned out to be yesterday and today, because yesterday when it was raining earlier in the day, there were doubts if it could have any impact on the match, but we had full 40 overs match yesterday, and today the conditions were even better than yesterday. It was cold, and you could see the spectators who were there in the stadium wearing woolen clothes, but the breathtaking view of the snow-capped mountains is absolutely refreshing. These are the foothills of the Doladar mountains, and the magical, mesmerizing sight of the mountains alongside some good stroke play is an elegant combo. और ये कॉम्बो आपको क्रिकेट हमेशा प्रोवाइड करता है, चाहे सिचुएशंस कैसी हो। जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको ग्राउंड से मिल जाती है, और जो क्रिकेटिक ब्यूटी है वो भारतीय खिलाड़ी आपको मैदान पे करके दिखाते हैं, चाहे वो
बल्ले से बात कर लीजिए, गेंद से बात कर लीजिए, विकेट के पीछे विकेट कीपर के दस्ताने ले लीजिए, हमेशा भारतीय टीम चुस्त रहती है और परफॉर्म करने की कोशिश करती है। आज भी इस मुकाबले में देखने को मिला, श्रीलंका टीम ने पहले टॉस जीता, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उस फैसले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया भारतीय टीम ने, क्योंकि सिर्फ 146 रन के टोटल के ऊपर ही काम चलाना पड़ा श्रीलंका साइड को। भारतीय टीम को चेस के लिए 147 का टारगेट है, जो कि बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। जब भी वीक बॉल्स मिल रही है रन्स बना रहे हैं, जब वैसा नहीं हो रहा है तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और जानते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके कैसे खेलना है। क्षमता हर खिलाड़ी जानता है एक दूसरे की। कुछ जब आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट साथ में खेल लेते हैं या एक दूसरे को खेलते हुए देख लेते हैं तो वहां से ये जो नेचुरलिटी है वो और बढ़ जाती है। कुमारा 11वें ओवर की पहली गेंद लेके आए डॉट बॉल के साथ। श्रेयस अय्यर 42 के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 गेंदों का सामना किया। ये ओवर की जो अंतिम गेंद थी पिछले ओवर में, उसमें स्नीकोमीटर पे कहीं कुछ निशाना तो था या नहीं, बिल्कुल एक हल्का सा एज जरूर था। यदि विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सेफली लैंड कर जाती तो विकेट मिल जाता दीपक हुडा का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुमारा अभी तक अपने दूसरे ओवर में 15 रन ऑलरेडी पहले ओवर से खर्च कर चुके हैं। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद और पारी का ये 11वां ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोवर गेंद खेल दिया, उसे उठा के डाउन द ग्राउंड, लेकिन लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन मिलेगा श्रेयस अय्यर को। 104.9 किलोमीटर की गेंद थी, धीमी रफ्तार से किया था और भारतीय टीम का स्कोर जो है वो एक और रन के साथ, रफ्तार ज्यादा धीरे नहीं हुई है लेकिन बढ़ जरूर गया। 87 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। So India requires another 60 runs of 58 deliveries to win the third T20 international, and Shreyas Iyer unbeaten on 43, 7 runs short of what would be a hat-trick of half centuries. Don't forget, after the 3 T20 international, you've got 2 test matches coming up between India and Sri Lanka, and this ball has been heaved away by Deepak Huda, but the fielder in the deep coming in between and ensuring that it did not go for a boundary, but good stroke that fetches him a solitary run. Huda on 21. The first test match that begins on Friday the 4th of March will be played at the Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, and the best part, this will be Virat Kohli's 100th test match. The second test match will be in M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore, the Garden City, and will begin from Saturday the 12th of March. 88 for 2. Fourth delivery of the 11th over, drifting down on the leg side and easily flicked away towards the mid-wicket fielder for an easy run. India 89 for the loss of 2 wickets. Absolutely in comfort, chasing the victory target of 147. Today, Sri Lanka won the toss, elected to bat first, and after scoring 43 runs in first 10 overs, they did stage a sort of comeback, adding 103 in the last 10. To come up with a respectable total of 146 for 5. India did had the initial wicket of Rohit Sharma, but then since Shreyas Iyer has batted so well, but right now Deepak Huda has been cleaned up. The pace of Lahiru Kumara getting Sri Lanka that important wicket. 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई वो तेज तर्रार यॉर्कर जिसकी दरकार थी और वही कंप्लीट करके दी है अपने टीम को कुमारा ने। फुल लेंथ गेंद, फुल लेंथ यॉर्कर, ब्लॉक होल में डाली थी, ब्लॉक कर नहीं पाया और सीधे लेग स्टंप उछल के बाहर चला गया दीपक हुड्डा का। लंबे कद काठी के हैं, चाह रहे थे कि आगे बढ़ के गेंदों को खेले। जब आप ब्लॉक होल में गेंद का सामना करते हैं तो आपका बैट समय पे नीचे आना जरूरी, और वो हुआ नहीं। दीपक हुड्डा 21 के स्कोर पे गए, 16 गेंदों का किया सामना और श्रीलंका को मिली तीसरी सफलता। तो रन्स भी बन रहे हैं, विकेट भी जा रहे हैं, कंपटीशन जो है वो नेक टू नेक चल रहा है। हालांकि भारतीय टीम थोड़ी सी आगे कंफर्ट जोन में, क्योंकि बल्लेबाजी अभी बाकी है। रविंद्र जडेजा आना बाकी है, हर्षल पटेल भी ऑलराउंडर बल्लेबाजी कर लेते हैं, वेंकटेश अय्यर जो आपके टीम के मेन ऑलराउंडर है उनसे भी आप उम्मीद करेंगे कि रन बनाए। तो ये जो टीम है वो स्ट्रांग बहुत नजर आ रही है और जिस रफ्तार से भारतीय टीम रन बना रही है उसमें एक आधा विकेट इतना बड़ा ऑब्स्टिकल बनेगा नहीं। श्रीलंका की साइड को यदि मुकाबले में कमबैक करना है तो नेक टू नेक 2-3 विकेट जरूर चाहिएंगे एक साथ, वो भी गुच्छों में। अमित, अगर गुच्छों में विकेट नहीं आते तो श्रीलंका के लिए इस मुकाबले में बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस मुकाबले को जिंदा रखना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, जिस एक्सपीरियंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, समझते हैं, भांपते हैं वो कि कब खेल का रुख किस तरह से बदलना है। Sri Lanka needs to pick up 10 Indian wickets. They have to add pressure, and this wicket of Deepak Huda, clean bowled by Lahiru Kumara, would certainly encourage them. And at the fall of this wicket, in comes left-handed batsman Venkatesh Iyer. He's been impressive
against the West Indies and also here against the Sri Lankans as he faces his first delivery. Shot pitched outside the off stump and straight away the connection from the bat, the ball racing towards the boundary. 4 runs get added to Venkatesh Iyer. 4 of the very first delivery he faced. तेज रफ्तार से गेंद की थी, उसको भाप नहीं पाए थे, पुल शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत में जाते जाते बस खुद को बचाने की कोशिश की। भाग्यशाली इसलिए रही क्योंकि गेंद ने गैप ढूंढ लिया, 30 यार्ड का घेरा पार कर लिया और सीधे बाउंड्री रोप्स की तरफ चली गई 4 रन के लिए। इससे 4 और रन ऐड हो गए और भारतीय टीम के स्कोर में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है और ये रन चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जब आपके बल्ले से रन आना शुरू हो जाए, आप ऑफ द मार्क आ जाए, भले आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, अमित आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव इंटेंट आ जाता है और आप फिर जानते हैं कि हाँ मेरा खाता खुल चुका है, अब बस मुझे कन्वर्जन की ओर ध्यान देना है। Well, so long as they're coming, runs are always welcome by the batsmen. Not the best way to get those 4 runs, but so long as you've been able to get to the boundary, Venkatesh Iyer and India will be very happy. Shreyas Iyer on the other end looks very comfortable. And in the commentary booth, I am now joined by my colleague Arjun J. Chaudhary. Arjun, notwithstanding India's lost 3 wickets, do you think with Shreyas Iyer, the man in form, still there at the crease, and with Venkatesh Iyer with him, Ravindra Jadeja still to come, is India still at the driver's seat? Well, that's obvious. Shreyas Iyer batting on 44 of 28 deliveries, going down the track and heaving it over the mid-wicket boundary for a huge 6. That answers your question there, Amit. 99 for 3 into the 12th over right now. And with the exit of Amit and the ball's exit from the stadium, we are now joined by Adesh Kumar in the commentary box. Well, Adesh, it's all happening here. He asked me whether Shreyas Iyer can make it. 50 not out of 29 deliveries after scoring 57 not out and 74 not out in the first 2 T20s. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और अब देखना ये होगा कि 99 रन भारत का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। क्या 99 के फेर में कोई बल्लेबाज फंसता है, यानी कि इस स्कोर पर क्या कोई विकेट गिरता है? लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉर्म में हैं श्रेयस अय्यर, तो वो उनके एंड से तो मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्रेयस अय्यर और कोच राहुल द्रविड़ अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी की एनालिसिस कर रहे हैं उनकी इनिंग को। केवल 29 गेंदों पर 50 रन, क्या ड्रीम इनिंग है इनकी। और देखिए कि जो 2020 करियर है इनका, ये छठा अर्धशतक उन्होंने बनाया है। Tremendous batting there by Shreyas Iyer, going down the track and playing it through the line, not across the line. And that's been the hallmark of Shreyas Iyer's batting. Even against medium paces and the fast bowlers, he plays with a straight bat. And he is clearly the player of the series so far. This third consecutive half-century in this T20 series. And India well on course to meet the target of 147 to win this match. दरअसल जो टेक्निक है श्रेयस अय्यर की, वो बहुत ही शानदार है। और जिस खिलाड़ी की टेक्निक काफ़ी शानदार होती है, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं जैसे कि आपने कहा, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत ही शानदार तरह से गेंदबाजों का सामना करने में कामयाब होते हैं। और अब यहाँ पर ये ज़रूर दिख गया है कि भारत जीत के काफ़ी करीब है। और भारत ने जिस तरह से पहले मुकाबले में बहुत बड़े अंतर से श्रीलंका को पराजित किया और दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की, तो यहाँ पर भी लगभग उसी रास्ते पर भारत बढ़ता हुआ। भारत का स्कोर 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वेंकटेश अय्यर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने पहले 2020 मुकाबले में 57 रन बनाए थे, उसके बाद फिर अर्धशतक बनवाया और यहाँ 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल यहाँ पर 48 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 52 गेंदों पर। तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि रनों की रफ्तार भले ही बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, और मुझे लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 12वां ओवर चल रहा है और 147 रन जीत के लिए बनाने हैं, तो बेवजह भारत अपने विकेट खोना नहीं चाहेगा। जो श्रीलंका के टॉप ऑर्डर्स ने गलतियाँ की थी, और भारत अगर इतनी मजबूत स्थिति में है तो इसका पूरा श्रेय श्रेयस अय्यर को जाता है। Yes, and the asking rate is now 48 runs off 52 deliveries as Iyer on strike, batting on 50 of 30 deliveries. Pitching a shot a long off really, front of the wicket, finds the deep mid-wicket fielder on the onside for a single. So the 100 for India's come up.
having lost 3 wickets, and Shreyas Iyer's score now moves on to 51. And the non-striker is now at the batting crease. It's Venkatesh Iyer. Both share the same surname. He's batting on 4 of 1 delivery. It's now 47 runs required of 51 deliveries. Less than a run a ball. And the target is 147 to win this match. Shreyas Iyer batting on 51 of 31 deliveries. It is the 12th over in progress, the 4th delivery. Now being bowled from over the wicket, and the left-hander Venkatesh Iyer looking to find the gap on the offside, finds a mid-off fielder. Another single to his name. 5 runs off 2 deliveries with Shreyas Iyer on strike. And this is something that the spectators at the HPCA Stadium are really enjoying after his pyrotechnics yesterday when India won the second T20. He scored 74, not out of 44 deliveries with 6 boundaries and 4 sixes. On strike right now, making room, looking to hit it over the infield. Does he find the fielder? 1 bounce and picks up a single. 102 for 3. और भारत को जीत के लिए 50 गेंदों पर 46 रनों की ज़रूरत, और ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य है भारत के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर कोई ख़राब शॉट खेलते हुए बैट्समैन अपने विकेट ना गंवाए तो। और ये देखिए श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से अपनी पारी के दौरान विकेट के दोनों तरफ शॉट्स लगाए, गेंदों को फुल टॉस बनाया और 32 गेंदों पर जिस तरह से अर्धशतक पूरा किया, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ बल्लेबाजी। 52 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। अगली गेंद, और वेंकटेश अय्यर ने इस गेंद को मिड ऑन की तरफ हल्के से पुश किया। रन बनने की यहाँ कोई संभावना नहीं थी, और रन बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास यहाँ पर करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि फील्डर्स गेंद के पास थे और अनावश्यक रूप से रन चुराने की कोशिश में कई बार बैट्समैन अपना विकेट भी गंवा देते हैं, और भारत इस तरह की कोई गलती करना नहीं चाहेगा। फिलहाल भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में, और श्रीलंकाई गेंदबाजों ने विकेट से जो हेल्प मिल रही थी उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया, उसका फ़ायदा नहीं उठा सके जिस तरह से मोहम्मद सिराज और आवेश खान ने उठाया। Yes, Karunaratne is bowling his 3rd over right now. Figures are 1 for 24. And not being able to get that bounce and pace off the wicket like the earlier bowlers did. Kumara's figures are 1 for 22 of his 2 overs. This time blowing a slower delivery and picking up a single in that vacant mid-on area. India 103 for 3. It is Shreyas Iyer who's batting on 53 at the non-strikers end now. Picking up that slow delivery of Karunaratne. Venkatesh on strike, batting on 5 of 3 deliveries. To win 44 of 47 remaining balls of the match. Target is 147. We are into the 13th over now. India 103 for the loss of 3 wickets. विकेट काफ़ी अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, और इन बल्लेबाजों ने दिखा भी दिया है, खासकर श्रेयस अय्यर ने अगली गेंद और वेंकटेश अय्यर ने इसे पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ। हवा में जाता शॉट और इसी के साथ भारत का गिरता हुआ विकेट। और जैसा हम कह रहे थे कि अगर अनावश्यक शॉट्स लगाते हुए बैट्समैन अपने विकेट ना गंवाए तो भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन अपने विकेट को थ्रो किया। यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद थी बॉलर की, और वेंकटेश अय्यर ने गेंद की लाइन में आए बिना गेंद को पुल किया और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। एक बहुत ही आसान सा कैच, हालांकि जो फील्डर है उन्होंने गिरते हुए इस कैच को पकड़ा। भारत के लिए एक और झटका। भारत का स्कोर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 103 for the loss of 4 wickets. Venkatesh Iyer dismissed for 5. A slower delivery by Kumara. He has been bowling at 147 kilometers per hour with a new ball. But with this bowling change, he dropped it down to 117 kilometers per hour. That change of pace confused Venkatesh Iyer, who just lofted it into the sky, and it was picked up by the deep mid-wicket fielder on the onside in front of the wicket. So India has lost their 4th wicket with a score 103 on the board. It would be the next batsman who will be coming in. More importantly for India, Shreyas Iyer is still at the batting crease because of the change in strike. It's 53 not out, Shreyas Iyer, of 33 deliveries. The target is 147 to win this match. India well on course, but they've lost their 4th wicket.
और अब सारी जिम्मेदारी रहेगी रविंद्र जडेजा पर। उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। फ़िलहाल बैटिंग करने के लिए मैदान में आ चुके हैं, लेकिन इस बीच श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर नई गेंद का सामना किया और गेंद को निकाल दिया था मैदान की तरफ, और रन बनाने की यहाँ पर ज़रूर संभावना थी। एक रन उन्होंने बनाया भी। एक तरह से ये टेलर मेड कैच दिया वेंकटेश अय्यर ने, और बहुत ही ख़राब शॉट था। शायद वो अपना मन बना चुके थे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने के लिए, लेकिन शॉट के पीछे उतनी ताकत नहीं थी। मिस टाइम शॉट था। फिलहाल भारत का स्कोर 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 13वां ओवर चल रहा है। 3 गेंदें अभी भी की जानी शेष, और 58 मैचेस खेल चुके हैं रविंद्र जडेजा, और 304 रन ही उन्होंने बनाए हैं। अभी तक 2020 क्रिकेट में उनका कोई अर्धशतक नहीं निकला है। ये एक कमाल की बात है, क्योंकि वो शायद काफ़ी लोअर ऑर्डर में खेलने आते थे, काफ़ी पीछे बल्लेबाजी करते थे, और रोहित शर्मा ने उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए अब थोड़ा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भेजा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर रविंद्र जडेजा फॉर्म में आते हैं तो फिर, लेकिन आज उनके पास अर्धशतक बनाने का मौका नहीं है क्योंकि इतने रन नहीं हैं। Well, Ravindra Jadeja scored 45 of 18 deliveries in that second T20 when India were able to chase down a target, scoring 186 in under 18 overs. This time looking to open his score, and he does with a low full toss being played towards the long on boundary. His account is open. He's batting on 1 now, and it's Shreyas Iyer on strike, batting on 54. As India's score now moves up to 105 for the loss of 4 wickets. And interestingly, in this match, Adesh, Jadeja has not bowled. It was Kuldeep Yadav, the left-arm leg spinner, who bowled 4 overs, none for 22. Ravi Bishnoi was also given a chance, a right-arm leg spinner, 1 for 32 of 4 overs. But Jadeja did not get a chance to bowl in this match by his captain Rohit Sharma. Clearly trying out all the youngsters in this T20 match, which does not have the same significance in the series because India has already won it. They're 2-0 ahead. This time a single picked up by Shreyas Iyer. Looking to play it on the offside, but finds as the ball slides off the face of the bat towards the onside, the mid-wicket fielder, 107 for 4 with that single. Iyer batting on 55 at the non-striker's end, and Jadeja batting on 1. काफ़ी दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ। 43 बॉल्स और रिक्वायर्ड 40 रन फॉर विन, बट इंडिया स्टिल इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन। भारत का स्कोर 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बाउंसर थी ये, और काफ़ी ऊंचाई थी इस गेंद में, और रविंद्र जडेजा ने इस गेंद को विकेट कीपर के पास जाने देने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी कोशिश बॉलर द्वारा, और वो बाउंसर के थ्रू थोड़ा सा, क्योंकि जडेजा भी बल्लेबाजी करने आए ही हैं, थोड़ा सा दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जडेजा काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। हर शॉट उनके पास है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उन्होंने कई बार मैच को निकाला है। और रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी कभी बॉलिंग में बहुत ही कमाल दिखाती थी, लेकिन अब नए गेंदबाज आ रहे हैं, युजवेंद्र चहल हो या फिर कुलदीप यादव, जिन्हें कुलचा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को थोड़ा सा ब्रेक दिया गया, लेकिन अब टीम में वापसी की है तो उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई है, उपयोगिता साबित की है। अब देखना है कि वो श्रेयस अय्यर के साथ किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। रन और जो गेंद है वो लगभग बराबर। इस बीच बैकफुट पर गए श्रेयस अय्यर, ड्राइव किया कवर्स में, और गेंद फील्डर्स के हाथ से ज़रूर लगी थी, लेकिन एक तरह से जीवन दान कहा जा सकता है, और श्रीलंकाई खिलाड़ी काफ़ी मायूस होंगे। देखिए जिस तरह से ये शॉर्ट पिच गेंद काफ़ी ऊंचाई लिए हुए थी और उस पर ड्राइव करने की कोशिश की थी, पूरी ताकत नहीं दे पाए थे। गेंद थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा निकल गई कैच के रूप में, और फील्डर अनुमान नहीं लगा पाए। Well, Shreyas Iyer does move around in that crease area quite a bit, between the bowling crease and the popping crease, and playing it on the back foot in the air. The cover point fielder diving, but not being able to pick up that fly ball, and this time playing it on the front foot. Jadeja uses the pace of the ball and picks up a valuable boundary. His score now moves on to 5. India 112 for 4, as runs coming thick and fast behind the wicket on the offside between point and gully.
So Jadeja, who had scores of 45 of 18 deliveries in the second T20, he proved to be quite expensive. He had figures of 1 for 37 in his 4 overs. But this time round, we had plenty of bowling strength in this third T20 match, where we used other reserve spin bowlers right and left by the captain Rohit Sharma. India 112 for the loss of 4 wickets. We are into the 4th over. Jadeja on strike, batting on 5, and Shreyas Iyer at the non-strikers end, batting on 56 of 36 deliveries. It is Chamira bowling from round the wicket to the left-hander, and this time wraps him on the thigh pad as the ball ricochets off it towards the offside behind the wicket. They pick up another extra. India 113 for the loss of 4 wickets. काफ़ी मजबूत स्थिति में भारत इस समय, और रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर पर ये निर्भर करेगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ये है पिछले मैच के कुछ दृश्य, जहां 18 गेंदों पर 45 रन बनाए थे रविंद्र जडेजा ने। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की थी, पूरी रंगत में थे, और इस तरह का कारनामा वो करते रहते हैं, जाने जाते हैं, और बेहतरीन ऑलराउंडर उन्हें इसीलिए माना जाता है। और 14 चौके और 2 छक्के भारत की पारी के दौरान लग चुके हैं। भारत का स्कोर 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को गली के पास से निकालने की कोशिश की, हालांकि केवल एक स्लिप फील्डर था, और उसके बाद काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर कहा जाएगा, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि भारत को आसानी से 1 रन मिला। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 114 रन। श्रेयस अय्यर 57 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और रविंद्र जडेजा 4 गेंदों पर 6 रन बना चुके हैं। ऐसा लगता है कि उनको शुरुआत मिल चुकी है। We are into the 5th delivery of the 14th over now. India 114 for the loss of 4 wickets. It's Jadeja on strike, batting on 6. He's in his avatar as a batsman in this game. Shreyas Iyer at the non-strikers end, batting on 57. Chamira bowling from round the wicket to the left-hander, playing it on the back foot there, and fielded by Chamira himself on his follow-through. So another dot ball. And so far in this Indian innings, 14 boundaries and 2 sixes. The target is 147 to win this match. India require 33 runs of the remaining 37 or 38 deliveries. So it's well under 6 runs and over to win this match. At this stage, as far as Rohit Sharma is concerned, it should be a clean sweep of the T20 series, and would be looking ahead for the test series coming up at Mohali. The first test match, and then the second test match a day and night at Bengaluru on March 12 to 16. India 114 for the loss of 4 wickets. The last delivery of the 14th over now being bowled. Jadeja batting on 6 as Chamira goes to over the wicket. A short delivery, appeal by the wicketkeeper, perhaps to distract the umpire from calling it a wide ball. But the umpire catches on and declares it to be a wide. 115 for the loss of 4 wickets. So Jadeja looking to pull that towards square of the wicket on the onside, but clearly the ball was way out of his reach. काफ़ी ऊंचाई से गेंद निकल गई, जैसा कि आपने कहा, और इतनी रीच नहीं थी जडेजा की कि उनका बैट वहां तक पहुंचता, और ये तीसरा अतिरिक्त रन था। यहाँ पर अर्जुन जी बड़ी तारीफ करनी होगी कि एक्स्ट्रा रन काफ़ी कम दिए हैं। भारत का स्कोर 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अब कुछ मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश की। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, और इसे पॉइंट की तरफ निकाल दिया। इससे पहले कि गेंद फील्ड होती, टहलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, अपनी एनर्जी को बचाए रखा है। अब यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि क्या भारत के 1-2 विकेट और गिरते हैं, और क्या श्रीलंका कोई अतिरिक्त दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर बनाने में कामयाब होता है या नहीं। वेंकटेश अय्यर को तो ज़रूर गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसाया और आउट किया। रोहित शर्मा को उन्होंने शुरू में ही ट्रैप किया। शायद वो, जैसा कि आपने बार बार इशारा किया अर्जुन, की गैप नहीं ढूंढ पा रहे थे, और श्रेयस अय्यर गैप ढूंढने में कामयाब हुए। बहुत ही लाजवाब बैटिंग की, लॉफ्टेड शॉट लगाए, ऑफ साइड और ऑन साइड में ड्राइव्स खेले, और अर्धशतक पूरा करने में कामयाब रहे, और डिजर्व करते हैं वो मैन ऑफ द सीरीज के लिए। I completely agree with you on that assessment. His third consecutive half century in this T20 series. Karuna Ratne figures a 1 for 24 as he is set to bowl the 15th over. Jadeja on strike, and this time pulling it a long hop really, finds the deep mid-wicket fielder
Another single adding to India's score, 117 for the loss of 4 wickets. Karuna Ratne figures of 1 for 24. And speaking of the batsman's ability to find the gap, pierce the field, as against batsmen who struggle to find the gap between the fieldmen, is Azharuddin. He had a knack of always finding the gap, and that explains his success to a great deal as well as a batsman. और उन्हें कलाइयों का खिलाड़ी कहा जाता था दरअसल, रिस्टी प्लेयर, रिस्टी बैट्समैन। लेकिन श्रेयस अय्यर अटैकिंग बैट्समैन हैं और अजहरुद्दीन के बाद वो आर्ट बहुत कम बल्लेबाज सीख पाए। वीवीएस लक्ष्मण ज़रूर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें रिस्टी बैट्समैन कहा जाता था। अब रिस्टी बॉलर्स ज़्यादा हैं भारत के पास। Yes, and we saw Ravi Bishnoi and Kuldeep Yadav, the finger spinners, also using their wrist, trying to bowl the googly, deceive the batsman. We saw Ravi Bishnoi's wicket where he deceives Lianage to pick up his only wicket of the match. So yes, wrist spinners are being used by Rohit Sharma in this T20 match in a series which India has already won, 118 for 4, as Karuna Ratne once again bowling from over the wicket and just short of good length. Picked up by Jadeja fairly easily. He's batting on 9 of 8 deliveries. Once again, just pulling it towards the onside in that square leg area. And Shreyas Iyer on strike, batting on 58 of 38 deliveries. This batsman has a knack of finding the gap. The required runs is 28 of 33 deliveries. They're batting quite sensibly right now, are they? So playing it along the ground. They're not taking the aerial route. India, 119 for the loss of 4 wickets. The target is 147. एरियल रूट पकड़ना भी नहीं चाहिए और इस बीच अगली गेंद बैकफुट पर जाकर कवर्स में गेंद को ड्राइव किया। फील्डर मौजूद है डीप कवर्स में, एक ही रन मिलेगा बैट्समैन को और भारत का स्कोर 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अर्जुन जी, याद कीजिए श्रीलंकन टीम जो 1975-76 में खेलती थी, रवि रत्नायके एक ऐसे बॉलर्स होते थे जिनका एक्शन काफ़ी अजीबोगरीब माना जाता था। फिर लसित मलिंगा, उन्हें भी खेलना आसान नहीं था ड्यू टू हिज एक्शन। और फिर मुथैया मुरलीधरन, बिशन सिंह बेदी तो उनसे खासे नाराज़ रहते थे एक्शन से। लेकिन अब जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन एक्शन है इनका। इस बीच अगली गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को ऑन साइड में टर्न किया, इससे पहले कि स्क्वायर लेग पर गेंद फील्ड होती। रविंद्र जडेजा ने 1 रन पूरा किया और 2 अंकों में पहुंच गए, डबल फिगर में। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर 59 रन बनाकर खेल रहे हैं श्रेयस अय्यर। और भारत को 26 रनों की दरकार, 31 गेंदें शेष। भारत का स्कोर 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए भारत को 147 रन बनाने हैं। 15वें ओवर की अंतिम गेंद यहाँ पर आएगी। 26 to win of 31 deliveries. Iyer batting on 59 of 39 deliveries. India 121 for 4. The last delivery of the 15th over. It is a slower delivery picked up on the onside, and it is the long leg, or rather the deep square leg fieldsman giving chase, or mid-wicket rather, running to his right. And a single, in fact 2 runs adding to India's score, 123 for 4 at the end of 15 overs. And India at this stage well on top, 24 runs now required of 30 deliveries. Both batsmen playing very sensibly, and it should be an Indian win for those who are working out what the probability is of India making a clean sweep of this series. बिल्कुल, और इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि इन दोनों बैट्समैन में ये एबिलिटी है कि इस समय अगर बहुत अच्छी गेंदबाजी हो, एरियल रूट ना पकड़ें, चौके छक्के ना लगाएं, तो भी सिंगल्स ले सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है, ये दरअसल श्रीलंका को ज़रूर परेशान करेगा। और रविंद्र जडेजा बहुत देर तक खामोश नहीं रहते। अच्छी बात यह है कि वो सिंगल्स या डबल्स निकालते रहते हैं और मौका मिलने पर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भी पहुंचाने की एबिलिटी रखते हैं। तो 30 गेंदों पर 24 रनों की दरकार और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एक तरह से ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रहा है, क्योंकि अपनी ज़मीन पर भारत टेस्ट क्रिकेट में तो अजय रहता था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का जिस तरह से सफाया किया, उससे पहले न्यूजीलैंड का, और अब क्लीन स्वीप के लिए तैयार है भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ। तो बहुत ही दमदार बल्लेबाजी, और हमारे सहयोगी कमेंटेटर इंतज़ार कर रहे हैं, अमित अरोड़ा, ज़रूर।
Well, Binuru Fernando is also waiting for the batsman to take guard. Jadeja on strike, batting on 10 of 9 deliveries. India 123 for the loss of 4 wickets. A long run up, bowling from over the wicket to the left-hander. And he pitches it short, a long hop really, and easily plays it behind square on the leg side. Another boundary to India's name, 127 for 4. And Jadeja's score now moves up to 14 of 10 deliveries. A very poor delivery, a long hop by Binuru Fernando. और जडेजा ने उसका फायदा उठाया. वेलकम बाउंड्री एंड वेलकम अमित अरोड़ा. Thank you very much for a very rousing welcome, Adesh. And thank you, Arjun, for your mathematical equation of 24 runs of 30 deliveries. Certainly, it's in favor of India. And right now, Ravindra Jadeja on the crease, unbeaten 14 of 10 deliveries. And Shreyas Iyer, what a series he has had. Unbeaten 61 of 40 deliveries. India 127 for 4. This one has been dispatched towards the mid-wicket area as the fielder there cuts off the ball and Jadeja gets another single. 15.2 overs, target of 147. So Ayush, 19 runs of 28 balls, a mere formality for India to win from here. हमें तो उम्मीद की जा रही थी कि ये जो फॉर्मेलिटीज है ये और शॉर्ट हो सकती थी. भारतीय टीम अगर तेज बल्लेबाजी करती तो ये रन चेज और इजी हो सकती थी. लेकिन खेल ही कुछ इस तरह का है कि भारतीय टीम ऐसा चाह रही है कि जब सम्मान देने वाली गेंद है आप सम्मान दीजिए और जब आप डिस्पैच कर सकें डिस्पैच कीजिए. और उसी तरह की बल्लेबाजी फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज करते हुए श्रेयस अय्यर 61 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. रविंद्र जडेजा 15 के स्कोर पर हैं और 16वें ओवर की तीसरी गेंद देखना होगा क्या करेंगे. पटकी हुई गेंद, स्लोवर गेंद थी, उसको खेल दिया है ऑन साइड में. मिड विकेट की तरफ से फील्डर दौड़ कर आएंगे जब तक 2 रन आराम से कंप्लीट कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज. और स्ट्राइक जो है वो लगातार रोटेट होती हुई रहेगी. 130 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है. आपको एक बार फिर याद दिला दें, श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उतना अच्छा था नहीं वो. पार्टनरशिप्स भारतीय टीम में बनती रही. 45 रन की पार्टनरशिप की सैमसन और श्रेयस अय्यर ने. हुडा और श्रेयस ने मिलकर जोड़े 38 रन. और ये जो पार्टनरशिप है जडेजा और श्रेयस अय्यर की, वो भी अच्छा परफॉर्म करके दे रही है इंडियन साइड को. 17 रन चाहिए 27 गेंदों से. श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर. ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जगह दी थी, उसे कट कर दिया. थर्ड मैन के फील्डर भी डाइव लगाएंगे लेकिन रोकने में नाकामयाब रहेंगे. एक और चौका. इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ेगा और बढ़कर जा पहुंचा 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर. तो जीत के बहुत पास आ रही है अमित. भारतीय टीम जीत के और पास आ रही है लेकिन खुशी जो है ना वो दुगनी हो जाती है बतौर भारतीय फैन जब ये जीत 15 ओवर के अंदर कंप्लीट कर लेते. Well, there is no limit to the expectation of a cricket lover. So Ayush is not just happy with the clean sweep. He wants India batters to accomplish the victory target as early as possible. But still, this has been a very good show. 134 for 4, 15.4 deliveries. In comes the left-arm fast bowler, Binuru Fernando. This was a slower delivery, which has been hit towards the mid-wicket area for another easy single. 12 more runs required of 25 deliveries. And Sri Lanka, certainly no chance from here. And it is just mere formality for India to register third straight win in this series. लेकिन एक नया तजुर्बा मिलेगा श्रीलंका की साइड को. T20 फॉर्मेट की मांग की थी टेस्ट से पहले और वो पूरी की भारतीय टीम ने सिर्फ और सिर्फ पूरी नहीं की है, उनको हरा करके ये मांग पूरी की है. अंतिम गेंद 16वें ओवर की, उसको धकेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ. फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन रन लेने से लोग नहीं पाएंगे जड्डू को. सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ और 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 136 रन. और ये जो चेज है उसमें अब कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं अमित. बस महज फॉर्मेलिटी जैसे आपने कहा वही भारतीय टीम करेगी और प्रयास रहेगा श्रेयस अय्यर का कि उनका विकेट ना पतित हो जाए. यहाँ वैसे कहना नहीं चाहिए, आमतौर पे आप कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स बहुत जल्दी लगता है, बट अगर उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए ये स्कोर बनाए रखा और नाबाद रहे तो लगभग 200 का स्कोर उनका हो जाएगा इन 3 मुकाबलों की सीरीज में, इन 3 मैचेस में. इन टोटल अगर आप बात करें श्रेयस अय्यर की तो अच्छी बल्लेबाजी की है, सेंसिबल मैच्योरिटी दिखाई और अपनी टीम की जगह जो है वो टीम में पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं. टेस्ट मैचेस इसके बाद खेले जाने 2 टेस्ट मुकाबले, उसमें भी श्रेयस अय्यर का नाम है अमित. Absolutely, but I think all eyes will now be on Mohali when the first test match begins between India and Sri Lanka from the 4th of March, because that will be Virat Kohli's 100th test match, and the one that follows thereafter in Bengaluru will be a day and night encounter. So to share with you the squad
of the test matches. Rohit Sharma is the captain. Rohit is now the captain in all the formats, and Jasprit Bumrah will be his deputy. Mayank Agarwal, Shubman Gill, Priyank Panchal, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Hanuma Vihari, Rishabh Pant and KS Bharat will be doing the wicket-keeping honours. Ravindra Jadeja, Mohammad Shami, Mohammad Siraj, Umesh Yadav, Jayant Yadav, Saurav Kumar and Ravi Chandran Ashwin. As one extra run gets added to the Indian total, courtesy of wide, and that victory target is just 10 runs of 24 deliveries. Ravindra Jadeja, the left-handed batsman on strike, 16 runs of 12 deliveries, as the spectators who have gathered here at the Himachal Pradesh Cricket Stadium in Dharmashala enjoy a hot cup of coffee as they watch cricket. This one, short delivery, leg side, and an easy picking for the caliber of Ravindra Jadeja. Easy boundary being given there by the experienced Lahiru Kumar. अमित, पिछली गेंद पे भी मौका था, डाउन द लेग साइड थी, ये गेंद भी डाउन द लेग साइड, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी और जब कटर मारने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा दे देते हैं आप बल्लेबाज को। और रविंद्र जडेजा ये तो वही खिलाड़ी है जो बस समय की दरकार को जान लेता है, इसी की आवश्यकता थी और वही करके दिखाया। महज 6 रन दूर है भारतीय टीम इस विक्ट्री से, और उसके बाद इतिहास में एक और स्वर्णिम पल जुड़ जाएगा भारतीय टीम के लिए। एक और क्लीन स्वीप पिछली बार वेस्ट इंडीज के सामने देखने को मिली, और यहाँ पर श्रीलंका उसके बहुत ज्यादा दूर है नहीं। अगली गेंद, तेज गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी थी, उसको फ्लिक करते हुए मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास किया और एक आसान सा सिंगल कंप्लीट किया। तो यहां से अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर 68 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 43 गेंदों का सामना किया, और उनके साथ रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा इनफैक्ट 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदें उन्होंने खेली है, 147 का टोटल चेस करना है इंडियन स्क्वाड को, 142 बोर्ड पे लग चुके हैं। Well, it's interesting to note that both the batsmen Jadeja and Shreyas Iyer have yet to be dismissed in the series, and it was a good comeback in this series by Ravindra Jadeja. After over 2 months, he made it back to the Indian side after a successful rehab. So 3 not out in the first T20, a good knock of 45 not out in the second T20 yesterday, and today adding a useful 21 not out so far. And it is always very heartening when you can have these 25-30 runs unbeaten and take your side to victory, because when it comes to the crunch matches, all of these runs come very handy. Shreyas Iyer has now scored 200 runs in this series, and will be a foregone conclusion that he should be conferred the Player of the Series award. But not just that he has made those 200 runs, it's the ease, the comfort with which they have come is also very important. At no ball was he ever stretched or looked in any sort of discomfort. And the variety of shots that we've seen from the blade of Shreyas Iyer in this series has been absolutely varied and fantastic. And Ayush, the way Shreyas has used the crease, sometimes going deep in the crease, sometimes moving across the crease, is an innovation that has worked for him. और यही ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट दिखा रहे हैं T20 फॉर्मेट में। आमतौर पे कहते हैं ना कि T20 फॉर्मेट में द अनऑर्थोडॉक्स इज द न्यू ऑर्थोडॉक्स, तो उस चीज़ को गलत प्रूव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है, अगर आपके पास टाइमिंग है, तो भी आप एक अच्छा सक्सेसफुल क्रिकेटिंग करियर बना सकते हैं, आपकी फॉर्म में वापस रह सकते हैं। फॉर्म तो आमतौर पर हम कहते हैं कि टेम्परेरी होती है, लेकिन परमानेंट आपकी क्लास होती है, वो क्लास दिखाते हुए और इस क्लास के साथ डाउन द लेग साइड गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ धकेल के चौका कंप्लीट किया। भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया, 3 मैचों की श्रृंखला जीत ली। मैं आयुष शर्मा आप सभी को यह खबर देते हुए और मेरे साथ में साथी कमेंटेटर अमित। So India has won the third T20 international by a comfortable margin of 6 wickets and have clean swept the 3 T20 international series. They won the first T20 in Lucknow by an overwhelming margin of 62 runs. Yesterday they won the second T20 by 7 wickets, and today once again courtesy Shreyas Iyer, India has won by 6 wickets. Congratulations India for another T20 international series win, 3-0 after having defeated West Indies 3-0 as well. This has been an absolute brilliant performance, overall team performance, but major contribution coming from Shreyas Iyer. I'm now joined by my friend Hindi commentator Adesh Kumar Gupt. Adesh, many congratulations to India. जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम निश्चित रूप से जीत की हकदार थी, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था भारत के सामने। और दूसरी बात ये थी कि श्रेयस अय्यर जिस तरह से शानदार बैटिंग फॉर्म में है और उन्होंने भारत का काम आसान किया, लगातार तीसरा शतक उन्होंने बनाया। और उसके बाद रविंद्र जडेजा, तो तारीफ़ करनी होगी ऐसे पेयर की,
और श्रीलंकन गेंदबाजी थी वो बहुत ही ख़राब रही। बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नज़र नहीं आया और विकेट से जो उछाल थी उसकी जितनी मदद उन्होंने लेनी चाहिए थी नहीं ली और बहुत ही ख़राब गेंदबाजी की। नतीजा ये निकला कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में ये क्लीन स्वीप विक्ट्री दिलाने में कामयाब रहे श्रीलंका के ख़िलाफ़। और श्रीलंकाई टीम से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता था कि ये दमदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैच दर मैच इनकी परफॉर्मेंस गिरती रही और स्क्रीन पर भारत के कोच राहुल द्रविड़, कुलदीप यादव, साथी खिलाड़ी, तो ये देखिए किस तरह से विजयी शॉट आया, तो बेहतरीन विजय। And I think quite befittingly, the winning shot, the boundary coming from the bat of Shreyas Iyer. What a tournament Shreyas has had. Unbeaten in the tournament, scoring in excess of 200 runs. A very relieved head coach of India, Rahul Dravid, as India seals the 3 T20 international series against Sri Lanka, 3-0 win. The story in the third T20 today at the Himachal Pradesh Cricket Stadium here in Dharamshala. Sri Lankan captain Dasun Shanaka won the toss, elected to bat first. And in 10 overs, they did manage just 43 runs, but added 103 in the last 10. And this was courtesy Shanaka's unbeaten 74 of 38 deliveries and the partnership he had with Karunaratne for the 6th wicket. As far as Indian bowling is concerned, Captain Rohit used 5 bowlers. The pick of the bowlers was Avesh Khan, 4 overs, 23 runs, 2 wickets. His last over going for 19 runs. And when India came to chase, they did lose Rohit Sharma's wicket cheaply, as he scored 5 runs of 9 deliveries. But in this tournament, he's also had the honour of becoming the highest run getter in T20 internationals, going ahead Martin Guptill of New Zealand and Virat Kohli of India. But then Sanju Samson and Shreyas Iyer put up some partnership for the second wicket before Sanju Samson was caught by Chandimal of Karunaratne for 18, score of 12 deliveries. Deepak Hooda came at number 4 today, did impress with his uppercut and a 6 that he managed to get over the extra cover region before he was cleaned up by the pace of Lahiru Kumara. Deepak scored 21 of 16 deliveries. Venkatesh Iyer came at number 5, was caught by substitute Jaya Vikrama off the bowling of Lahiru Kumara. Venkatesh scored 5 runs, but then it was all Shreyas Iyer and Ravindra Jadeja show. Both of them remain unbeaten in the series. Jadeja scoring 22 runs of 15 deliveries, punctuated by 3 boundaries. And in terms of the bowlers, well, once Dasun Shanaka was back in the pavilion, it was Charit Asalanka, the deputy, managing the resources. They did lose Jeffrey Vandersay as well because of twisted ankle, who bowled 2.2 overs, gave away 24 runs. But Binura Fernando, very expensive, 4 overs, no maiden, 35 runs, no wicket. Dushmanta Chamira, 3 overs, 19 runs, 1 wicket. Lahiru Kumara, 3.5 overs, gave away 39 runs, though he picked up 2 wickets. And Chamika Karunaratne, 3.4 overs, 31 runs. He did pick up a wicket. Overall, there are few positives, Adesh, for Sri Lanka. The way Asalanka batted in the first innings, scoring a half century. The way Nisanka batted for 70-odd runs in the second. And the way their captain scored yesterday and today. But how do you see Sri Lanka's evolution in this series? देखिए, टुकड़ों टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे प्रथम ने कल के मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और इसके अलावा 1-2 बैट्समैन ने और अच्छी बल्लेबाजी की। जैसा कि आपने जिक्र किया निशांका का, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन देखा जाए तो जो टॉप ऑर्डर है वो इतना कुछ नहीं कर सका। और जो टील है श्रीलंका की, वो एक्चुअल में डायनासोर की टील जैसी ही दिखी, वो उस तरह का दमखम नज़र नहीं आया। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इनकी बॉलिंग ने। आप देखिए कि पहले मैच में भारत ने 199 रन बनाए थे, तो उसके बाद सेकंड मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की। और आज देखिए कितना कंसिवली और बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली जीत हासिल की। जो लाइन और लेंथ थी, दरअसल ये बहुत ही कम अनुभवी टीम है और इसके ज़्यादातर खिलाड़ी परिवर्तित हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि एक समय जब श्रीलंका की टीम के अधिकतर खिलाड़ियों के नाम याद रहते थे, चाहे वो कालू वितरना है, सनत जयसूर्या है, रोशन मानामा, अरविंद डी सिल्वा, लसिथ मलिंगा और उसके अलावा मुरलीधरन, आप देखिए कि 7-8 खिलाड़ियों के नाम तो ऐसे ही याद हो गए। तो जब
इस कैलिबर के खिलाड़ी किसी टीम से अलग होते हैं और ख़ासकर 2-3 साल में ही, तो फिर नई टीम को खड़ा करना काफ़ी मुश्किल है। स्ट्रक्चर श्रीलंका का ऐसा नहीं है जैसा भारत का है। भारतीय खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, आईपीएल में तो खैर श्रीलंका के भी खेलते हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए तो रणजी ट्रॉफ़ी है, ईरानी ट्रॉफ़ी है, और इसके बाद इंडिया ए, तो बहुत सारे मौके हैं। उसकी बदौलत आप देखिए कि हर्षल पटेल, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, सुरेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, कितने ही खिलाड़ियों को यहाँ मौका मिला, दीपक हुडा, ऐसा लगता है कि और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड ज़रूर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो मुझे लगता है कि भाग्यशाली नहीं रहे, क्योंकि एक मैच में उन्हें मौका मिला, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। और फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह की कप्तानी की, पहले मैच में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक भी जमाया। यहाँ पर अगर आप श्रीलंकन बॉलिंग को भी देखें, चाहे फर्नांडो हैं 4 ओवर में 35 रन, चबीरा 3 ओवर में 19 रन, लाहिरू कुमारा 3.5 ओवर में 39 रन, और चमिका 3.4 ओवर में 31 रन, तो कोई इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं थी। और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग की, और यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी आवेश खान की और मोहम्मद सिराज की, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में सफलताएं दिलाई, और उसके बाद फिर जो श्रीलंका का स्कोर था वो रिस्ट्रिक्ट किया। 170-80 एक ऐसा टारगेट है जो डिफ़िकल्ट माना जाता है। 140 से 150 के बीच में जो टारगेट है वो कुशन नहीं देता बॉलर्स को। तो श्रीलंकन टीम में यहाँ पर काफ़ी कमज़ोरी नज़र आई, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी ज़मीन पर बहुत दमदार है। और आप देखिए कि न्यूजीलैंड जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी, उसके बाद किस तरह से वाइट वॉश हुआ उसका 2020 सीरीज़ में, और वेस्ट इंडीज़ का भी जो हाल हुआ, ऐसा लगता है कि पुरानी यादों में ही वेस्ट इंडीज़ हो गई है। कहाँ एंडी रॉबर्ट्स और गार्नर, और इसके अलावा अगर बैटिंग की बात की जाए तो गॉर्डन ग्रीनिच, रॉय फेडरिक्स, एल्विन कालीचरण और विवियन रिचर्ड्स, और उसके बाद एक लंबी कतार थी ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन की। आज वेस्ट इंडीज़ के कितने बैट्समैन के नाम लोग जानते हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने एक कप्तान के रूप में दिखा दिया है कि उनके कंधे जब भार पड़ता है तो वो बेस्ट देते हैं। और अब तीनों फॉर्मेट में भारत के कैप्टन हैं, तो उनकी कैप्टनशिप को लेकर अगर मगर किंतु परंतु सब समाप्त हो चुके हैं। और सुरेश अय्यर ने तो कहना ही क्या, और गेंदबाजों को जिसे भी मौका मिला, चाहे वो रवि बिश्नोई थे, पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, और आज आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा पुराने चावल हैं और आज उन्होंने दिखाया। तो अमित, बहुत अच्छा लगा कि भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा तीनों मैचों में कि भारतीय टीम कहीं भी बैकफुट पर है। So congratulations to India and Captain Rohit. This is the 12th consecutive win for India as far as the T20 International is concerned. So once again, a reminder that India has defeated Sri Lanka in the third T20 International to do a clean sweep 3-0. And now all eyes will be on the first test match that begins on the 4th of March, Friday, in Mohali. That will be Virat's 100th test. Hope you enjoyed this broadcast from the entire commentary team. Adesh and Ayush in Hindi, and Arjun and myself in English, and the entire team out here. We'd like to say thank you, goodbye, good night. Good night and thank you. First of